के पद पर रहते हुए भारत की गरिमा को उन्होंने सुरक्षित रखा। और कितनी अफसोस की बात है कि आप 2014 से पहले भारत के प्रति आप कोई गर्व नहीं महसूस करते। सर, हम भारत के होने का हम गर्व महसूस करते हैं। 2014 के पहले भी, आज भी जब हमारे पास सत्ता नहीं, आज भी हम भारतीय होने का हम गर्व महसूस करते हैं और हमेशा हम करते रहेंगे। लेकिन सर, मैं अंत में ज्यादा समय ना लेते हुए बंकिम चंद्र चटर्जी के वंदे मातरम की कुछ पंक्तियां कहकर अपनी वाणी को मैं विराम देना चाहूंगा। त्वम ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्यादायिनी, नमामि त्वाम नमामि, कमलाम अमलाम अतुलाम, सुजलाम सुफलाम मातरम, वंदे मातरम। भारत कब विकसित होगा, ये कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था या कोई विशेष व्यक्ति नहीं। भारत तब विकसित होगा जब हम संविधान के अनुसार सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सबको मिलेगा। भारत तब विकसित होगा जब विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सबको मिलेगी। भारत तब विकसित होगा जब प्रतिष्ठा और अवसर की समता सबको मिलेगी। तब जाके, जब भारत का हर नागरिक ऐसा महसूस करेगा, तब जाके हम भारत के प्रति हम न्याय करेंगे। और अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि हम अपने लड़ाई, भारत की लड़ाई, भारत जोड़ने की लड़ाई, भारत के नागरिकों के आम न्याय की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे, हम डरेंगे नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में अपनी बातों को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम। टी.आर. बालू जी। Good. So, with great respect to the Honorable President of India, I would like to join with other friends to thank her address in both houses of the Parliament on 31st of this month, last month. Sir, on behalf of DMK and my leader, Talabadi M.K. Stalin, it is my profound duty to thank the Honorable President of India for having addressed both the houses, because she is the face of 143 crores of Indian nationals. And at the same time, President could not be found fault. We can't find fault on her subject matters, which she has delivered, because it is a matter of government policies. It is a comprehensive government policy note which she has read in the House. I can't find fault with Madam. I have to thank her. But at the same time, the policies of the government will definitely be, I can find fault with that. So time and again, we have to intervene in this Parliament for the omissions and commissions of the BJP rule for the past 10 years. So whether it is a subject matter of youth of this country, common man, middle class, weaker section of this country, women and children, senior citizen, and so on. But it is the purpose of for that purpose only, we, the members of Parliament, they are elected and coming to the Parliament to discuss anything. If the ruling party goes wrong, it is for us to condemn and correct that. Similarly, we have been demanding the policies and programs for the development of our own state, Tamil Nadu, maybe pertaining to the exemption of NEET, demanding higher allocation to Tamil Nadu, demanding flood relief to Tamil Nadu, demanding aims at Madurai, second phase metro approval, to continue Sedu project, to increase the railway connectivity, fast-moving trains from Madurai, Tanjavur and Coimbatore, etc. Sir, during first and third week of
December 2003, Tamil Nadu has witnessed unprecedented flood and cyclone, which means 100 years back. It has surpassed 100 years history also. In Chennai alone, Chennai and other surrounding districts or 3 other districts, it has experienced 45 centimeter of flood water, rainwater in a particular day. In Thoothukudi, wherein Kanimozhi represents Thoothukudi and surrounding districts, 3 other districts, they have experienced more than 100 centimeter of rainfall in a particular day. Never happened, unprecedented. More than 2 crores people of Tamil Nadu have suffered the unprecedented rain. They were starving for weeks because there is no logistic approach. Only by boat things have to be moved. Food has to be moved. Water has to be moved. So that is why they have suffered for a week. And moreover, lot of automobiles, cars, two-wheelers and other vehicles have been immersed and still they are lying in the mechanic shed, sir. Sir, more than 8,000 tons of food grains have spoiled in the FCA godown. Even now, it could not be replaced as the water is inundated everywhere. The state government asked financial support of 37,000 crores. What has happened, sir? No relief, no reconstruction. My friend Mr. Rajnath Singh air dashed and he has visited through, he has had a aerial survey, and Madam Nirmala Sitharaman has also went around Thoothukudi and other 4 districts. Rajnath Singh in Chennai, he has travelled here and there, but and they came back, and 3 committees have been sent from the government of India. What has happened, sir? They have surveyed, they have assessed what they have to give, they know. But they have not even a paisa, sir. 37 crores the government of Tamil Nadu has asked for. On 4th January, I met personally along with the CM's letter and met the Prime Minister of India. And 19th of January, myself and the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu went there and expressed the concern about the Tamil Nadu, and Prime Minister has shown, he was very courteous, and he has promised that he will do the needful immediately. What has happened? Nothing. On 13th of this month, January, we went, the delegation has been taken by me. All party delegation has met the Honorable Home Minister of India. He said, categorically he has promised that he has promised on or before 27th. Definitely I will help you. The relief and reconstruction fund will be given to Tamil Nadu on or before 27th of January. What is today's date, sir? It is 2nd February. Nothing has happened. So that is why we, the DMK, the opposition, calls it as a stepmotherly attitude towards Tamil Nadu. The same thing the other man from Kannada, he would have said, we are not getting enough allocation to South India. He should have told the same thing. But our Parliament Affairs Minister causing aspersion on him and the opposition. It's not fair on the part of the Parliament Affairs Minister, sir. In addition, sir, there is an insult to injury, sir. What is that insult to injury? Sir, 5 years back, our Prime Minister laid the foundation stone to AIMS Madurai. 5 years back, 2019, he has laid the foundation stone. He has laid 1 brick. Over that brick, nothing has happened. So far, all the aims, those have been announced by the Honorable Prime Minister of India in 2019, have come up
and they are working, they are established. And what has happened in Madurai? Madurai is not seeing the day of the, it is in ground zero, sir. Only the common walls looking at us wherever we go there. So it is a sad part. We want to express the concern over this, and that is why we are calling the central government is having step by the attitude towards Tamil Nadu, sir. This is not fair on the part of, are we in this federal setup or not, sir? So that is what I want to climb over that, sir. The 1,800 crore project, the AIMS project, it would have been established long back, sir. Just like other AIMS establishments, sir. Sir, 50 lakhs they are spending for in a budget. Is it not possible to provide 300 to 400 crores every year, sir, to complete this project? So by this time it would have been completed, established. One day after a deep slumber, the health minister came to the parliament. To a question he has answered, sir, we have done it. 50 students have been admitted in Ramanathapuram College. Where is it? 120 kilometers from Madurai. The AIMS is, he says, the AIMS is now working. Where it is working? In Ramanathapuram, 120 kilometers from Madurai. Yes, its head office is Pondicherry, 400 kilometers away from Madurai. This is the state of affairs for the things which we are craving for years together, sir. This is not fair on the part of the union government to just leave Tamil Nadu in high and dry, sir. Sir, after the lapse of so many years, I am asking, what is happening, sir? Say the Samudram project. 2005, the foundation stone was laid by Dr. Manmohan Singh, sir. 2005. The project was in progress. They made a stay. Court has made a stay on 2008 because of intervention of some case on communal basis. You know, the entire India knows what has happened. Now, last year, the government of India itself gone to the court saying that there is no man-made structure. They can go ahead with the project. What has happened? Nothing is happening, sir. The project is not yet taken up. Even the government of India is keeping lukewarm, sir. This is a project of Tamil dreams, dreams of Tamil national. More than 160 years, Tamil dreams has not yet been made good, sir. It has not been accomplished. It is a dream of Dr. Anna. It is a dream of Dr. Karnanidhi. It is a dream of K. Kamaraj, sir. What has happened, sir? Nothing. They are least bothered about Tamils and Tamil pride, sir. Sir, the government has renamed National Maritime Development Policy. The National Maritime Development Policy was envisaged during my period when I was a shipping minister. More than 120 projects have been identified. During those times, each and every day there will be a program, there will be a progress, there will be a development. But what has happened? After the NDA government came in, they just changed it. Yes, they changed the name of National Development Program, Maritime Program, into Sagarmala. What has happened to Sagarmala, sir? Sagarmala is without any link. Sagarmala is in the eastern coast, it is Sagarmala is there. In western coast, Sagarmala is there. But to connect the eastern coast and western coast, there is no link. If they want to link the Sagarmala in fulfill, it has to be, say the Samudra should be established, sir. They are not going to do it. That is why the Sagarmala will not accomplish, sir. Sir, in para 7 of the President address, she has said, Madam President has said, I quote, this Parliament also enacted a law to grant citizenship to persecuted minorities from our neighboring countries. Neighboring countries means Pakistan, Afghanistan, and Bangladesh.
All other communities have been permitted and they are getting the citizenship. Whereas Muslim community is not getting it, sir. Whereas Tamil minority from Sri Lanka is not getting it, sir. This is the state of affairs for the minorities, sir. CAA, sir, Citizenship Amendment Act came in. Mr. Santanu, the state minister, has said last week, within a week's time I am going to implement. Where is the possibility? West Bengal laws inclined to have this CAA in place in West Bengal. Mamata Banerjee already declared. Dr. M.K. Stalin has already declared, I am not going to implement in Tamil Nadu. Where is the possibility? Within a week's time, minister, and moreover, other states are also not inclined to pass, have the CAA in their state, one state. But minister is simply said, within a week's time, I will do it, sir. Because of voting by the ADMK, the 13-member voting by the ADMK in Rajya Sabha, the bill has been passed. But for the 13 votes, this bill would have not been passed. But ground reality, they should understand. The ruling party should understand. Because of the ruling party's friendship with the ADMK, the bill has been passed. Now it could not be passed. My leader, Dr. Stalin, has collected 2 crores signature campaign. He has collected 2 crores. Send it to President of India not to approve this CAA. She has not done it. And more than 2, he has also resolved in State Assembly to not to have the CAA. But in spite of it, central government has gone in. Sir, as per para 5 of Madam President has said, I quote, last year any government has given government jobs. My government has given government jobs to lakhs of youth in mission mode. Mission mode, he says. In mission mode, he has given lakhs and lakhs of jobs. So what has happened? 2014 itself, Honorable Prime Minister of India, he came all the way to Chennai. He has declared, I am going to give 2 crores jobs every year. After 10 years, that is why Mr. Gogay has asked, what has happened to the 20 crores jobs? 20 crores jobs, these should have provided by now. 10 years have passed. Not even a single job has been provided by him on this particular scheme. And moreover, sir, Metro project in Tamil Nadu, second phase is going on. Second phase, without the help of the central government, it is in progress. It is in progress means we could not proceed because of want of money. What has happened? Metro project, Government of Tamil Nadu has written 3-4 times. He met the Prime Minister twice or thrice. But in spite of it, Government of India is not coming forward to help us. What he said in his President address, Madam, he said, para 15, Madam President has said, I quote, metro facilities limited to only 5 cities. Now it is 20 cities. They can boast, government can boast that as if they are doing in 20 cities, but neglecting the Tamil Nadu project, sir. Tamil Nadu project, metro project, second phase is lingering. They are not helping us. This matter has to be looked into, sir. In para 11, one tax, one nation. They have got slogans are there. One tax, one nation. One tax means GST. GST, all the things, they have provided GST. They have abolished all the other taxes except petroleum products. For diesel and petrol, the GST is not there. Why? See, government is mopping money because of the GST, because of other tax, multiple tax. They are not providing GST. If they would have provided even higher slab, 28%, the petrol and diesel would not go beyond 85 and 70 paisa.
This is what I want to insist. I demand that it should be made, the petroleum product should be provided with GST tax only, sir. So LPG, 5% tax they have put. LPG should be zero down. There should be 0% for the LPG. It is not correct on the part of the state, the union government to sell at 900 rupees per cylinder. Whereas it was in UPI, it was only 400 rupees, sir. This is not correct on the part of the state, central government. Sir, on the final thing, EPF pensions, Employee Provident Fund pensions. Sir, 70 years they work in government. Even after 70 years of prime age, they retire. After the retirement, what is happening, sir? They are getting paltry amount of 1,000 rupees only as pension, retirement pension. Sir, even in Tamil Nadu, our own household, women, they are getting 1,000 rupees per head, 1,000 rupees each and 1,000 rupees per month. 1,000 rupees month they are getting. But whereas the industrial workers, they are not getting, they are only getting 1,000 rupees after serving 15 years, 20 years like that. So this matter has to be dealt immediately, and they have to be given increased pension, at least up to 3,000 rupees, sir. This is my demand, sir. With this, I want to say, finally, I want to say that many governors, sir, in India, many of the governors, they are not, they think there is a halo behind the head. Halo behind their head, as if they are not, they won't care about what is mentioned in the Constitution. They don't know about the Constitution, and they think they are the ultimate of everything. This is not fair, sir. Actually, many times they just day for yesterday on 31st, Madam read each and every syllable of the government the policy note, whereas governors won't read it, and moreover they edit and read. Recently, one particular governor has read only the last line of the governor's address and came out. And the worst part is, they are simply opposing the state government, much over and above than the opposition of the particular state. The opposition, they are used to marshalling on this elected government. Crores and crores of mandate, the public gave it to the elected government. Whereas the elected government is just belittled by the governor, and governor is making fun of it, and he says, many times, he competes with the opposition to scold the party in power. This is not fair on the part of, so if any governor is doing some mischievous act, this must be, the Madam President should pull up and see that it's terminated forthwith, sir. This is my final demand, sir. Thank you very much, sir. आपकी अनुमति से एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर पूर्व वक्ता के बारे में आपके ध्यान में लाना चाहती हूं, सर। रूल 352 और 353, और इन दोनों रूल्स के संरक्षण में सर मेरे 3 निवेदन हैं आपसे। एक, महामहिम राष्ट्रपति जी को सेंगोल, पवित्र सेंगोल की छत्र छाया में आपने हम सब की ओर से स्वागत किया। उनके उद्बोधन के लिए हम सब उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं, किंतु सदन और महामहिम राष्ट्रपति जी के मध्य में जो पत्राचार है, निमंत्रण अथवा सदन को संबोधित करने वाले जितने भी व्यवस्थाएं हैं, उस पर पूर्व वक्ता गौरव गोगोई जी ने जो आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं, मैं आपसे आग्रह करती हूं कि उन आपत्तिजनक टिप्पणियों को आप एक्सपंज करने की कृपा करें। दूसरा, सर, बार बार सदन की कार्रवाई और पीठ के द्वारा दिए गए जितने आदेश हैं, उनका जिस प्रकार से यहाँ पर उस सांसद ने अपनी राजनीतिक व्यवस्था के लिए दुरुपयोग किया, आपके बार बार टोकने के बावजूद वो भी
आपत्तिजनक व्यवस्था है जिसको मेरा आपसे आग्रह है कि आप एक्सपंज करें। मेरा दूसरा आग्रह सर, इस लोकतंत्र की ये गरिमा है कि प्रधानमंत्री पद पर राष्ट्र के हमारे नागरिक चुनकर एक व्यक्ति को विद्यमान करते हैं। उस पद के लिए, उस गरिमामय पद के लिए महाराज शब्द की जो उपाधि आज यहाँ पर एक सदन में सदस्य ने इस्तेमाल की, उसको भी आप एक्सपंज करें। और मैं इतना कहना चाहूंगी, उनका द्वेष नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो सकता है, लेकिन गरिमा विहीन टिप्पणी प्रधानमंत्री पद के लिए ना हो, इससे संसद भी आहत होता है और वो वोटर भी जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर अपने प्रतिनिधि को सदन में भेजता है। और अंतिम सर, मेरा निवेदन आपसे 352 और 353 के संदर्भ में, ये बार बार इस वक्ता ने कहा कि हमें शर्म है इस बात की कि हम हिंदुस्तानी हैं, ये गौरव, हम इसकी अनुभूति हमें 2014 से पहले नहीं थी। मैं कहना चाहूंगी सर, मैं स्वयं इस सदन में साक्षी हूं, इस सदन में एक ही सांसद था जिसने भारत तेरे टुकड़े होने के इस वाक्य का समर्थन सदन से बाहर किया। एक भी सांसद भारतीय जनता पार्टी का ऐसा नहीं है जिसने अपने पूरे जीवन काल में कभी भी इस बात का गौरव ना किया हो कि हम इस देश में जन्मे हैं और हम हिंदुस्तानी हैं। तो इस प्रकार का आक्षेप जो लगाया गया है, मेरी आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इसको एक्सपंज करें या अपनी राजनीति बाहर करते रहें, लेकिन राष्ट्रनीति का अपमान इस सदन में नहीं होगा। चलो छोड़ो, काकोली घोष बुलाया। Thank you, Honorable Speaker, sir. I stand here on behalf of All India Trinamool Congress in great reverence towards the speech of Mahamahim Rashtrapati Srimati Draupadi Murmu ji. But I also question why it was the first time that she came here and why not on the day that this grand building was inaugurated. What is the reason why she was not inaugurated is a question. She was not invited for the inauguration is a question. The other question is that as this speech comments lots on the Nari Shakti here, we would like to say that the Nari Shakti Adhiniyam that has been passed by this honorable house, there was a demand to increase the reservation beyond 30%, as my leader Mamata Banerjee has done in West Bengal, without reservation being in force at that time. So here, when the reservation is being passed, it should cross that number. And at this juncture, when even day before yesterday, women have been molested and killed in the northeast part in Manipur, can we really say that Nari Shakti is being revered and Nari Shakti is being propagated or giving equal opportunity in this country? I don't think so. And beyond that, as Mahamahim Rashtrapati ji said, she was talking about the Constitution. I would like to quote here that the fabric of our Constitution is being violated every day in the nation today. The nation is seeing an unforeseen betrayal to democracy and indifference to respect for individual liberty, a deafness and blindness to the cries of the tormented. But we don't see any action being taken by this government. I take this opportunity to congratulate the scientists of this country. It was the scientists who successfully carried out the Chandrayaan mission, the Aditya mission, and it is through their efforts that India became the first country to hoist the flag on the northern pole of the moon. Southern pole of the moon, and nobody else, no politician. It is the hard work of the scientists who might have stayed away from many family reunions, might have given up on many nights of family life to take our country to this glory. And in the same voice, I would like to request the government that the draconian notice given by the National Medical Commission, the NMC, to the doctors of service all over the country
to act like bonded laborers, and they have to sign at 9 o'clock in the morning and sign at 4 o'clock in the morning. Now, doctors cannot be compared to any other professional. Not even the people who are working so hard. You know, we have the judicial system, we have the teaching system, we have the advocates, but they have a time of working. But doctors can be called at middle of the night 2 a.m. to go and treat a patient of arrhythmia. There is a patient of atrial fibrillation. If all doctors of the country put down their pen, they do a pen down or a stetho down, so to say, one day, every doctor of the country, then who is going to treat the patients, the emergency patients? When a doctor is called in the middle of the night to do a cesarean to save a mother and a child, a mother who's suffering from preeclamptic toxemia, the next morning he cannot be expected to be present in the hospital at 9 o'clock because he was working till 5 o'clock in the morning, between 2 and 5. So this NMC should not be allowed to bring this notice and serve it on the doctors. I oppose it completely. It has happened and the notice has reached the different hospitals of the country. I would also like to bring to the notice here that in this country there is a demographic deficit. Nearly 44% people who are seeking jobs are jobless. In the democracy there is a shift of electoral autocracy. And as far as the job market is concerned, in the last one fiscal, 135 million labor force was added, which amounts to 450 million people looking for jobs, but there is no job market. There is no job, and this is the first time possibly in independent India that more than 45% reverse migration is happening. People are going away from the cities and towns towards the villages, looking for jobs in the farmland. But there also, the farming sector is being affected adversely by the increasing FDI. And the farmers are also committing suicide. Farmer suicide is rising so much that it is the report of the NCRB that the farmer suicide is approximately rising to 1100 to 90, one suicide per hour. This is a very serious note to be taken care of, that we are not by the Nari Shakti, we are not standing by the farmer under the regime of this government. The speech, I quote Honorable Rashtrapati Ji when she says that this government has made a contribution towards the wealth creators and believes in the private sector. Then why more than 1 lakh families who were engaged industrially in this country as wealth creators, these families have given up their citizenship of this country and relocated to other countries? Is it in protest against the violation of human rights and respect to diversity in this country? It's a serious question. Today, another thing that she quotes, I quote her, 46% of the world's total real-time digital transaction take place in India. Now, this digital transaction is also opening a death trap. Due to this digital transaction, suicide rate among the adolescent and young adults is increasing so much. Where she says 1,200 crore transactions were done through the Unified Payments Interface, UPI, it has become the center of the biggest UPI scam and the government doesn't bother. And how is it happening? It is happening because the apps, there are apps which are being put up. I don't want to name the country, by a different country, a neighboring country, China. Not so friendly country. And due to, there is no vigilance over those apps. Due to this, there is a major rise in suicides. And young people are falling into the trap, going into the apps, and they are applying for loans,
and when they can't fulfill repayment, they are committing suicides. She talks about the high-speed trains. But what about the tracks? These tracks in the country were laid in the British Raj. After that, the tracks have not been repaired. पटरी इतना सरा हुआ है कि जानलेवा दुर्घटना होती रहती है, और इसके ऊपर वंदे भारत चलाए हम या फास्ट ट्रेन्स चलाए तो एक्सीडेंट्स होते रहेगा और we will lose so many people. So without repairing the tracks, without laying new tracks, we should not be going in for these fast moving trains. Then again, the coronary stents, knee implants, cancer medicines, prices have been reduced. Maybe the government is self-congratulatory on that, but they don't mention that more than 12% increment in costs of many life-saving drugs have happened, which is making it very difficult for those patients who have to take medicines related to hypertension, medicines related to diabetes, because diabetes is like rampant in India. India might be called the diabetic capital of India. These medicines have increased in the whole of the nation. Highest number of diabetic cases are in our country. Mahamahim Rashtrapati ji also talks about Nari Shakti again, but women are paraded unclothed like we've seen in Manipur. They have been manhandled and nothing happened. This government did not interfere into Manipur. Even day before yesterday we've seen 3 people being shot dead. And last month we saw open fighting on the roads in Manipur, in Imphal. Business transaction is at its nadir in Manipur and also in the other eastern states. So what is the government doing about it? And we would also like to point out that if we want the women folk to come forward further, their remuneration should be paid on time. Time and again I have mentioned it here, written personally to the Honorable Minister here of Education, that the premier institutes are seeing their students, their research scholars, go without pay. Places like Indian Institute of Technology, IITs, the researchers, the PhD scholars are not getting paid. That is not mentioned here. The other thing is about the daily wage earners. It was decided that they would be given 100 days of work. But in the budgetary allocation of this very fiscal, their provision is only for 42 days. The total amount required would be 2.72 lakhs, but only 60,000 crore has been given. Why the states are not getting paid? And these 100-day workers, as in West Bengal, we have the 100-day workers who have not been paid for months together, and they have worked. The statute is that they should be paid after finishing the work within 15 days. Now months have turned up, but they have not been paid. These people are being tortured family-wise because they cannot run their home and hearth. The country should sit up, the government should sit up and take into cognizance the poor people of West Bengal who are suffering so. Farmer death by suicide in 2022, as per NCRB report, is rising, on the rise. 11,290 was the number in 2022. And when you say that making farming more profitable is the intention of this government, why is FDI increasing? The FDI, the direct investment of foreign party into the farming sector, 2016-17 was $727.22 million. 2019 to 2020, it was $904.70 million. So it shows that whatever farming is in the hands of the farmer is not getting any benefit out of it because FDI is entered the farming sector also. Then we see that the government talks about the grain storage plan. In 2020-2023, crop produced in the country was 3,296.87 lakh tons.
But the storage capacity of the country is only 145 MMT. That is nearly half. So we have capacity to store only half of the grains we produce. And the other half is rotting on the streets in the rain and the sun. So we are not equipped to give respect to the produce of the farmers. Whatever the farmers doing their own toil, they are producing their own crops, not getting any help from the government at all. And even as far as northeastern states concerned, I don't know how this could be included in the speech, because the northeastern states have no development. There is no proper facility for the medical treatment. There is no proper facility for the education. I myself have visited 3 to 4 out of the 8 sister states. And the condition is so pitiable that the children don't have schools to go, women don't have proper facility for health care. So Northeast is not we can boast of. This should not have found a place here. And again then, where their renewable energy installed capacity has found a 4th place, it is congratulatory. But there is no mention about the grid conversion of the renewable energy that is formed through the renewable sector. Then again, we are talking about here that previously we had 7 AIIMS and 390 medical colleges. But now the number has increased to 16 AIIMS and 315 medical colleges. But where are the faculty? I know it very well, being a doctor myself and in the teaching line myself, that this NMC's directive will further shrink the faculty sector. They're going to leave their jobs if NMC doesn't withdraw their draconian directions. We don't have faculty. Either you organize teachers, get them from abroad, pay them properly. The doctors are not paid properly in the country. The doctors are working throughout the day and night. When the doctor's telephone on the table, bedside table rings at 3 a.m. in the morning that there is a known patient who's getting pain in the chest, the doctor will not look at anything else, not think of anything else. He will just get up, take his car and go to the patient to give a cardiac resuscitation. But the doctors are being underpaid. And this NMC regulation 9 to 4, this is like an added tension for the doctors. So more people will leave the job. There is no faculty. You are making college buildings. Where is the faculty to teach the students? Students with a lot of dream, they will get into the medical line to learn about medicine, to stand by patients, to treat them and get them well. But there is no teacher. There is no infrastructure. The building is not the infrastructure in medicine. The equipments are. In the medical infrastructure, we have to have the technicians who teach you how to put the Ryle's tube in a patient, or how to do a canal and start the IV fluid. We don't even have that. So the manpower and the infrastructure is lacking. Having building for AIIMS will not suffice. And then again, we talk about the historical places which are being renovated, and there are many sites which are being discussed to be upgraded. In my constituency, there is a place called Chandraketugarh. This Chandraketugarh is supposed to be nearly 3,000 years old. And after repeated requests to this government, to the central government for 10 years, nothing happened. Then my chief minister, Honorable Mamata Banerjee, allotted funds by which we got a site museum made, and we have exhibited the things that we found, the relics in Chandraketugarh. A small museum is working there. I worked 10 years very hard to get this museum put up, but the excavation has stopped. This was either in the Gupta period or in the Mauryan period, and it had a port city also, showing relics and important structures to prove that there was business through the river up to Europe, because we found the seals, we found the statues. But the excavation has stopped in Chandraketugarh by ASI. So the government, if you say that they are doing a lot, then the first thing they should do is
take up Chandrakitugarh as a heritage site, as a world heritage site. So as you say, put forward arguments and Mahamahim Rashtrapati ji comes and reads, I would like to say the government is really not doing justice to all these sectors, to all the segments of people in the country and all the farmers, industrialists, students and Nari Shakti. Thank you, sir. Thank you very much. Next speaker, Dr. Kirtbhai Solanki ji. सभापति जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण की चर्चा पर बोलने के लिए आपने मुझे मौका दिया है। सभापति जी, मैं आज डॉक्टर हीना विजय कुमार गावित जी के प्रस्ताव के समर्थन में यहां मेरे पार्टी भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं उपस्थित हुआ हूं। और कुछ समय पहले हमारे कांग्रेस के मित्र ने इस सदन के बारे में और संविधान के बारे में जो टिप्पणी की है, मैं उसका एक ब्रीफली जवाब देना चाहता हूं और इसके बाद मैं अपनी बात को समाप्त करना सब पूरी आगे बढ़ाऊंगा। हमारे मित्र ने यहां कहा, जो प्रधानमंत्री जी के बारे में जो शब्द कहा और जो संसद की गरिमा के बारे में कहा, मैं उसकी आलोचना करता हूं। हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में मैं बताऊं तो जब देश में 2014 में ये पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने थे, तब जब वो संसद भवन के द्वार पर गए तो उनके अपना संसद भवन के प्रति मत्था टेककर संसद भवन के प्रति अपना सम्मान करके वो दाखिल हुए थे। मैं समझता हूं कि आज तक कोई भी प्रधानमंत्री ने इस प्रकार से संसद भवन में अपना मत्था नहीं टेका है। मैं दूसरी बात आपको कहना चाहता हूं कि मैं गुजरात से सांसद हूं, अहमदाबाद से हूं, और 2010 में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जब तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने उस वक्त संविधान की बहुत ही धज्जियां उड़ रही थी, तब उन्होंने सुरेंद्रनगर में से संविधान की एक यात्रा निकाली थी। संविधान को हाथी की अंबाड़ी पर रखकर प्रधानमंत्री जी ने उस यात्रा की अगुवाई की थी और इसमें मैं भी उपस्थित था। करीबन 2 किलोमीटर चलकर संविधान के प्रति आदर करने वाले कोई व्यक्ति है तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। जहां तक संविधान की बात करते हैं, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि संविधान के रचयिता, संविधान के शिल्पी बाबा साहेब आंबेडकर का अगर किसी ने सबसे ज्यादा अपमान किया है तो हमारे कांग्रेस पार्टी के मित्रों ने किया है। बाबा साहेब आंबेडकर का तैलचित्र जहां संविधान जहां स्वीकृत हुआ था, वो संसद भवन के जो सेंट्रल हॉल में बाबा साहेब आंबेडकर का तैलचित्र नहीं था, वो लोगों ने किया था। इतनी बड़ी देश की पाटनगर राजधानी में घर नेताओं का उनका स्मारक या मेमोरियल था, मगर बाबा साहब आंबेडकर का कोई मेमोरियल नहीं था। 15 जनपद के पर जो बाबा साहब आंबेडकर विश्व मेमोरियल अगर किसी ने स्थापना की थी, अगर किसी ने उसका शिलान्यास किया था, अगर किसी ने उसका उद्घाटन किया था, तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। इसी प्रकार 26 अलीपुर रोड जहां बाबा साहब आंबेडकर ने अपने अंतिम सांस लिया था, और वो एक निजी प्रॉपर्टी थी, जो बंगला था, वो अटल बिहारी वाजपेयी ने वहां संकल्प किया था हमारे प्रधानमंत्री ने कि हम यहाँ बाबा साहेब आंबेडकर का हम यहाँ मेमोरियल बनाएंगे। उसके बाद वो सरकार चली गई, वो दायित्व नरेंद्र भाई मोदी जी के पास आया, और आज उन्होंने 26 अलीपुर रोड पर जिस प्रकार के संविधान का पुस्तक के आकार का वहां जो आर्किटेक्चर के तौर पर वहां एक भव्य मेमोरियल बनाया है, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बनाया है। कांग्रेस के मित्रों ने बाबा साहेब आंबेडकर को जो उनकी दुहाई देते थे, उनको हर पल पर उन्होंने उनका अपमान किया था। आज यहाँ इस सदन में महामहिम राष्ट्रपति जी के जो अभिभाषण की चर्चा पर मैं बताना चाहता हूं कि नए संसद भवन के कक्षा में इकट्ठे सभी सांसदों के दोनों सदनों के माननीय सदस्यों को अपने 75 मिनट के संबोधन में
महामहिम राष्ट्रपति जी ने पाकिस्तान और चीन के स्पष्ट संदर्भ में आतंकवाद और विस्तारवाद को मुंह तोड़ जवाब देते हुए हमारे सशस्त्र दलों को सराहना की थी, उनको सलामी की थी। मैं महामहिम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। माननीय महामहिम जी ने कहा था कि पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कानून पेश किए हैं और संसद का दायित्व है कि कानून को पारित करना, पॉलिसी को बनाना, और जो कानून पास किया है उसमें मैं आपको गिनाऊं तो नारी शक्ति वंदना भी अधिनियम, और इसकी वजह से हमारी 50% आबादी को विधानसभा और लोकसभा में प्रतिनिधित्व मिलेगा। इसके लिए अगर किसी ने किया है तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जहां तक हमारी न्याय संहिता का सवाल है, जो नई न्याय संहिता है, पहले हम गुलामी की मानसिकता रूप हम न्यायपालिका का हम जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसका एक इंटेंशन किसी को क्रिमिनल है किसी को डिक्लेयर करना था, जब हमारी सरकार ने न्याय संहिता का वहां पालन किया है। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम यही संसद ने पारित किया है। जन विश्वास अधिनियम, जम्मू और कश्मीर में आरक्षण, खास करके ओबीसी के लोगों को आरक्षण देने का अधिनियम इसी संसद में पारित हुआ है। जन विश्वास अधिनियम ने विभिन्न कानूनों के तहत 183 प्रावधानों को अपराध मुक्त कर दिया है। राष्ट्रपति जी ने इन्हें लागू करने में सहयोग देने के लिए हमारे सभी सांसदों का भी उन्होंने सराहना की थी। संसद की संयुक्त बैठकों को संबोधित करते हुए हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी ने कहा था कि श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने भारत में तीर्थ स्थानों और ऐतिहासिक स्थलों के विकास पर बहुत बड़ा जोर दिया है और उन्होंने करके दिखाया है। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में करोड़ों करोड़ों देशवासियों के श्रद्धा के प्रतीक और हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का भव्याति भव्य मंदिर, राम मंदिर अयोध्या में अब वास्तविकता बन गया है। जैसे कि हम सब जानते हैं 22 जनवरी को प्रधानमंत्री के कर कमलों से वहां उनका प्राण प्रतिष्ठा किया। हर भारतीयों का एक जो सीना गौरव से चौड़ा हुआ वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। इसके लिए मैं पूरे देश की ओर से हमारे प्रधानमंत्री जी का मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जहां तक विकसित भारत की कल्पना है, प्रधानमंत्री जी की एक कल्पना रही है कि इस भव्य इमारत ज्ञान के 4 मजबूत स्तंभों पर खड़ी की जाएगी और ये स्तंभ है गरीबों, युवाओं, अन्नदाता यानी कि हमारा किसान और नारी शक्ति यानी कि महिला। भारत की अगर आर्थिक स्थिति की मैं बात करूं तो भारत आज आर्थिक विकास के 5वें पायदान पर आ गया है। इंग्लैंड को हटाकर हम 5वें पायदान पर आया है, जिन्होंने हमारे पर सालों तक हमारे पर राज्य किया है। ये हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है। कुछ ही समय में भारत विश्व में आर्थिक रूप से 3रे पायदान पर आने की पूरी शक्यता है। भारत आज आर्थिक रूप से पूरी दुनिया में एक ब्राइट स्पॉट की तरह जाना जाता है। राष्ट्रपति जी ने बताया कि भारत ने लगातार 2 तिमाहियों में 7.5% से अधिक विकास दर यानी कि जीडीपी बनाई रखी है। भारत हाल के वर्षों में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है। भारत नाजुक 5 से शीर्ष 5 अवस्था में परिवर्तन भारत की इकोनॉमी है। यह हम सबके लिए गौरव का विषय है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार को मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। पिछले 10 वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर ऊपर आ गए हैं। मैंने देखा था कि एक प्रधानमंत्री थे कांग्रेस की, उन्होंने नारा दिया था गरीबी हटाओ। गरीबी नहीं हटी थी। अगर गरीबी हटाने का लिए किसी ने कार्य किया है, किसी ने धरातल पर कार्य किया है तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। पिछले 10 वर्षों में निर्यात एक 450 बिलियन अमेरिकन डॉलर से बढ़कर 775 बिलियन
अमेरिकन डॉलर हो गया है। ये भारत का प्रभुत्व पूरे देश में और पूरे विश्व में लहरा रहा है। जहां तक विदेशी मुद्रा भंडार वर्तमान में 600 बिलियन अमेरिकन डॉलर से अधिक हो गई है। ये हम सबके लिए बहुत बड़ा गर्व का विषय है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन का उत्पादक है। और पहले हम देखते थे कि मेड इन चाइना, मेड इन जापान, मेक इन इंडिया की नीति के तहत आज भारत जो प्रोडक्शन में जिस प्रकार से दुनिया में अव्वल स्थान पर जा रहा है, इसके लिए पूरे देश में एक नया रोजगार मिलेगा। और इसके लिए हमारी सरकार का, हमारे महामहिम ने उनको धन्यवाद दिया है। ये सफलता हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की वजह से है। जहां तक डिजिटल इंडिया में भारत समग्र विश्व में अग्रसर रहा है, इसकी वजह से भारत में जीवन और व्यवसाय को बहुत आसान बना दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी दे दी है, जो एक नए युग का डिजिटल बुनियादी ढांचा विकसित करेगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत इसमें अग्रसर रहे। जहां तक मेडिकल का सवाल है, मैं स्वयं एक डॉक्टर हूं, और जहां तक मेडिकल का सवाल है, चाहे सिकल सेल एनीमिया हो, हमारे आदिवासी भाइयों में एक बीमारी पाई जाती है। इस सरकार ने मिशन मोड पर सिकल सेल एनीमिया को नाबूद करने के लिए एक जो योजना बनाई है, मैं समझता हूं कि ये हमारे गरीब पिछले पायदान में बैठे हुए व्यक्तियों के लिए बहुत ही आशीर्वाद रूप योजना होगी। जहां तक कोविड महामारी का सवाल है, कोविड महामारी के दुनिया के बड़े बड़े देश जिनका हेल्थ केयर स्ट्रक्चर बहुत ही मजबूत था, वो देश भी बिखर गए थे। तब हमारे यहाँ बहुत लिमिटेड हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर होते हुए भी जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के जो अगुवाई में हमने उसका मुकाबला किया, और मैं तो स्वयं डॉक्टर हूं, मैंने देखा है कि चाहे वैक्सीन अगर कहीं से आता था तो वो विदेश से आता था वैक्सीन, चाहे वो स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन हो, और भारत में कोई वैक्सीन 25 साल के बाद आया था, कोई वैक्सीन 40 साल के बाद आया था, कोई वैक्सीन 20 साल के बाद आया था। मुझे बहुत फक्र होता है, मुझे बहुत गौरव होता है कि इस देश में बना हुआ वैक्सीन की वजह से आज भारत में हम सब लोग बिना मास्क अगर यहाँ बैठे हैं तो हमारी सरकार की वजह से है, हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी की अगुवाई की वजह से है। और हमारे यहाँ हमारे देश में 2 वैक्सीन बने हैं। और जहां तक वैक्सीन इंप्लीमेंटेशन का सवाल है, आज अमेरिका जैसा बड़ा देश में भी 100% लोगों को वैक्सीन का टीकाकरण नहीं किया गया है। मुझे बहुत ही इस बात का मैं गौरव महसूस करता हूं कि इतनी विविधता वाला देश, चाहे मरुभूमि हो, चाहे पर्वतीय प्रदेश हो, चाहे दूर सुदूर के प्रदेश हो, वहां भी जाकर 2 वैक्सीन देने का हमारा हेल्थ कर्मियों ने जो कार्य किया है, मैं समझता हूं कि बहुत ही बड़ा कार्य किया है। और इसके लिए मैं सरकार का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और ये जो वैक्सीन बनाने का, कोविड वैक्सीन बनाने का कार्य हमने जो किया है, मैं समझता हूं कि ऐसा कार्य न भूतो न भविष्य होता है। और एक डॉक्टर होने के नाते मैं इसके लिए गौरव महसूस करता हूं और हमारी सरकार को मैं वंदन करता हूं। जहां तक कृषि का है, कोविड-19 महामारी फैलने के बाद 80 करोड़ लोगों को राशन, निःशुल्क राशन प्रदान किया गया। और कल के बजट में इस राशन को 5 साल और उसको बढ़ाने के लिए किया गया है। इतना बड़ा अगर कार्य है, हमने देखा है कि जब महामारी फैलती है तब महामारी से जितने लोग नहीं मरते हैं, उससे ज्यादा लोग वो भूख की वजह से मरते हैं। तब इस सरकार ने लोगों को अन्न दिया है, लोगों को राशन दिया है, उनका अधिकार का राशन दिया। इसके लिए सरकार को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। पीएम किसान सम्मान निधि हो या पीएम फसल बीमा योजना हो, वो कई योजनाओं में जिस प्रकार से सरकार के द्वारा लोगों के लिए, किसानों के लिए जो कार्य किया है, वो काबिल तारीफ किया है। पिछले 1 दशक में किसानों को सस्ती खाद उपलब्ध करने के लिए 11 करोड़ रुपए का खर्च, 11 लाख करोड़ रुपए का खर्च इसी सरकार ने किया है। और इसके लिए किसानों की आय दोगुनी होगी। भारत के किसान
सरकार के साथ है। और ये यहाँ है भारत का जहाँ रक्षा का सवाल है, तो राष्ट्रपति जी ने कहा कि भारत के रक्षा बलों की पहली बार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति की गई। 4 दशकों में प्रतीक्षित वन रैंक वन पेंशन लागू किया गया और पूर्व सैनिकों को लगभग 1 लाख करोड़ रुपया का उनको फायदा मिला। ये सरकार के द्वारा किया गया। ऐसे तो बहुत सारे हैं। जहां तक शिक्षा का सवाल है, एससी और ओबीसी छात्रों का नामांकन करीबन 444% बढ़ा है। और जहां तक हमारे ट्राइबल स्टूडेंट का सवाल है, उनका नामांकन 65% बढ़ा है। ये सरकार की वजह से किया गया है। सरकार ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करके 14,000 से अधिक PMModi स्कूलों पर काम कर रहे हैं। जहां तक स्वास्थ्य का सवाल है, आयुष्मान भारत, मुझे पता है कि गुजरात में प्रधानमंत्री जी ने ये योजना चालू की थी और ये योजना को आगे बढ़ाते हुए आज पूरे देश में करीबन 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को उसका फायदा पहुंचा है। और गुजरात सरकार को मैं बधाई इसलिए देता हूं कि गुजरात सरकार ने इसकी राशि 5 लाख प्रति परिवार को बढ़ाकर 10 लाख प्रति परिवार को किया गया है। इसके लिए मैं हमारी गुजरात सरकार को भी मैं बहुत ही बधाई देता हूं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर G20 में अफ्रीकी संघ के स्थायी सदस्यता सुनिश्चित करने प्रधानमंत्री की अगुवाई में जो कार्य किया, इसके लिए भी हमारे अफ्रीकन कंट्री प्रधानमंत्री जी के बहुत ही उनका सम्मान करते हैं। सामाजिक न्याय पर सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक भी आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया है और इसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री जी का और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और हमारे महामहिम ने ऐसी कई बातें अपने वक्तव्य में किया है। मैं अपनी बात समाप्त करूं इसके पहले मैं कुछ पंक्तियां बोलकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। ये पंक्तियां सिर्फ मेरे हृदय में नहीं है, 140 करोड़ भारतवासियों के हृदय में ये पंक्तियां गूंज रही है। और ये पंक्तियां मैं आपके साथ साझा करता हूं कि सपने नहीं हकीकत बुनती है, सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं। और इसी शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। नेक्स्ट स्पीकर डॉक्टर BV सत्यवती जी। Thank you very much for allowing me to participate in the motion of thanks to Honorable President's address from YSR Congress Party under the dynamic leadership of Sri Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu. First of all, I congratulate the government for its noteworthy achievements, including positive developments in Jammu and Kashmir, ensuring a safe and peaceful environment for its residents, and the successful launch of the Aditya mission, reaching a distance of 15 lakh kilometers away from Earth. India's groundbreaking feat of placing its flag on the southern pole of Moon and opening the space sector to startups is commendable for fostering innovation. So I also commend the government for steering India to become the fastest growing majority economy amidst a global crisis, maintaining a growth rate exceeding 7.5% for 2 consecutive quarters. Chairperson sir, however, I would like to take this opportunity to offer a few suggestions concerning the key points highlighted in the President's speech, particularly in relation to the role of Andhra Pradesh in the future of India's growth. First one is regarding food and public distribution. So increasing coverage of ration cards under National Food Security Act 2013. Commending the government's commendable initiative to provide free ration to 80 crore people during the COVID-19 pandemic, along with the recent extension for 5 more years, there are critical issues regarding the coverage of the center's ration cards under the National Food Security Act 2013 NFSA in Andhra Pradesh that need immediate attention. So the challenge of insufficient coverage under NFSA 2013 in Andhra Pradesh,
primarily due to relying on the 2011 census for ration distribution has been discussed in various center-state meetings. So, pursued with the Department of Food and Public Distribution, DFPD and Niti Aayog, the state has issued rice cards and provided rations to over 56 lakh families, incurring a cost exceeding rupees 5,527 crores. Niti Aayog recommends reallocating unutilized quota, urging prompt action from the Ministry of Statistics and Program Implementation for a fresh household consumption expenditure survey, HCES, and comprehensive examination by DFPD. So, a revision in the methodology for identifying NFSA beneficiaries and a new census are urgently requested, along with government compensation for expenses incurred in extending benefits to those excluded by the central government. This is the demand from the state of Andhra Pradesh. And the second point, Honorable Chairperson, sir, climate change vulnerability. So, climate change poses a significant threat to India, manifesting in disruptive weather events from El Nino to record-breaking heat waves. This overarching concern impacts various facets of the country, including threat to food security, extreme weather events, cyclone and heat waves. In light of the history of nearly 60 cyclones in the last 5 decades, causing damages totaling around rupees 87,000 crores, I urge the government to institute a permanent central fund to compensate cyclone victims in Andhra Pradesh. The financial support from this fund will be essential for the rehabilitating annual victims, repairing infrastructure damages, and establishing climate-resilient infrastructure and communication networks to enhance emergency response capabilities. Furthermore, the Finance Minister's announcement of Blue Economy 2.0 during the interim budget to promote climate-resilient activities and sustainable development in coastal areas brings hope that these efforts align effectively with climate challenges, ensuring adequate central assistance for states like Andhra Pradesh. And regarding health and family welfare, Honorable Chairperson, sir, high output of pocket spending on healthcare. Although government spending on healthcare in India has increased since 2013-14, patients still bear nearly half of all health costs directly in regard to medicines, diagnosis, and other medical expenditures. In 2018-19, while 40.6% of health spending was covered by the government, 48.2% still came from patients, according to the Economic Survey 2020-23. Thus, despite improvements in states' healthcare funding, the burden of healthcare costs on individuals remains substantial. On average, Indian families allocate 7.9% of their entire annual household expenditure to healthcare, emphasizing the ongoing challenge of high out-of-pocket health spending. So, the government's flagship program, Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, PMJAY, has experienced lower actual spending compared to the proposed budget estimates in the fiscal year 2022-23. The scheme's actual spending was rupees 6185.80 crores, although the proposed estimate for financial year 23-24 was rupees 7200 crores. So, Honorable Chairperson, sir, Dr. YSR Arogyashri Health Scheme, a government-sponsored healthcare initiative in Andhra Pradesh, on the other hand, ensures universal health coverage for all its beneficiaries. It addresses primary care by offering free screening and outpatient consultations in health camps and network hospitals, eliminating additional out-of-pocket expenses for its beneficiaries. So, the scheme provides end-to-end cashless services for identifying diseases under secondary and tertiary care through a network of service providers from both the government and private sectors. The scheme encompasses a comprehensive range of 2434 surgeries and therapies across 30 systems. Honorable Chairperson, sir, the central government's commitment to rewarding good performances must be appreciated. However, these suggestions can possibly make a more robust mechanism
which would in turn act as a more persuasive incentive for states to improve their performances in all service sectors, especially aspirational district program. So the aspirational district program has been pivotal in the development of 112 districts, 112 districts, and changing the lives of almost 25 crore citizens. Among these districts has been YSR Kadapa, which has also been given the title of one of the best performing districts among those in the program, and Parvatipuram Manyam district, whose performance has been so stellar that it was entitled to receive an additional rupees 3 crores allocation last year. Such efforts to reward developmental efforts must be lauded. It is important to bring up more performance-based incentives within the program to benefit states that are showing strong signs of improvement, such as the district of Andhra Pradesh. And the last, before I conclude, regarding renewable energy. So solar and other forms of energy, the commitment shown towards rooftop solarization is extremely important given the urgency with which sustainable mediums of energy generations must be promoted. This change must also be driven forward by public institutions. In our state of Andhra Pradesh, Andhra University at Visakhapatnam has already installed solar energy generation system on all its building rooftops and has shown an admirable commitment to the implementation of net zero energy program. So I request the central government to ensure other public institutions also take up similar measures. Honorable Chairperson, sir, from the state of Andhra Pradesh, under the dynamic leadership of our Honorable Chief Minister Garu Shri Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu, I would like to conclude that the significant role of Andhra Pradesh plays in Bharat's journey towards prosperity. The state excels in education accessibility, ease of doing business, leading marine exports, organic farming, and ongoing efforts in supporting farmers and empowering women. Addressing the long-standing demand for special category status and fulfilling all commitments outlined in the AP Reorganization Act 2014 will further enhance Andhra Pradesh's contribution to the nation's progress. Central government's collaboration with Andhra Pradesh can be instrumental in advancing Bharat's overall development. So before I conclude, from the state of Andhra Pradesh, a Telugu orator and poet and novelist and social reformer, Gurajada Apparao garu. In Telugu, దేశమును ప్రేమించుమన్నా మంచి అన్నది పెంచుమన్నా వట్టి మాటలు కట్టిపెట్టోయ్ గట్టిమేల్ తలపట్టోయ్. With these few words, I say my thanks to President's address and I support all these achievements of the central government from the state of Andhra Pradesh, and we need a wholehearted more support for the state of Andhra Pradesh. Thank you very much, sir. Jai Hind. Thank you, Madam Satyavati ji. Next speaker, Sri Chandrasekhar Sahu ji. धन्यवाद सर. सभापति महोदय, मु विजु जनता दलर सर्वोच्च नेता माननीय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक नेतृत्व में गठित सरकार विजु जनता दल तरफ प्रतिनिधित्व करुवा सांसद हिसाब से वर्तमान महामहिम राष्ट्रपति जड़े आदिवासी महिला जे कि ओडिशा रु आसिचंती एवं अति साधारण परिवार रु आसी आज भारतर महामहिम राष्ट्रपति हेबार सम्मान पाइछन्ती एवं सेथिपाई मान्यवर मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक को जे राष्ट्रपति महोदया महामहिम राष्ट्रपति महोदया जहाँ को भाई बोली संबोधन करचंती सही बोली जड़े महामहिम राष्ट्रपति आदिवासी महिला प्रथम आदिवासी महिलांकर अभिभाषण उपरे धन्यवाद देवार सुजोग मते देइथिबा जोगु मो दल एवं मो दलर नेता नवीन पट्टनायक एवं
सभापति महोदय एवं स्पीकर को अशेष अशेष कृतज्ञता ज्ञापन करुछि। सभापति महोदय, राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति तांकर अभिभाषण रे बहुत बड़ बड़ फ्रीडम फाइटर एवं अनसंग हीरोज को वर्णना करछंती। सेति भितर ओडिशार जड़े महामान्य व्यक्तित्व को जे कि महात्मा गांधी जातिर पिता महात्मा गांधी आदर्श रे अनुप्राणित ही त्याग एवं देश पाई निज उत्सर्ग करथिले। सही बरी जड़े महान व्यक्तित्व पंडित गोपबंधु दास उक्ति को नहीं तांकर अभिभाषण आरंभ करथिले। मु ताकू केवल कोट करुची, मिशु मोर देह ए देश माटी रे देशवासी चली जातु पिठी रे देशर स्वराज्य पथे जेते गाड़ पुरु तही पड़ी मोर मांस हाड़। सभापति महोदय, ओडिशा रे प्रथम थर पाई वर्तमान विश्व ओडिया सम्मिलनी आरंभ होईछि। आमर मान्यवर मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक तार नेतृत्व नहीं प्रथम थर पाई ओडिशा रे विश्व ओडिया सम्मिलनी आरंभ करछन्ति। सही परिप्रेक्षी रे मते आपण ओडियार कहिवा पाई जो सुजोग देइछन्ति सेथि पाई मु आपण को अशेष अशेष धन्यवाद ज्ञापन करछि। सभापति महोदय, राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति तांकर वक्तव्य रे आदित्य मिशन कथा चंद्रायन कथा वर्णना करछन्ति, जहाँकि निश्चित भाव में केंद्र सरकार एवं भारत वर्षर हजार हजार साइंटिस्ट माने वैज्ञानिक मान को समस्ते अभिनंदन पात्र। मु मध्य बिजु जनता दल तरफरु समस्त को अभिनंदन करुछि। सभापति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति बिरसा मुंडा महान व्यक्तित्व वार्ता एनिवर्सरी कथा एवं रेकग्नाइज जे जनजाति गौरव दिवस भाव में पालन होगा कथा उल्लेख करथिले। एवं मु आज मन पकईदा चाहे जेतेबेले मान्यवर मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक केंद्र रे स्टील मंत्री थिले, सेतेबेले सेही विभाग तरफरु पार्लियामेंट परिसर रे महान त्यागी नेता एवं स्वाधीनता संग्रामी बिरसा मुंडा प्रतिमूर्ति स्थापन होता। एवं आज ओडिशार राउरकेला रे स्टील सिटी रे बिरसा मुंडा स्टेडियम, जहाँकि पृथ्वीर सबुठु उत्कृष्ट स्टेडियम ताकू आमर मान्यवर मुख्यमंत्री निर्माण करिसेंति। सभापति महोदय, राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति पारा 6 रे नारी शक्ति बंधन अभियान विषय रे उल्लेख करचंती। मु आपन को मन पकेदा चाहे ओडिशार प्रभात पुरुष भारत वर्षर जड़े आग धाड़ीर नेता जहाँ को मृत्यु शरीर रे भारत वर्षर फ्लैग सहित रशिया और इंडोनेशिया फ्लैग पड़ता। से भली जड़े महान नेता स्वर्गीय बिजू पट्टनायक जेतेबेले ए रिजर्वेशन कथा नारी रिजर्वेशन कथा उठिला, तार आगरू ओडिशा रे 33% पंचायत स्तर रे एवं म्युनिसिपालिटी स्तर रे रिजर्वेशन करथिले। परवर्ती अवस्था रे मान्यवर मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक 50% रिजर्वेशन करचंती। एवं आज संसद रे जो नारी मानक पाई विधानसभा एवं लोकसभा रे रिजर्वेशन कथा पारित होईची, ताकू ओडिशा विधानसभा रे सर्वसम्मति क्रमे पारित करी बहुबार आम्मान को जरिया रे एठारे उपस्थापन करा जायछि। सही भली महान नेता से बिजू बाबू को
भारत रत्न देवाई बहुबार दाबी होती किंतु आज पर्यंत केंद्र सरकार ग्रहण करना तेणु मु आपण जरिया आज धन्यवाद प्रस्ताव उपरे मु अनुरोध करी जे सही भली महान प्रभात पुरुष विजु बाबू को भारत रत्न देवारे निश्चित भाव में केंद्र सरकार विचार करेंगे। सभापति महोदय आमर ट्राइबल आदिवासी जनजाति पॉपुलेशन सबुठु अधिक ओडिशा रे एवं सेमानंकर 169 कम्युनिटी पाई गोटे लिस्ट ताकू अंतर्भुक्त करने पाई आदिवासी जाति भितर अंतर्भुक्त करने पाई बारंबार डिमांड आसी एवं सही को मु भावुची अनुरोध करुची जे केंद्र सरकार ताकू तुरंत कार्यकारी करिवे। सहीपरि आदिवासी भाषा हो मुंदारी भूमिज सावरा एवं कुई लैंग्वेज को मध्य 8 शेड्यूल रे संविधान रो अंतर्भुक्त करिया पाई मोर डिमांड रहउची। सभापति महोदय प्राय 10 लाख लोक गरीब लोक केंदुलीप रे बंचुचंती एवं सही केंदुलीप उपरे जे वर्तमान 5% जीएसटी थिला ताकू 18% करा जायछि। माननीय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक अनुरोध करचंती सही जीएसटी को संपूर्ण भाव में उठे दबा पाई। सही परि आज जो आयुष्मान भारत कथा कहा जाउछि ओडिशा रे माननीय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना जरिया रे प्राय आशा कर्मी ठू धरी अंगनवाड़ी कर्मी ठू धरी इनकम टैक्स पेइंग को छाड़देले आउ समस्त को एथिरे अंतर्भुक्त करा जायछि एवं महिला मान को पाई 5 लाख एवं महिला मान को पाई 10 लाख एवं पुरुष मान को पाई 5 लाख। मु आशा करी जे आयुष्मान योजना रे मध्य एही भरी जो 5 लाख अच्छी महिला मान को प्रति अधिक करने विचार करा जिया उचित। सभापति महोदय प्रधानमंत्री आवास योजना रे ओडिशार 7 लाख घर ए पर्यंत मिलवा कथा ताकू दिया जाय नहीं। विभिन्न राजनीतिक दृष्टिकोण रु ताकू विभिन्न आड़े बंद कर जाउछि। तेणु मु आज प्रस्ताव सहित आपण जरिया रे केंद्र सरकार को अनुरोध करी जे 7 लाख घर तुरंत प्रदान करा जाऊ। सही परि नेशनल हाईवे कथा जदि उठिबो ताहले नेशनल हाईवे 55 जहाँकि आमर कटक संबलपुर रास्ता वर्तमान मरण जनतार पहुंची। प्रति वर्ष 100 टू 150 लोक सीठे मरुचंती। सहीपरि NH 16 जहाँकि वर्तमान अधापंत्रिया भाव में कार्य चलती ता प्रति दृष्टि देवा एवं ताकू तुरंत कार्यकारी करने मु आपण जरिया रे दाबी जनाऊँगी। सभापति महोदय आमर मिनिमम सपोर्ट प्राइस पेड़ी पाई डिमांड थिला जहाँकि ओडिशा विधानसभा पास करछि जे 2930 टंका पाई किंतु आज पर्यंत ता कार्यकारी हो पार नहीं। तेणु मु आशा करी जे निश्चित भाव में केंद्र सरकार एप्रति विचार करेंगे। सहीपरि माननीय मुख्यमंत्री आमर डिमांड करिसेंती एवं ओडिशा विधानसभा मध्य पास करि देइछि जे अहिंसा को कॉन्स्टिट्यूशन रो प्रीएम्बल रे रखिया पाई एवं बारंबार कहवा सत्वे से कार्यकारी हो पार नहीं। तेणु मु आशा करी निश्चित भाव में आकु ग्रहण करेंगे एवं अहिंसा को प्रीएम्बल रे रखिबे कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल रे रखिबे। ओडिशा लेजिस्लेटिव काउंसिल जहाँकि फॉर्मेशन पाई पेंडिंग हेकि पड़ी ओडिशा विधानसभा सर्वसम्मति में पास करिछि किंतु ताहा एठारे पेंडिंग हेकि पड़ी। स्पेशल स्टेटस टू ओडिशा स्पेशल पैकेज पाई बारंबार विभिन्न जरिया रे दाबी होइछि अनुरोध करा जाइछि। ओडिशा विधानसभा रो समस्त राजनीतिक दल प्रतिनिधि मान आसी बारंबार
केंद्रीय नेतृवृंद को मिशिचंती किंतु आज पर्यंत ताकू कंसीडर करा जाय नाही। मु आशा करबी ताकू मध्य कंसीडर करिवे। सेही परी बिजू पट्टनायक महान नेता बिजू पट्टनायक प्रभात पुरुषंकर एक स्टैच्यू पार्लियामेंट भितर परिसर भितर रखिबा पाई मु अनुरोध करुछि। सभापति महोदय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जहाँकि आमर आंध्र प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट रे भाग नेला बेले मु निजे कहिथिली एवं ओडिशा सरकार मध्य अनुरोध करचंती आदिवासी सबुठु अधिक रहउचंती सुंदरगढ़ रे सीटे गुटे आदिवासी मानक पई सेंट्रल यूनिवर्सिटी हेबा पई अनुरोध करा जायछि। सेही परी आमर टैप ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना ओडिशा रे बहुत आगे एवं माननीय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक नेतृत्व रे ये योजना रे विभिन्न शहर वर्तमान कवरेज होइछि एवं ताकू मध्य अधिक क्रियाशील करिया पई केंद्र सरकार सहायता निहाती दरकार अछि। जो मिशन शक्ति को कहा जाउछि आज ओडिशा देशर सबुठु अग्रणी भाग अच्छी एवं नारी शक्ति को नहीं मिशन शक्ति जरिया रे ए सब प्रकार सेमानकु जतिकि सुविधा करिबा कथा एवं जो प्रकार तंकु आगु नेबा कथा सेतिपई सब प्रकार व्यवस्था करा जाउछि एवं आशा करिबु जे केंद्र सरकार सब प्रकार सहयोग सेतिरे निश्चित भाव रे रहिबो। सभापति महोदय, केंद्र सरकार विभिन्न अचीवमेंट उपरे महामहिम राष्ट्रपति तांकर अभिभाषण जहाँ कहते से ओडिशा सरकार सर्वदा सचेतन अच्छी एवं सहमति अच्छी एवं ओडिशा सरकार ओडिशा 4.5 कोटी ओडिया जनता जो डिमांड रही न्याय्य दाबी रही पूर्ण करिए बोली मु आपण जरिया आज ही थैंक्स मोशन रे केंद्र सरकार को अनुरोध करी मोर वक्तव्य शेष कर। धन्यवाद। वंदे उत्कल जननी। जय हिंद। Thank you very much. Next speaker, Sri Malok Nagar ji. थैंक यू अध्यक्ष जी, आपने बोलने का मौका दिया और महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पे बोलने का पार्टी की तरफ से और आपने मौका दिया, दोबारा से धन्यवाद। मैं जो पार्लियामेंट में देश की मैं महसूस करता हूं 1913 से कलकत्ता में शुरू हुई 20-21 में यहाँ आई और 47 के बाद अब भी दो तरफ सुनने को मिलती है। लेफ्ट पे जो अच्छे काम करे, जिन काम की गुंजाइश थी और बेहतर हो सकते थे, कहीं जिक्र नहीं होता। और राइट पे देखते हैं तो उठा करके सारे ये कमी और अच्छे काम में भी कमी निकालते हैं। तो वो 1913 का देश एक और देश था, 1947 के समय एक और देश था और आज एक और देश है। और देश या पूरा संसार जिस तरह तरक्की कर रहा है, हमारी चर्चा भी मेरे हिसाब से उस तरह की होनी चाहिए। मैं अपने साथियों से प्रार्थना करना चाहता हूं। तो महामहिम राष्ट्रपति जी के भाषण में कई चीजें ऐसी हैं जहां गुंजाइश थी बहुत बेहतर हो सकती थी, कई चीजें ऐसी हैं जो बहुत अच्छी हैं। जैसे महामहिम राष्ट्रपति जी के भाषण में था कि जो बॉर्डर, देश के जो बॉर्डर के गांव हैं उनको पहले देश का आखिरी गांव कहा जाता था और अब देश का पहला गांव कहा जाएगा। तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बाउंड्री पे जितने भी गुजर मुसलमान हैं, वो जो अपने आप को बहुत ऐसा महसूस करते थे कि बगैर तनख्वाह लिए हुए उग्रवादियों से, पाकिस्तानियों से, पाकिस्तान की फौजों से लड़ते थे, उनको कहीं ना कहीं ये लगा कि देश की सरकार हमारे बारे में ये सोच रही है कि हम आखिरी गांव नहीं है, हम पहला गांव है। तो इसकी हम सराहना करते हैं, धन्यवाद देते हैं, थैंक यू बोलते हैं।
और उसमें एक चीज साहब मैं और सरकार आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर सरकार ने इतना ध्यान दिया वहां, तो वहां जो बाउंड्री पर लोग हैं उनके लिए कॉलेज और स्कूलों की कमी है। वहां कॉलेज और स्कूल थोड़ा बढ़ावा दिया जाए और वहां के जो लोग लड़ते हैं उनको वेपन के लाइसेंस दिए जाएं और पुलिस की फोर्स की चौकी बनाकर उनको और सुविधा दी जाए और एक SEZ बना करके एक बड़ा एक इंडस्ट्रियल बाउंड्री लाइन पे देश की पे एक SEZ डिक्लेयर करा जाए, जिससे वहां के लोगों को स्वाभिमान के साथ रोजगार भी मिल सके, शिक्षा भी मिल सके। दूसरा सब जो ये पिछले बात थी कि भाई अभी कि टैक्स से संबंधित देश का जो है कि जो पहले 30% कॉर्पोरेट टैक्स लगता था वो पिछले दिनों 22% कर दिया गया, 15% कर दिया गया। तो उस बारे में मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं सरकार का आपके माध्यम से कि जो 60 साल से बड़े लोग हैं और खास करके 70 पार करते ही ऐसी स्थिति में आ जाते हैं, तो इस कॉर्पोरेट टैक्स पे जहां छूट दी गई है 60 साल से ऊपर के लोगों को भी उस टैक्स का कहीं ना कहीं उनको भी अलग छूट दी जाए। और जब पूरा बजट आगे आएगा तो जो 7 लाख रुपए है टैक्स की सीमा, उस स्लैब को भी उठा करके 10 लाख रुपए करा जाए। एक साहब देश में जो कच्चा तेल है जो उसको देश की बड़ी कंपनियां निकालती हैं, उस पे जो सेस टैक्स लगता है वो बहुत कम है। और जो आम आदमी तेल को आज इस्तेमाल करता है, चाहे वो ट्रैक्टर में हो, चाहे खेत को पानी देने के लिए इंजन में हो, चाहे और दूसरी सवारियों पर हो, गन्ने को ले जाने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली के लिए हो, तो उस पे जो सेस टैक्स लगाया है वो थोड़ा ज्यादा है। दोनों को एक ही चश्मे से नाप करके अगर उस पे सेस टैक्स कम लगाया जाता तो बहुत अच्छा होता। और साहब एक जो अभी चुनाव आगे खड़े हैं, 2-3 महीने के बाद चुनाव में जाना है, तो जो सब चीजों की महंगाई खास करके कोरोना कार्यकाल के बाद में बढ़ी है और एक पश्चिम उत्तर प्रदेश और पूरे देश में जो गन्ना किसान है वो बहुत परेशान है। पिछले 7 साल में केवल एक बार 25 रुपए रेट बढ़ा है, एक बार केवल 10 रुपए रेट बढ़ा है, एक बार अभी 4-5 दिन पहले 10 रुपए रेट बढ़ा है। जबकि 7 साल की अगर महंगाई जोड़ें, किसी साल की महंगाई 9 पॉइंट कुछ परसेंट, किसी 8 पॉइंट कुछ परसेंट, 7%, 11%, वो टोटल करीब 80% के आसपास बैठती है। तो जो 350 रेट था तो 80% भी लगाएं तो 300 के करीब वो रेट बैठता है, तो करीब 600 के आसपास बैठता है। तो कम से कम 550 रेट जरूर कर देना चाहिए, जिससे कि गन्ने का रेट बढ़िया हो तो खुशहाल किसान हो सके। और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि किसान की आय डबल हो, उस पैमाने की तरफ को भी किसान लगभग करीब नजदीक पहुंच सकें। और साहब एक बात मैं और कहना चाहता हूं, जो ये अभी राष्ट्रपति का अभिभाषण था, इसमें अगर जो छोटे कारखाने वाले लोग हैं, जो छोटी कंपनियों वाले लोग हैं, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की चीजें हैं, इन पे सरकार और ज्यादा ध्यान दे, टैक्स में इन पे भी कुछ छूट मिले और कुछ इंसेंटिव मिले, जिससे छोटे बिल्कुल जमीनी स्तर से उठ के वो लोग तरक्की करें, तो एक देश की तरक्की को आगे बढ़ाएंगे और देश की इकोनॉमी को मजबूत करेंगे। एक साहब एक बात मैं कहना चाहता हूं, पूरे देश में आज सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है और करीब 24 करोड़ लोग हैं। और 1953 में चौधरी ब्रह्मप्रकाश जी, दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री, ने एक रैली में कहा, 1955 में जो बाबा अंबेडकर साहब ने एक रैली में कहा, और 89 में केसी त्यागी जी ने एक चिट्ठी लिखी, और 2012 में कुमारी बहन मायावती जी ने प्रस्ताव पास करके भेजा कि ये बड़ा प्रदेश है, इसको 4 हिस्सों में बांटा जाए। तो करीब 8.5 करोड़ के करीब जनसंख्या है। तो इसमें 8.5 करोड़ से कम आधे से ज्यादा देश के जो प्रदेश हैं वो छोटे छोटे प्रदेश हैं, वो 8.5 करोड़ से भी बहुत कम के हैं। तो अगर इसका भी सरकार कंसीडर करे आने वाले समय में, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को और उत्तर प्रदेश के सारे हिस्सों को बढ़िया तरीके से चलाया जा सकता है। और सब जब तक अगर इसमें देर भी लगे, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग इलाहाबाद जाते हैं हाई कोर्ट के लिए, लखनऊ जाते हैं,
बहुत परेशानी होती है, शाम को चलते हैं अगले दिन पहुंचते हैं और रहने की बड़ी दिक्कतें होती हैं। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और खास करके मेरठ में हाई कोर्ट की बेंच की भी एक स्थापना की जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और आखिरी बात एक कह के अपनी समापन करूंगा अपनी बात को। जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि किसान की आय डबल करी जाए, तो मैं उसमें सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस बारे में जो रिसर्च पूरे वर्ल्ड में और देश में बहुत बड़ी इंडस्ट्रियों में रिसर्च इंस्टीट्यूट पे बहुत खर्चा होता है, रिसर्च का एक अलग डिवीजन होता है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ में किसान की फसल को कैसे हाईटेक तरीके से करे जाएं, फूल बढ़िया कैसे पैदा करे जाएं और फ्रूट फल आदि कैसे बढ़िया पैदा करे जाएं, इसके लिए एक रिसर्च इंस्टीट्यूट खुले और किसानों के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर भी मेरठ में बनाया जाए, जिससे किसान बढ़िया तरीके से अपनी खेती कर सकें और सरकार उनको रिसर्च करके जो रिपोर्ट आए बढ़िया तरीके से किसान को सपोर्ट कर सकें, जिससे पश्चिम उत्तर प्रदेश का और देश का किसान खुशहाल रह सके। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। धन्यवाद, धन्यवाद। नेक्स्ट स्पीकर अमोल खले जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव में बोलने के लिए खड़ा हूं। अध्यक्ष महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी ने एक बहुत ही अच्छी बात अपने अभिभाषण में कही, वो थी राष्ट्र सर्वोपरि। लेकिन राष्ट्र बनता किन चीजों से? राष्ट्र न सिर्फ इमारतों से बनता है, न सिर्फ पुलों से बनता है, न सिर्फ बजट के आंकड़ों से बनता है, न इंफ्रास्ट्रक्चर से बनता है। राष्ट्र बनता है उसके देशवासियों से, इंसानों से और उनके दिलों में पनपते देशभक्ति के जज्बे से। और इन देशवासियों की परिस्थिति क्या है? हर देशवासी चाहता है अध्यक्ष महोदय कि वो एक भयमुक्त वातावरण में अपना जीवन व्यतीत करे, लेकिन मेरे चुनाव क्षेत्र में ऐसी परिस्थिति नहीं है। नेशनल वाइल्ड लाइफ सर्वे का अगर हम रिपोर्ट देखे थे, उसके अनुसार मेरे चुनाव क्षेत्र में 400 से 500 लेपर्ड्स का अधिवास है। और मेरे चुनाव क्षेत्र में दिन में 3 फेज लाइट नहीं होती, इसलिए रात में खेत को पानी देने के लिए जाना पड़ता है और आए दिन किसी न किसी पर लेपर्ड का हमला होता है। आज तक 18,000 मवेशियों का नुकसान हुआ है। 20 से 25 लोगों ने पिछले साल में अपनी जान गंवाई है। और अभी जुन्नर फॉरेस्ट विभाग ने महाराष्ट्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है, जो इकलौता सोल्यूशन है वो लेपर्ड रिप्रोडक्शन कंट्रोल का सोल्यूशन है। और इसके लिए मैं नियमित तरीके से मंत्रालय से भी गुजारिश कर रहा हूं और मेरी ये गुजारिश है कि मंत्रालय इस पर संज्ञान ले और लेपर्ड रिप्रोडक्शन कंट्रोल करे और मेरे चुनाव क्षेत्र में दिन में 3 फेज लाइट देने का निर्देश राज्य सरकार को पारित करे। महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में गरीबों के लिए मकान की बात की, जो निश्चित ही सराहनीय है। लेकिन मेरे चुनाव क्षेत्र में अध्यक्ष महोदय 1.5 से 2 लाख लोग ऐसे हैं, वो रहते तो पक्के घरों में हैं, लेकिन उनके घर अनऑथोराइज करार दिए जा रहे हैं और वजह है दिघी एम्यूनिशन डेपो की वजह से लगा हुआ रेड जोन। महामहिम राष्ट्रपति जी ने कानूनों में सुधार की बात की और समय के साथ हर किसी को बदलना चाहिए, लेकिन रेड जोन की अगर हम बात करें तो जो कानून फॉलो हो रहा है वो 1903 का अंग्रेजों के जमाने का इंडियन डिफेंस एक्ट फॉलो हो रहा है, जिसके तहत रेड जोन की मर्यादा 2000 यार्ड सुनिश्चित की गई है। लेकिन 1970 का जो स्टैक रेगुलेशन है, स्टोरेज टेक्निकल एक्सप्लोजिव कमिटी का जो रेगुलेशन है यूनाइटेड नेशंस का, वो हमारे देश ने अडॉप्ट किया है, जिसके अनुसार 200 से 500 मीटर ही रेड जोन की मर्यादा होनी चाहिए। तो जब हम कानूनों के सुधार की बात करते हैं तो मेरी सरकार से यह गुजारिश है कि जो कानून हमने अडॉप्ट किया है उस पर अमल किया जाए और 500 मीटर के आगे ये रेड जोन की मर्यादा से देशवासियों को राहत दी जाए। महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की बात की और विकसित भारत के जो 4 स्तंभ हैं उन्होंने किसानों का जिक्र भी किया। लेकिन वास्तविकता यह है अध्यक्ष महोदय, पिछले 35-40 दिनों से अनियन के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लग चुकी है और अनियन एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगने की वजह से, प्याज के निर्यात पर पाबंदी लगने की वजह से मेरे महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक किसानों का 2000 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ है। और इस पाबंदी की वजह से भला हो रहा है पाकिस्तान के किसानों का, क्योंकि मिडिल ईस्ट का मार्केट हो, यूरोप का मार्केट हो, यह पूरा पाकिस्तान अनियन ग्रोअर फार्मर्स के हाथ में चला गया है और पाकिस्तान के किसानों को उनके प्याज का दाम मिल रहा है, लेकिन मेरे किसान को अपना प्याज 8 से 10 रुपए किलो के दाम में बेचना पड़ रहा है। हमने सरकार से सुना था कि पाकिस्तान की कमर तोड़ देंगे, ये तो इस निर्णय की वजह से पाकिस्तान के किसानों को भला हो रहा है, कमर मेरे किसानों की टूट रही है। यहां पे महामहिम राष्ट्रपति जी ने किसानों की आय दुगनी होने की बात की। अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं कि 2013 में
डीएपी की एक बैग थी, उसकी कीमत थी 560 रुपए। 2024 में डीएपी की बैग की कीमत है 1100 रुपए। जो लागत की मजदूरी थी प्याज के लिए, उसकी कीमत थी 5000 रुपए, आज लागत की मजदूरी जाती है 11000 रुपए। आज 2013 में प्याज बिक रहा था 20 रुपए किलो में, आज प्याज बिक रहा है 8 से 10 रुपए किलो में। 2013 में सोयाबीन बिक रहा था 6000 रुपए क्विंटल के दरों में, आज सोयाबीन बिक रहा है 4500 रुपए क्विंटल के दरों में। तो किसान की आय दुगनी हुई या दो गुने से ज्यादा घट गई है? जब हम विकसित भारत का एक स्तंभ किसानों को मानते हैं, तो यह मैं कहना चाहूंगा कि जब विकसित भारत की यात्रा होती है, दिल्ली में ठंड बहुत है, किसी को बताना नहीं पड़ता, ठंड बहुत है, हम महसूस करते हैं ठंड बहुत है। तो जब विकसित भारत है तो यह बताना क्यों पड़ता है? मेरा किसान ये महसूस क्यों नहीं कर पाता कि यह विकसित भारत है, मेरी आय दुगनी हुई है? और यह मेरी दरख्वास्त है कि किसानों के बारे में गंभीरता पूर्वक ये विचार किया जाए, क्योंकि अगर उगाने वाला उगाएगा नहीं तो खाने वाला खाएगा क्या, यह सवाल बनता है। अंत में महामहिम राष्ट्रपति जी ने राम मंदिर के निर्माण की बात की और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, हमारे राम लल्ला जो विराजमान हुए, उसके लिए मैं समूचे देश का अभिनंदन करता हूं। और उसी के बारे में कुछ पंक्तियां कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अध्यक्ष महोदय, जब राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा की बात आई तो किसी ने कहा बिना कलश के प्राण प्रतिष्ठा कैसे होगी? किसी ने कहा बिना कलश के प्राण प्रतिष्ठा कैसे होगी? किसी ने कहा जब चुनाव ही प्राण हो तो सोचो कौन सी प्रतिष्ठा दांव पे लगी होगी। लोग तो कुछ कहेंगे, लोगों का काम है कहना, आप जन की बात मत सुनना, सिर्फ मन की बात करना। फिर भी खुश थे हम, फिर भी खुश थे हम। 500 साल का सपना जो पूरा हो रहा था, हमारे अंदर का हिंदू भी पूरी तरह से जाग गया था। तो चल पड़े अयोध्या की ओर, राम लल्ला की दर्शन की आस लगाए। चल पड़े अयोध्या की ओर, राम लल्ला के दर्शन की आस लगाए। जो सामने नजारा देखा वो देखकर दंग रह गए। वो 3 मंजिले, 400 खंबे, 32 सीढ़ियां, जय श्री राम का नारा लगाते हुए हम सीढ़ियां चढ़ने लगे। राम लल्ला से क्या गुहार लगाए ये सोचने लगे। पहली सीढ़ी पर याद आई महंगाई, पहली सीढ़ी पर याद आई महंगाई, दूसरी पर देश में बढ़ती बेरोजगारी, तीसरी पर पत्रकारिता की चरण चुंबकता, चौथी पर सेंट्रल एजेंसीज की संदिग्ध भूमिका। हर सीढ़ी पर कुछ न कुछ याद आ रहा था, हर सीढ़ी पर कुछ न कुछ याद आ रहा था। कहीं 15 लाख का जुमला, कहीं किसानों का आक्रोश था, कहीं महिला कुश्तीगिरों की वेदना थी, कहीं सालाना 2 करोड़ रोजगारों का वादा था, कहीं बढ़ती सांप्रदायिकता थी, तो कहीं चुनिंदा पूंजीपतियों पर मेहरबान हमारी सरकार का चेहरा था। इस वास्तविकता ने झंझोड़ने के बाद, इस वास्तविकता ने झंझोड़ना के बाद भी हम अंधभक्तों की तरह चलते गए। होश तो तब संभाला जब राम लल्ला के दर्शन हुए। हमें नतमस्तक देख राम लल्ला मुस्कुराते हुए बोले, हमें नतमस्तक देख राम लल्ला मुस्कुराते हुए बोले, मैं कल भी था, आज भी हूं, कल भी रहूंगा। जितना इस मंदिर में हूं उतना ही तुम्हारे मन में रहूंगा। लेकिन याद रखना हमेशा, लेकिन याद रखना हमेशा, मैंने त्रेता युग में रामराज जलाया था, तुम कलियुग में जीते हो जहां संविधान ने गणराज जलाया है। धर्म समाज का किनारा जरूर है, धर्म समाज का किनारा जरूर है, लेकिन देश एक बहती धारा है। किनारे को धारा के बीच में लाया तो प्रवाह अड़ जाता है, प्रगति के पथ से हट जाता है। इसलिए धर्म का ठेकेदार नहीं, पहरेदार बनना चाहिए। इसलिए धर्म का ठेकेदार नहीं, पहरेदार बनना चाहिए। तुम रहो न रहो, वो रहे न रहे, ये देश रहना चाहिए, देश का संविधान रहना चाहिए, देश का लोकतंत्र रहना चाहिए, ये देश रहना चाहिए। जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। नेक्स्ट स्पीकर श्री सप्तगिरी उलख। Thank you, Chairman, sir, for giving me this opportunity to speak on the motion of thanks on the President's address. Sir, it was indeed a very proud moment. कल बहुत गर्व लगा था जब महामहिम राष्ट्रपति यहाँ पे हम सबको संबोधित किए। एक आदिवासी होने के नाते मैं समझता हूँ कि इसका क्या मतलब होता है। एंड इसी सिलसिले में अपना अभिभाषण 2-3 मुद्दों पे रखना चाहता हूँ।
जो सबसे पहला मुद्दा है सर, हम आदिवासियों के लिए सबसे बड़ी चीज क्या होता है? जल, जंगल, जमीन। अभी जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 2023 पारित किया गया सर, ये हम लोग शायद सब सस्पेंड थे, ये बाहर थे, जो बिना डिस्कशन के पारित किया गया। अभी आप देखोगे तो PEKB, पारसा ईस्ट एंड किटे बैसिन, ये हसडियो हिल्स में जो कोल माइंस है, फेज 2 एक्सटेंशन ऑफ कोल माइंस, इस अमेंडमेंट के द्वारा क्या हुआ? द गवर्नमेंट एंड डेवलपर्स कैन नाउ एक्वायर लैंड फॉर माइनिंग एट बिजनेस पर्पस विदाउट एनी लोकल स्टेक होल्डर्स। द सेकेंड थिंग इज दे हैव रीडिफाइंड the definition of forest. What was forest called? They have redefined the forest definition. I'll quote some Supreme Court judgments, sir. The first one was 1997 Samada judgment, which said no private party can do mining in scheduled areas. There was the famous Niyamagiri judgment, which said the allotment of lands to be completed first before any public project can be commenced. Then we have the Godavaram judgment, which says that forest means all the forests naturally found out are not limited to notified forest. With this amendment, the Forest and Conservation Act, now they are mentioning only notified forest. So what will happen? The judgments and other landscape, whatever was there, now 50 to 75% of country's forest areas cease to be existing, sir. And this particular amendment is diluting the Forest Right Act, and the Gram Sabha, the informed consent, local stakeholder, the Gram Sabha used to decide like what purpose will the forest land will be diverted. That is also getting diluted, and this is a very serious concern which will impact almost 700 million tribals across the country. And we have seen also how it is happening after the government which formed in Chhattisgarh. They're conducting fake Gram Sabhas, and the government can control with, I'll give an example, like we have Balda mines, Mali Parvat, or Hasdio mines. First, the government, they give the mining control to the corporate houses, and then they leave it to the state government to take care of the tribal rights, land conflicts, and so on. So, पहले से ही आप जमीन दे दिए तो उसके बाद ये क्या होगा सर? And all the judgments, they're slightly dilating. Claims के बारे में बोलता हूँ. The claims of land by forest dwellers, 80% of the claims have been rejected by the central government. 80%. I'll give you an example. In past as well, there used to be rejection. Before 2014, out of 308 million claims, only 54% were rejected. But abhi, after 2014, if you look at the data, out of 2.7 lakh claims, around 79% have been rejected, sir. So the land which was supposed to be given to the tribals through the Forest Right Act, now this is slowly going away. Nagarnar steel plant, I'll give you an example. Nagarnar steel plant was conceived way back in 2015 by the government, and we gave them the mines in Baledala for the purpose that Bastar tribals, Bastar ke Adivasi log, us Nagarnar steel plant mein, they can be there, and PSUs would be there, they will get jobs guarantee and all. Now, it was commissioned just before the elections. NMDC has 61% stake, but no one knows when the disinvestment will happen, and this will be privatized. So, Nagarnar steel plant का जो idea था, बस्तर के आदिवासी वहाँ नौकरी करेंगे, वो भी धीरे-धीरे खत्म हो रहा है. सर, तो आदिवासियों का जो भी मेन समस्या है, जल, जंगल, जमीन, ये सरकार एक-एक कानून ऐसे लेके आ रही है जिससे कि हमारी अधिकार डाइल्यूट होते जा रहा है, जो मैं आपके माध्यम से अवगत करना चाहता हूं कि इसको रोकने की कड़ी आवश्यकता है. In scheduled areas, sir, there are a lot of SC communities. Scheduled caste people are there. I'll talk about my area, Raigad and Koraput district. डोम्बो कम्युनिटी है जो वहां पे 20% डोम्बो कम्युनिटी लोग रहते हैं. एंड ये डोम्बो जो रहते हैं, जो डोम्बो कम्युनिटी के लोग हैं, ये पहाड़ में भी रहते हैं, जैसे उनको डोंगरिया डोम कहते हैं. डोंगरिया कौन, जैसे PVTG से, सिमिलरली डोंगरिया डोम, दे स्टे इन द माउंटेन्स बट दे बिलोंग टू शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी. सर, इनका मेन डिमांड है, it's not because they're scheduled caste, but because they live in scheduled areas in mountains which are no access basically to mainstream life. This Dombo community, they have to be recognized as vulnerable community, recognize their language, recognize the folklore, recognize the folk dance. Promotion of art, culture, custom and tradition of Dombo community is something which is the need of the day. We need a special development council similar to scheduled tribes for the Dombo community also, the scheduled caste people. We need to have model residential schools in the line with Eklavya Model School. We need 200 bedded hostel facilities,
employment opportunity. When we have industries in mining areas, 90% of the employment opportunities will be reserved to local people, SC, ST, OBC people. The homestead land, the scheduled caste people, they're not getting the homestead land. प्रधानमंत्री आवास योजना इसलिए उनको लाभान्वित नहीं हो पा रहा है, तो होमस्टेड लैंड का भी सुविधा प्रोवाइड करना चाहिए। फॉरेस्ट राइट एक्ट में जैसे आदिवासियों के साथ लैंड का हम लोग कर रहे हैं, एक नॉन आदिवासी को 30 साल का रेजिडेंस प्रूफ दिखाना पड़ता है, बट ये SC लोग हैं, जो डोम लोग हैं, विभिन्न SC लोग हैं, इनको 3 साल के बदले में इनको छूट दिया जाए सर, ताकि वो अगर जंगल में रहते हैं तो उनको अपना अधिकार मिलना चाहिए। रिजर्वेशन इन लोकल बॉडीज, अभी भी वहां पे शेड्यूल्ड एरियाज में SC लोग को रिजर्वेशन नहीं प्राप्त होता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सर फॉर ट्राइबल्स, आई एज अ ट्राइबल आई डोंट हैव एक्सेस टू एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मुझे लोन नहीं मिलता है, ना बिजनेस डेवलपमेंट करने के लिए लोन मिलता है, ना पढ़ाई के लिए लोन मिलता है, ना घर बनाने के लिए लोन मिलता है। मेरी जगह है, आई अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस की ट्राइबल शुड नॉट बी लैंडलेस, बट if I don't get access to finance, if I don't get access to loan system, how will I develop myself? 75 years, 76 years, I can't mortgage my land. The government doesn't want to take my land and I don't have access to finance system. This was fine till some point of time, sir. But abhi kya ho raha hai? Usi same jagah ko we are getting, the government is encroaching our land. They're doing acquisition for Bharatmala projects, or they're doing acquisition for mining projects, they're doing acquisition for large projects. So this leaves us nowhere. हमारी जो जमीन है उसमें मेरे पास, there should be some policies, there should be some discussion at least how we can solve the issue. The state government of Odisha, they came up with a policy that tribals can sell to non-tribals. We condemn it, sir. We reject it. This is not the solution. The solution should be the Tribal Advisory Council. They should sit and see what can be done. The government should interfere, that they can give guarantee to the banks that the land can be mortgaged. But if you just open the whole thing, tribal selling land to non-tribals, this will create chaos. All the tribals will remain landless, sir. We need to have a national policy on scheduled tribes to give a framework for tribals for the overall development. There has been an increased attack on Christian tribals, sir, throughout the country. If you look at Chhattisgarh, Bastar region, if you look at Gunpur, Gudari, if you look at Chandrapur, the Christian tribals have been attacked. I again say, tribal और आदिवासी जो हम लोग होते हैं, ये धर्म के पारी होते हैं। क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, दूसरे जाति के हम लोग ट्राइबल्स होते हैं। किसी भी माइनॉरिटी को सुरक्षा पहुंचाने का काम सरकार का होता है, एंड ये क्रिश्चियन ट्राइबल्स को भी हिफाजत रखने का काम माननीय प्रधानमंत्री का होना चाहिए। GST केंदुपत्ता माइनस फॉरेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो हम लोग के आदिवासी लोग वन में जाते हैं, वो केंदुपत्ता संग्रहण करते हैं एंड उस पे हम लोग बेचते हैं। दैट इज आवर लाइवलीहुड। दिस सेंट्रल गवर्नमेंट इज सो इनसेंसिटिव दैट 5% GST था, उसको 18% कर दिए। सर, हमारा डिमांड आपके थ्रू से है कि इस जो GST है इसको हटाना चाहिए इमीडिएटली। आई विल कम बैक टू सम इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स इन माय कॉन्स्टिट्यूंसी बिफोर आई रैप इट अप। सर, गोनपुर तिरवरी रेल लाइन प्रोजेक्ट, this has been announced by the government in 2017-18 and it has been a long-term demand. It's primarily a tribal dominated district. After the ROR was coming as minus 3%, the revised ROR is now positive. This particular project, they had some discussion with state government. The state government will share the cost and give land free of cost. That is happening, sir. But irrespective of that, the central government has to invest in this particular project, which is the lifeline of Rayagada. This is pending for a long time. The Rayagada Rail Division and Gunpur Tiruveri line, this has to be done immediately. Sir, the state government of Odisha, they have written to the central government that 180 communities should be given tribal status. Sir, we don't agree with this. If you make everyone tribal, where will the tribals go? There are some genuine communities which has to be taken care of, their anthropological details, their primitive traits, the socio-economic condition. Jhodia, Durua, and Dora, such tribes who really deserves to be in tribal community. But if the state government keeps sending 180, 200 tribes to be made scheduled tribe, then the central government won't do anything. This is something which needs discussion. The central government and state government, इनको आपस में बैठना चाहिए, देखना चाहिए कौन एक्चुअली ट्राइबल है। आप सबको ट्राइबल नहीं कर सकते हो। एक बिल आया था लास्ट सेशन में, जिसमें हिमाचल प्रदेश का बिल था। आपने ये बताया कि कुछ लोग जो ST कम्युनिटी के ST बना दो, एंड बाकी लोग जो बच गए, जो ST नहीं बनना चाहते, उसको SC कैटेगरी दो। ST and SC are very different. ST is primitive traits, secligence, उसका इकोनॉमिक डाउनटर्न, ये 4 पॉइंट्स है जो ST है। 180 ट्राइब्स को आदिवासी नहीं बना सकते हो सर।
3-4 जो महीने इसको बनाओ, बाकी भी आप देखो कि इनका क्या एंथ्रोपोलॉजिकल डिटेल्स है, ये एक्चुअली ट्राइबल्स है कि नहीं, इनके संस्कृति क्या है, कल्चर क्या है, परंपरा है, उसके बाद ये करना पड़ेगा। आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स का इसका एक बहुत बड़ा समस्या है। ये आंगनवाड़ी जो वर्कर्स है इनका सैलरी बहुत कम है सर। हमारी राज्य सरकार ने उनको बाधा दे दे के ठक रही है खाली, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। वो लोग बहुत परेशान है एंड बहुत मुसीबत में है सर। वी डिमांड थ्रू आंगनवाड़ी वर्कर्स, उनकी सैलरी कम से कम 20-25 हज़ार करना चाहिए। जो हेल्पर्स है उनको कम से कम 15,000 करना चाहिए। इसके साथ साथ इनको कैसे पेंशन की सुविधा मिले जाए, उनके लिए ये करना पड़ेगा सर। कोरापुट, जयपुर एंड रायगढ़ बाईपास, दिस इज पेंडिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। वी टुक लॉट ऑफ ट्रबल इन गेटिंग दिस अप्रूव्ड, बट अभी लैंड एक्विजिशन में फंस गया है। इसको अब हमारी ये अनुरोध होगा कि इसको जितना जल्दी हो सके सर। लास्टली पेंशन, आज के डेट में जो पेंशन दिया जा रहा है वो 500 रुपया महिलाओं को दिया जाता है एंड जो बुजुर्ग महिला है उसको 700 रुपये दिया जाता है सर। आज के डेट में ये बहुत कम है। हम डिमांड करते हैं कि केंद्र सरकार टेक ए कॉग्निजेंट सिचुएशन, इन लोगों का पेंशन आप बढ़ा के कम से कम 3,000 रुपया कीजिए एंड जो बुजुर्ग महिला है उनका 3,500 कीजिए। एंड वी शुड थिंक about a system where the financial parity should be minimized. Universal basic income is a concept which has to be thought upon. इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं कि सबको एक बेसिक इनकम होना चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए। ये सब के साथ मैं अपना इस मोशन ऑफ थैंक्स में ऑनरेबल प्रेसिडेंट का बहुत बहुत धन्यवाद करके अपना भाषण यही विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सप्तगिरी उलाका जी। नाउ श्री सुधीर गुप्ता जी। माननीय सभापति जी, राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण पर मैं समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मन को बड़ी प्रसन्नता है कि जब राष्ट्रपति महोदया हमारे इस नए सदन में प्रवेश कर रही थी तब सैंगोल के साथ उनकी अगवानी की गई। बड़ी भव्यता थी, बड़ी सादगी थी और हम सब ने आत्मीय रूप से स्वागत करके मन को बड़ी प्रसन्नता दी है। मैं माननीय राष्ट्रपति महोदया के उन शब्दों को यहाँ दोहराना चाहता हूँ जो उन्होंने अपने संबोधन के प्रारंभ में कहे। इस नए संसद भवन में यह मेरा पहला संबोधन है। आजादी के अमृतकाल की शुरुआत में यह भव्य भवन बना है। यहाँ एक भारत श्रेष्ठ भारत की महक भी है। भारत की सभ्यता और संस्कृति की चेतना भी है। इसमें हमारी लोकतांत्रिक और संसदीय परंपराओं के सम्मान का प्रण भी है और साथ ही 21वीं सदी के नए भारत के लिए नई परंपराओं के निर्माण का संकल्प भी है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस नए भवन में नीतियों पर सार्थक संवाद होगा और ऐसी नीतियां जो आज़ादी के अमृतकाल में विकसित भारत का निर्माण करेगी। मैं आप सभी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित रूप से यह संबोधन भारत की राजनीति में हम सब लोग जो लाखों लाख लोगों के द्वारा चुनकर यहाँ आते हैं उन पर एक बड़ा ही विश्वास है। राष्ट्रपति जी के मन में बड़ी आशाएं हैं कि अमृतकाल के इस दौर में यह भवन भारत की सभ्यता और संस्कृति की चेतना का आधार बनते हुए लोकतांत्रिक परंपराओं को आगे ले जाएगा। निश्चित रूप से हम जानते हैं माननीय सभापति जी कि जो मन के अंदर संकल्प और भाव होते हैं, माननीय राष्ट्रपति महोदया ने जिन संकल्पों को हम सबके सामने दोहराया और सरकार के किए कामों को और गर्व से यहाँ कहा है। निश्चित रूप से किसी भी सरकार के काम में अनुशासन ये एक महत्वपूर्ण परिधि होती है और हम जानते हैं कि जो वित्तीय असमानताएं देश के सामने रही है उसको समानता की तरफ ले जाना एक बड़ा संकल्प था। तभी हम कहते हैं कि अब हवाएं ही करेगी बीजेपी की तो है सर रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वही दिया रह जाएगा। भारत अपने वित्तीय एकीकरण के दौर में वित्तीय प्रबंधन को साधते हुए
वित्तीय संस्थाओं के बीच अनुशासित तरीके से आगे बढ़ा है। घरेलू वित्तीय बाजारों में निवेश की अनुकूलता, कानूनी प्रतिबंधों का संज्ञान में लेना और वित्तीय प्रबंधन में सारे संस्थानों का उपयोग करना, ये हमारी बड़ी सफलता है। चाहे बीमा संस्थानों का उपयोग हो या बैंकों का, जनधन खातों के माध्यम से हमने एक दिव्य संदेश दिया कि आजादी के बाद बैंकों का एकीकरण तो कर दिया गया था, मगर उसके पीछे विचार नहीं थे, उसके पीछे एक अनुशासित कार्यप्रणाली को लेकर आगे चलने वाले ठोस व्यक्तित्व का अभाव था। आज नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर वही बैंकें, वही लोग, वही बिल्डिंग, वही कंप्यूटर, मगर एक नया खाता न खोल सकने वाली बैंकें 45 करोड़ लोगों को अपने उसी संसाधन के अंदर समाहित कर पाई। ये दुनिया के सामने अभूतपूर्व था। डीमोनेटाइजेशन का एक सदा हुआ संकल्प, जिसके परिणाम आज देश ने देखे हैं। हम अगर इसको देखते हैं तो आईटीआर की संख्या जो 3 करोड़ के आसपास थी, आज 8 करोड़ की बड़ी संख्या के आधार बनाकर लोग अपने इस देश के वित्तीय विकास में योगदान देने के लिए एक अनुशासित वित्तीय प्रबंधन के कारण जुड़ पाए हैं। हम जानते हैं कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड जिस प्रक्रिया को आधार बनाने का आधार बनकर आगे बढ़ा है, जेम पोर्टल के माध्यम से गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेसमेंट हुआ है, उसमें अभूतपूर्व पारदर्शिता हम सबके सामने देखने को मिली है। कई लोग जीएसटी की बात उसको इधर उधर की बातों में घुमाते हैं, लेकिन जब एक देश एक कर को आधार बनाकर काम करने का महान संकल्प लिया था, आज 1,64,000 करोड़ का कर कलेक्शन, 1,40,00,000 से अधिक लोग अपने आप को इस वित्तीय कर प्रबंधन में जोड़कर खुश होकर आगे बढ़े हैं, तब हम देख पाते हैं कि अगर वित्तीय प्रबंधन को अनुशासन के सांचे में लाकर ढाला गया तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे परिणाम सामने आते हैं। हम दुनिया के सामने 142वें रैंक पर खड़े थे, आज 63वें रैंक पर खड़े होकर हमने आधार बढ़ाया है। उसके परिणाम भी देश को देखने को मिले हैं। आज अगर वाहनों की बिक्री देखें तो 21 करोड़ वाहन बिके। ये आधार बताता है कि देश के और आम जन के बीच में आर्थिक प्रबंधन बढ़े हैं। लोगों ने पर्यावरण को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से 12 लाख से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन खरीदे हैं। यानी देश के नेता अगर अपील करते हैं तो जनता के बीच में सर्वमान्यता से वो स्वीकार्यता बढ़ जाती है। हम सब जानते हैं कि माननीय सभापति महोदय, वित्तीय प्रबंधनों के कारण ही एमएसपी का हम एक बड़ा व्यापक घेरा बढ़ा पाए हैं। हमने किसानों को उनके समर्थन मूल्यों की आवश्यकता अनुसार भुगतान करने की प्रक्रिया को बहुत विस्तार दिया है। हमने किसानों को बीमा के माध्यम से एक विश्वसनीय व्यवस्था को सुदृढ़ ढांचे में ढालकर आगे बढ़ाया है। हमने सब्सिडी सेक्टर में बहुत बड़े विस्तार किए ताकि कृषि प्रसंस्करण के क्षेत्र में और आधार बन सके। हमने किसानों को सम्मान निधि के माध्यम से एक अनुशासित ढांचे में ढालकर 11 करोड़ से अधिक किसान भाइयों को हम अपने आप में जोड़ पाए हैं। माननीय सभापति महोदय, यह वित्तीय अनुशासन का ही परिणाम था कि अगर नीचे जाकर स्थानीय पंचायतों में जाकर हम देखें, स्थानीय निकायों में जाकर देखें, शहरों के वित्तीय प्रबंधनों में देखें तो भारत सरकार के प्रबंधनों की झलक स्पष्ट गांव-गांव, गली-गली, डगर-डगर में हमको देखने को मिलती है। चाहे वो 15 कमीशन का विषय हो, चाहे वो नरेगा का विषय हो, चाहे हम सब लोगों के विश्वास को आधार बनाकर काम कर पाए हों। बैंकों के अंदर एक अविश्वास खड़ा था, लोग अपनी डिपॉजिटों को रखें या न रखें, इस प्रश्न पर खड़े थे। आज बैंकिंग ढांचा सुदृढ़ हुआ है और बैंक एनपीए 4% तक लाकर इन्होंने खड़ा किया है। हम जानते हैं माननीय सभापति महोदय कि 2013-14 का जो शासन व्यवस्था था, आज भारत की सेना, रिटायर्ड सैनिक सड़कों पर खड़े थे। 1 रैंक 1 पेंशन की लंबे समय से मांग थी। आज हम गर्व से कह सकते हैं वित्तीय अनुशासन का परिणाम है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से सुदृढ़ ढांचागत विकास हुआ है, आज 1 लाख करोड़ से अधिक का भुगतान सिर्फ 1 रैंक 1 पेंशन के और उन हितग्राहियों को प्राप्त हुआ है।
हम सब जानते हैं कि किस तरीके से भारत में औद्योगिक सुधार हुआ है, एमएसएमई सेक्टर के अंदर सुधार, ये अभूतपूर्व है। ये भारत के युवाओं को उत्साहित कर रहा है, ये भारत के युवाओं को आगे बढ़ने के लिए और संकल्प को दृढ़ कर रहा है। 1 लाख से अधिक स्टार्टअप देश में खड़े हो जाना, 1,60,000 से अधिक कंपनियों का विकास और निर्माण हो जाना, शहद से लेकर खादी तक, खिलौने से लेकर रक्षा उत्पादनों तक का अगर निर्यात बढ़ जाता है माननीय सभापति जी, तो हम गर्व से कह सकते हैं कि वित्तीय अनुशासन के जो फार्मूले देश के प्रधान माननीय मोदी जी ने हम सबको दिए हैं, उसका एक दृढ़ परिणाम है। हम सब जानते हैं कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम जिस तरीके से देश में ढाला गया है, मैं तो आग्रह करूंगा माननीय सभापति जी, उन सब विपक्षीय संबोधन देने वाले ऐसे सांसद भाइयों से कि एक बार द वैक्सीनेशन वार फिल्म अवश्य देख ले। उन्हें पता पड़ जाएगा कि वो कर क्या रहे थे, उन्हें पता पड़ जाएगा कि देश में अनुशासनहीन व्यवस्थाएं किस तरीके से भारतीय मन मानस को और नीचे गिराने का काम कर रही थी। आज वैक्सीनेशन वार पिक्चर देखने के बाद भारत के अंदर की व्यवस्थाएं, उनके कुप्रबंधन और देश के लिए जूझने वाले उन लोगों की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट होगा, जिन्होंने रात दिन अहर्निश परिश्रम करके और विशेष करके 70% बहनों ने और आईसीएमआर में रिसर्च में अपनी जानें लगा दी। उन्होंने अपने परिवार की चिंता न करते हुए वैक्सीनेशन प्रोग्राम का एक ऐसा आधार खड़ा किया कि आज भारत दुनिया के सामने सर ऊंचा करके कह सकता है कि ये बदला बदला भारत है। हम सब जानते हैं माननीय सभापति महोदय कि वित्तीय प्रबंधनों के बहुत सारे क्षेत्रों में परिणाम आए हैं। हम ये भी जानते हैं माननीय सभापति महोदय, क्षेत्रीय असमानताएं और उसके कारण देश का विकास प्रभावित रहा है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक देश एकजुट होकर काम करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ा है। क्षेत्रीय असमानताओं के कारण हम सब जानते थे कि जो ब्रिटिश इंडिया ने जिस तरीके को अडॉप्ट किया था, क्षेत्र की असमानताएं बनाने के कारण उनको उनके उद्योगों को और उनकी स्वयं की आवश्यकताओं के अनुसार उत्पादन करते हुए बाकी क्षेत्रों में विकास को जीरो करते हुए और देश के धन का दुरुपयोग करने का मौका मिला था। कांग्रेस ने भी, चूंकि आजादी के बाद देश उनके पास था और उनकी सोच में कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम, जो ब्रिटिश आईएएस अधिकारी थे, इटावे के कलेक्टर थे, जिन्होंने जिस पार्टी को आधार बनाया था, उस पार्टी के अंदर जो बीज प्रवाहित थे और ऐसा का ऐसा ही सोच लेकर इन्हें जब तक सरकार चलाने का मौका मिला, ये उसी ब्रिटिश सोच पर देश को चलाते रहे और उसके कारण हम क्षेत्रीय असमानताओं के कारण देश को एकजुट तरीके से विकसित नहीं कर पाए। माननीय सभापति महोदय, हिंसक संघर्ष, विद्रोह, वामपंथी उग्रवाद और हरित क्रांति को कई क्षेत्रों से दूर रखना ये एक दुष्परिणाम था। रेलों का विकास लक्षित नहीं था और इसलिए हम जानते हैं कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इसीलिए इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। और इसीलिए मोदी जी ने लड़कर अपने कदमों में और पूरी प्रक्रिया को लाकर खड़ा किया है। हम जानते हैं माननीय सभापति महोदय, बजट में हम सब ने जिस तरीके से और एक विकसित भारत को सबके सामने संकल्पित करने का प्रण लिया था, उसका परिणाम है कि क्षेत्रीय असमानताओं में जो गिरावट थी उसको सुदृढ़ तरीके से हम आगे ले जा पाए। चाहे वो पूर्वोत्तर क्षेत्र का पर्यटन विकास हो या सीमाओं के रेलवे से लेकर और परियोजनाओं के विकास हों। मैं तो एक बात जानता हूं कि जिस तरीके से क्षेत्रीय असमानताएं नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के साथ साथ उन गरीब जिलों में भी रही, आज 123 ऐसे आकांक्षी जिलों को चिन्हित करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को एक नई दिशा दी है। बेहतर स्टार्टअप इकोसिस्टम का विकास हुआ है, देश में कौशल उन्नयन का विकास हुआ है, पर्यावरण के दृष्टिगत रखते हुए वृक्षारोपण से लेकर बांस प्रत्यारोपण तक के विकास हुए हैं। हम जानते हैं कि देश के विकास को चिन्हित करते हुए किन किन चीजों पर गलतियां हुई है। देश ने आजादी के बाद से असमान विकास किया था, उसका दुष्परिणाम मेरे क्षेत्र ने भी माननीय सभापति जी झेला था। हम जानते हैं कि आज एनएचआई दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 1 लाख करोड़ का बड़ा ऐसा रोड
जो मेरे संसदीय क्षेत्र के उस क्षेत्र से जाता है जो ट्राइबल के निकट होते हुए निकल जाता है, तब हम देखते हैं कि क्षेत्रीय असमानताओं के कारण हमारे उन क्षेत्रों का विकास असंभव था, वो मोदी जी ने संभव करके बताया है। मैं तो धन्यवाद ही दूंगा कि मेरा संसदीय क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है और विकास की राह देखते देखते आजादी के बाद के 75 वर्ष बीत गए, मगर हम खुश हैं कि कल के बजट में ही 500 करोड़ रुपए रेलवे विकास के लिए मेरे संसदीय क्षेत्र को मिले। और मेरे संसदीय क्षेत्र का मैं तो रेल मंत्री जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने अभूतपूर्व विकास किया है। आज रेलों के विकास के कारण मेरा संसदीय क्षेत्र और देश के मैप पर आकर खड़ा हुआ है, तो NHI से जुड़ने के कारण राष्ट्रीय परिदृश्य में मेरा संसदीय क्षेत्र जो सबसे पीछे था आगे के क्रम में आकर खड़ा हुआ है। वित्त मंत्री जी ने हमारे यहाँ कुछ फसलें हैं जो वित्त मंत्रालय के अधीन रहती है, और जिस तरीके से व्यापक ध्यान दिया है, 1 लाख से अधिक लोगों को और अफीम की फसलों से जुड़ने का एक बड़ा मौका मिला है। मैं गर्व से कह सकता हूं कि वित्तीय प्रबंधन का कमाल था कि चंबल हमारे मुहाने पर खड़ी थी और आज 1-1 इंच भूमि चंबल के पानी से सिंचित होने के लिए आगे बढ़ गई है। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और मध्य प्रदेश सरकार को कि जिन्होंने विशेष प्रयत्न करते हुए हमारे इस क्षेत्र में चंबल के पानी को 1-1 इंच भूमि पर सिंचित करने के लिए आगे बढ़ा दिया है। हजारों हेक्टेयर भूमि चंबल के पानी से सिंचित होने के लिए आगे बढ़ गई है। हम क्या गिना सकते हैं। माननीय सभापति महोदय, एक संसदीय क्षेत्र मेरा जहां 3 मेडिकल कॉलेज अगर 10 साल के अंदर खुलकर प्रारंभ हो जाते हैं तो गर्व करने के अलावा, उत्साहित होकर हम सब उमंगों में उल्लासों में रहने के अलावा हमारे पास धन्यवाद देने का और कोई रास्ता नहीं है। हम जानते हैं कि एक सैनिक स्कूल मेरे जैसे ग्रामीण पिछड़े गरीब जिले में अगर आकर खड़ा हो जाता है तो हम गर्व महसूस कर सकते हैं। सेंट्रल स्कूल 2-2 आकर खड़े हुए, PM श्री स्कूल, मध्य प्रदेश में CM राइज स्कूल की श्रृंखला खड़ी हुई, तो 3 नर्सिंग कॉलेज भी एक संसदीय क्षेत्र में लाकर खड़े हुए हैं। खेलो इंडिया के माध्यम से अच्छे ग्राउंडों का विकास होने का क्रम बढ़ा है। हम जानते हैं माननीय सभापति महोदय, न जाति की राजनीति करूंगा, ये दृढ़ इच्छा देश के प्रधान की है, न धर्म की राजनीति करूंगा, कैसे हो मेरे गांव का विकास, मैं उस रणनीति की बात करूंगा। जब देश का प्रधान जातिवाद से ऊपर, धर्म से ऊपर गरीबी को पैमाना बनाकर काम करता है, ये जातिवाद के दलदल में ले जाकर रोज वोटों की बात करते हैं, रोज एक दूसरे से उलझाने की बात करते हैं, तब देश के प्रधान के मुंह से हम विचार सुनने के लिए लालायित रहते हैं कि इस जातिवाद के दंश से माननीय मोदी जी कैसे निपटेंगे। तब वो कहते हैं मैंने 4 जातियां चिन्हित की है जिनको विकास के क्रम में आगे ले जाना है। तो पहली जाति कृषक, दूसरी जाति महिला, तीसरी जाति युवा और चौथी जाति गरीब। जब इस आह्वान को हम अपने संसदीय क्षेत्र में जनता के बीच ले जाते हैं तो जनता भाव विभोर हो जाती है। वो कहती है कि तमाम दलों ने हमें जातियों के दलदल में डाला है, और आज अगर हम जातियों से दूर रहते हुए विकास की बात करते हैं तब विचार आता है उनको कि नारा तो 1971 में लगा था माननीय सभापति जी गरीबी हटाने का। मनोज कुमार ने प्रभावित होकर पिक्चर भी बना दिया था, रोटी कपड़ा और मकान। न रोटी मिला, न मकान का पता था, न कपड़े के पते थे। गरीबी के दलदल में जूझता हुआ यह देश आज 80 करोड़ से अधिक लोगों को निःशुल्क राशन पहुंचाकर एक विश्वास प्राप्त कर चुका है। माननीय सभापति महोदय, जब मैं देखता हूं अपने संसदीय क्षेत्र में कि शहरों में, गांवों में शहरों की झुग्गी बस्तियां लगभग गायब है, शहरों की झुग्गी बस्तियों में जबरदस्त सुधार हुआ है और ग्रामीण क्षेत्रों में मकान बनने के क्रम और एक विश्वास का क्रम इतना बड़ा है। और जब माननीय नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत की संकल्पना की, मोदी की गारंटी वाला गाड़ी जाता है, तब लोगों के मन में अभूतपूर्व स्नेह जागृत होता है और लोग एक विश्वास के भाव से देखते हैं कि अब मेरा भी समय आएगा। हम विश्वास से 10 करोड़ जब गैस के चूल्हे गए, मैं माननीय सभापति महोदय देश को बताना चाहता हूं, मैंने अपने संसदीय क्षेत्र में विकसित भारत यात्रा के दौरान हाथ खड़े करवा कर पूछा कि गैस का चूल्हा किसे प्राप्त नहीं हुआ है। लगभग 1 या 2 नाम जिनमें घर का विभाजन आया हो, उसके अलावा कोई खड़ा नहीं होता। सभी के घर गैस का चूल्हा पहुंच गया है, सड़कें गांव-गांव तक पहुंची है, स्कूलों की व्यवस्थाएं बनी है। और जब हम विचार करते हैं, एक समय था
माननीय सभापति महोदय, कुओं से पानी लाना पड़ता था, पानी दूषित होता था, पाँव में से कीड़े निकल जाते थे। ग्रामीण भारत में सफेद रंग का 1 फीट 1.5 फीट 2 फीट का कीड़ा जो पाँव में, जिसे देशी भाषा में वारा कहा जाता था, तड़प तड़प कर निकाला जाता था। आज जब दौर आया है विकसित भारत के बनने का, तब मैं अपने संसदीय क्षेत्र के गांव गांव में चंबल का पानी पहुंचते हुए अपनी आंखों से देख रहा हूं। जब लोग घरों में रिश्ता बनाते हैं तो पहले जो बहुएं आती थी उन्हें 3 मटका उठाना पड़ता था पीतल का, और बगल में भी 1 मटका लेकर चलना पड़ता था। धीरे धीरे पानी के प्रबंधनों में कुछ सुधार होता रहा, मगर आखिरकार पानी घर तक नहीं पहुंचा। जब शिक्षित भारत अभियान चला, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय अटल जी के नेतृत्व में, भारत में हर एक बच्चे को पढ़ने के अधिकार मिले, तब बहुएं गांव में ब्याहने के पहले अपने पिता से कहती है कि पिता मुझे बताओ, जिस गांव में मुझे ब्याह है वहां मुझे पानी तो नहीं लाना पड़ेगा। जब हम सभा में खड़े होकर कहते हैं पाइपलाइनों का जाल बिछ रहा है कई किलोमीटर तक, और हम कहते हैं कि नई बहू अगर घर में आ रही है तो विश्वास से कह दो कि दिसंबर 2024 का वह महीना जब आपके घर पर पीने का पानी घर के अंदर टोंटी के द्वारा चूल्हे पर उपलब्ध होगा, तब हजारों सैकड़ों की तादाद में महिलाएं भावुक होकर कहती है कि ऐसा प्रबंधन हमने जिंदगी में नहीं सोचा था। माननीय सभापति महोदय, हम जानते हैं कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का परिणाम देश के प्रधान पूर्व देश के लोगों के सामने कहते थे कि मैं 100 रुपए भेजता हूं तो 85 रुपए ही प्राप्त होता है। जब मैं ग्रामीण लोगों से पूछता हूं कि सरकार ने जितना पैसा भेजा है तुम्हें कितना पैसा मिला है, तब हम गर्व से कह सकते हैं कि 34 लाख करोड़ रुपए की बड़ी राशि डीबीटी से ट्रांसफर हुए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुए। अगर उसका 15% हम निकाल कर देखें तो वो 5,10,000 करोड़ ही पहुंचता। 28 लाख करोड़ तो घपले में चला जाता, 28 लाख करोड़ तो भ्रष्टाचार में चला जाता, और 28 करोड़ के भ्रष्टाचार में लालायित होकर कई लोग न्याय की यात्राएं कर रहे हैं, कई लोग दीवाने बन रहे हैं कि 28 लाख करोड़ तो उन्हें उनकी पॉकेट में मिलता। आज देश का पैसा बच गया और ये गरीब के घर चल गया। गरीब के घर खुशियों की बहार है, गरीब के घर पर आंगन पर खुशियों की और रंगोली लगी पड़ी है। हम जानते हैं माननीय सभापति महोदय कि आज हम देखते हैं कि किस तरीके से आजादी के बाद जाल में हमें फंसाया गया। गांव में हम जाते हैं तो यूकेलिप्टिस का पौधा लगा हुआ, सूबबूल का पौधा लगा हुआ, वृक्षारोपण के नाम पर गांव के लोग पूछते हैं, बच्चे पूछते हैं कि इस पर फल कब आएगा। तो मैंने कहा या तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बता पाएंगे कि यूकेलिप्टिस का पौधा वो लाए थे, उस पर फल कब लगेगा। सूबबूल लाकर खड़ा किया, बकरी हमारा फली खा लेती थी, बकरी दोनों पांव ऊपर करके खड़ी हो जाती है। बोले भैया मेरी बबूल वाली फली कहां गई? मैंने कहा वो तो फली कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ही बता पाएंगे कि वो क्यों ले गए। गायों के लिए गाजर घास, देश का कैसा विकास था और आज नक्शा बदल रहा है। हम जानते हैं कि किसानों को 2900 रुपए 2800 रुपए में यूरिया खाद लाकर देना पड़ता विदेशी बाजारों से, और उन्हें 266-70 रुपए में उपलब्ध कराना पड़ता है। भारत का फर्टिलाइजर सब्सिडी सेक्टर बहुत बड़े घाटे में खड़ा है। माननीय सभापति महोदय, देश के युवा, देश के वैज्ञानिक जब प्रयास करते हैं तब नैनो यूरिया, नैनो डीएपी जैसे प्रयास हमारे सामने आते हैं। और माननीय सभापति जी, मैं समाप्त कर रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, हम विश्वास में जब नैनो यूरिया और नैनो डीएपी और पेस्टिसाइड की बातें होती है, हरित क्रांति के नाम पर जिन प्रदेशों का विकास हुआ, आज वहां कैंसर के मरीजों से भरी गाड़ियां चलती है। आज जब पेस्टिसाइड छींटने का अवसर या यूरिया को प्रतिबंधित करते हुए कितनी गांव में आवश्यकता, तब मिट्टी परीक्षण जैसा महान काम देश के अंदर खड़ा हुआ है। और ड्रोन के द्वारा, हम ड्रोन दीदियां जब ड्रोन के द्वारा दवाई छींटने का काम करेगी तो गांव के किसानों के अंदर बड़ी प्रसन्नता है। मैं प्रसन्न होकर यह कह सकता हूं माननीय सभापति महोदय कि आज देश में चाहे बात सैगोल की हो, चाहे काशी तमिल संगमम की हो, चाहे धारा 370 की हो, चाहे राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण की हो, चाहे सेना का एकीकरण का विषय हो, चाहे अबू धाबी में बनने वाले मंदिर का विषय हो, चाहे दक्षिण ध्रुव पर तिरंगा फहराने का और विषय हो, चाहे वैक्सीनेशन के निर्माण में लगे साइंटिस्टों के प्रयासों का विषय हो,
चाहे रक्षा उत्पादों में निर्माण में हम आगे बढ़ गए हों, चाहे नई शिक्षा नीति के माध्यम से हम और बच्चों को नई शिक्षा नीति से जोड़ पा रहे हो, चाहे गोल्ड का रिजर्व स्टॉक बढ़ा हो, चाहे फॉरेक्स का रिजर्व स्टॉक बढ़ा हो। आज देश में निर्यात करने वाली सामग्रियां 190 देशों को 7,500 से अधिक वस्तुओं का निर्यात करके हमने देश को आगे बढ़ाया है। तब हम विचार करते हैं, फार्मूला उनके भी पास था, उन्होंने फार्मूला शायद उनके दामाद को दिया और देश ने फार्मूला लाखों करोड़ों युवाओं को दिया है। और इसलिए हम कह सकते हैं बहुत स्पष्ट से कि प्रयास करने वाले सारे लोगों के मन के जो प्रयास हैं वो ऐसे ही होते हैं जैसे पानी पर तस्वीर बनाने से तस्वीर बन नहीं सकती, जैसे आलू से सोना बनाने से सोना बन नहीं सकता, वैसे ही सिर्फ ख्वाब देखने से तकदीर बन नहीं सकती और तस्वीर बदल नहीं सकती है। माननीय सभापति महोदय, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण का समर्थन करता हूं इस आशा विश्वास के साथ कि आजादी के यह स्वर्णिम काल के 2047 तक का काल भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए प्रेरणास्पद रहेगा और यह संबोधन माननीय राष्ट्रपति महोदय का युवाओं, महिलाओं, गरीबों और किसानों के लिए आधार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुधीर जी, आपका ये स्पिरिटेड भाषण, वक्तव्य जरूर सबको प्रभावित किया होगा। मैं अभी I request Mr. Kalanidhi. Sir, thank you very much for giving me an opportunity to speak on the motion of thanks on the President's address, sir. Sir, we all know that it is customary that a President's address, though delivered by the Honorable President, it is basically the government's policy which is being written by the government, and it is only through her that the government's policy is expressed, sir. Why I say that is, to add more evidence to that, our Honorable President, being a scheduled tribe person, has not been able to mention even a single word about the horrors which had happened in the northeast states, sir. And if she had been given an opportunity, I'm sure that she would have been wanting to say at least a word of consolation or a word of confidence to the local people over there. It is sad that this government did not give her an opportunity to even add a single word or a single line in that, to at least console the people of that region, to make them feel that we are also a part of this country and we are not alienated from this country, sir. Sir, having clarified that, the budget speech, the President's address had a lot of points about development and growth and GDP, sir. Sir, this government has consistently been comparing itself to what has happened in the last 10 years and to the previous 10 years prior to that. So if you look at India, India is a very culturally rich and it has a very long heritage, sir. Sir, if you look at even during the Mughal period, India was considered as one of the richest nations, accounting for something like 25 to 30% of the world's GDP. But subsequently, after the British rule, systematically the wealth of India had been siphoned off, where the GDP of India came to around 1 or 2% of the world GDP. So having had our independence in 1947, the next 44 years, we had very primitive ways of looking at economy, and those days it was a period of nascent stage where we had to make sure that this freedom, what we had achieved in a peaceful way by our great leaders like Mahatma Gandhi and Nehru and even Subhash Chandra Bose, with all their efforts, we were able to achieve a freedom. But many countries were saying that India will not remain a free nation and soon it will be disintegrated and collapse. But despite that, the initial few decades, for the next 40 years, nation building was the primary motive, and during that period we also had to go through making sure that we have enough agricultural produce, enough milk produce. So we had the Green Revolution, White Revolution, everything happening. It was only in 1991 to 96 when Honorable Prime Minister, then Prime Minister, Mr. P.V. Narasimha Rao was the Prime Minister, and our Finance Minister was our former Prime Minister Manmohan Singh. During this period that the economy of the country was opened up, and from then, if you see the growth of India, it has gone in a very successful and very commendable way, sir. If you look at the decadal growth from 1994, in 1994, our GDP was about $300 billion, sir. In 2004,
we had touched $700 billion. So that is about 130% of growth, which means 13% annually. That was the growth which happened during the 10 years. Sir. Subsequently, between 2004 to 2014, it was around $700 billion. It went up to $2.1 trillion, sir. It was a very impressive 18% annual growth, sir. It was 180% growth during that period. But if you look at what happened between 2014 and 2024, what was $2.1 trillion has only reached $3.3 trillion. I agree that there were big challenges like the pandemic, and there was a war which happened between Ukraine and Russia, which set back the whole world. But despite that, our growth could have been a little bit more promising, sir. But the growth which has happened in the last 10 years is only about 60%, which is annually about 6%, sir. And in the speech, the president had mentioned that the inflation, which was 8% during the 2004 to 2014, has been controlled and it's brought down to 5%. The inflation is 5% now. But you also have to understand that whenever there was such huge growth happening, this inflation also is bound to be higher. And also, this government, they had mentioned that we have elevated 25 crore people out of poverty, sir. I congratulate the government on this. But having said that, in the same note, they also say that 80 crore people have been provided free food. So 80 crore people is about 57% of the total population, sir. So if you're saying that 80 crore people had to be fed during the pandemic, that is understandable. But saying that now that the pandemic is over and we have recovered from it and we are back to normal, saying that we are going to be continuing it for another 5 years, I find it paradoxical, contradictory, saying that you have eliminated poverty, but at the same time you are saying 80 crore people can't afford to buy their own food. So if this is the state of affairs, I really wonder which statement I should take it as the true one. And also, we are talking about, when we are talking about the Citizenship Amendment Act, sir. So we were talking about Citizenship Amendment Act. It is restricted only to 3 countries, sir. As our parliamentary floor leader, Mr. T.R. Balu, had also mentioned, we have sadly forsaken the Sri Lankan Tamils, sir. There are more than 1 lakh Tamils who are there in India for more than 40 years, sir. From 1983, these people have been here, where they have had children over here, and none of them are given any of the facilities of this country, and we have kept them as refugees for the past 40 years. They have been denied certain educational opportunities. Act, I'm sorry, sir? The Citizenship Amendment Act, yes, sir, was more on religious persecution. Sir, this persecution was also on religious and linguistics, sir. You have to understand that Buddhism was the main religion in Sri Lanka, and they had also said that non-Sinhalese speaking people should not be staying here, and I am sure that you will be aware of the horrors that they went through, sir. In 1983, in the Black July, the number of people who were murdered, tortured, and even subsequently the horrors which have befallen them, it makes me shudder to even think about that, sir. Because when I was studying in 10th standard, this happened. And I remember that as a 10th standard student, it was announced as a public holiday on the day these horrors happened. And usually when we are kids, we enjoy every day whenever there is holiday. But on that day, every classmate of mine, we all had tears listening to the horror stories which had been perpetrated on the Tamils in Sri Lanka, sir. So I request this government to ensure that a suitable amendment be made where all these people, that 1 lakh people who are here, they are all living in camps over here, sir. That they all be considered and citizenship be given. Sir, 2 prime ministers had signed an accord, sir. Former Prime Minister Madam Indira Gandhi and Mr. Rajiv Gandhi, both of them have signed an accord saying that citizenship will be given, and they have been deprived of that, and they have been living in very, very pathetic conditions, despite our Tamil Nadu government trying to do the best for their relief, sir. Sir, also this government had come out with announcements saying that girls' marriage age should be fixed at 21. Sir, I probably think it is a commendable decision, sir, because that would reduce the incidence of maternal mortality and infant mortality, all those things. But having said that, we have to understand that children are going to be finishing their +2 at the age of 17. So for the next 4 years, what are the parents going to be doing with the girls? So taking this into consideration, our Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Mr. M.K. Stalin, has brought in a new system, a scheme, where any student, a girl student, who finishes her +2, and if she goes to college, she is incentivized where she is given every month 1,000 rupees. Sir. This will encourage more and more women to go in for graduation. So I hope that the government
while having this kind of a law saying that marriage age is at 21 for ladies, I think they should also consider giving some kind of incentives so that these girls will be able to do something purposeful and be able to educate themselves so that even employment opportunities will be better for them, sir. So similarly, in Tamil Nadu has been a forerunner in many of the schemes, sir. If you look at the noon meal scheme, it was initially started by our great leader, Mr. Kamaraj, and subsequently it has been refined and made better. So this noon meal scheme has ensured that malnutrition among children is reduced. But despite that, we found that people were going to schools only during the lunchtime because the parents will say that lunch is being served at 12:30, so you go there at 12 o'clock. So to overcome that and also to ensure that adequate nutrition is provided, our Honorable Chief Minister has also brought a free breakfast scheme for school children in the primary schools, sir, up to 5th standard. So I think this government... Midday meal started from Tamil Nadu. Midday meal started from Tamil Nadu, so yes, I am aware of that. I told you that Kamaraj was the first person who had started it. So having been a forerunner on this midday meal scheme, I would request that the government consider a similar program for a breakfast scheme also for children. This will ensure that students spend at least 3 to 4 hours in the school, sir, so that people don't come only during the noon time and have their lunch and go. So this will also increase if you see a lot of schools, their mathematics skills and all those things are not up to the mark. This is what a study has shown. So if this is implemented, I'm sure that it will help in these people getting into schools also, sir. And this government also claims that they are giving so much of importance for scheduled caste, scheduled tribe and OBC students for their education. But sadly, 4 days back, UGC, University Grants Commission, they had come out with a circular saying that reservation of SC, ST and OBC can be left alone if adequate number of students have not joined this. So that was a news which had come, sir. I don't know if it is true or false, but I feel that this should not be implemented and it should be the government's decision to ensure. To clarify. चेयरमैन सर, वो जो न्यूज जिसका यूजीसी के चेयरमैन की जगदीश कुमार जी का नाम लेकर के कह रहे हैं, उसके बाद हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने एकदम क्लियर किया है कि जो SC, ST, OBC के लिए सीटें रिजर्व होगी उसको कोई डी रिजर्व नहीं कर सकता, क्लियर किया है। Who got a response from the government during this debate? I thank the Minister for it, sir, and I thank you for getting it clarified even as I was speaking, sir. So as long as the news is false, I am very happy, sir. I'm sure that everybody in the country would be very happy with that decision. Sir, also in Tamil Nadu, we have also implemented a scheme where BPL families, these families will be provided with 1,000 rupees per month for bringing them out of their poverty, sir. So when we talk about BPL, the initial criteria for deciding on which family is below poverty line family, it was economic consideration, sir. It said that any person earning less than 27,000 rupees per annum, so which amounts to less than 2,500 rupees per month, these are BPL. But now they have come out with a new system where they call it as multi-dimensional poverty index or whatever. So we don't know what criteria they are using. They are using health, education and stuff like that, sir. Sir, also in Tamil Nadu, we have implemented a scheme where women can travel free by bus. So this will incentivize women where they'll be able to have more savings. This government speaks about farmers' welfare, women's welfare. I feel that bringing targeted policies like this will definitely help these women in empowering themselves and making sure that they are also economically better off, sir. Sir, 2 minutes, sir. Sir, when coming to the micro, small and medium enterprises, sir, there are 6.34 crore MSMEs, sir. Of this, 6.3 crore are micro enterprises, sir, which means that their investment is less than 1 crore. And I request that the government have a separate ministry for this micro industries, sir, because 98% of the MSMEs are only micro industries, and most of these are proprietorship concerns. So this government has given a tax rebate for corporates where they have reduced the tax from 30% to 23%, whereas these proprietorships where they are micro industries, they end up still paying 30% when they earn more than 15 lakhs, sir, because they have a turnover of up to 5 crores. Sir, regarding the infrastructure, everybody is talking about infrastructure, but I have to say that India has still got a long way to go when it comes to infrastructure, sir. We need a huge dedicated rail network for
cargoes, sir. We don't have that. And the infrastructure, existing infrastructure is so poor that the number of accidents is actually alarming. And I feel that when we are comparing ourselves with the rest of the countries and saying that we are very great, we have to also see that countries like Japan, they have had high-speed rails where not a single incident of any casualty has ever been recorded in the last, say, about 50 years, sir. So when we have to take lessons from those kind of countries to see how best we can improve ourselves, sir. And also inland waterways. The government has a proposal where 6 lakh crores was to be invested in development of inland waterways, the national waterways, sir. Especially in Tamil Nadu and Andhra connecting National Waterways 4. Despite repeatedly asking the Inland Waterways Authority, we have not been able to get any kind of response about whether even a DPR is made available, sir. So I request this government to ensure that inland waterways are also developed. And when it comes to medical colleges, everybody was talking about how all the medical colleges are has improved in the last 10 years. I congratulate the government on this. But sadly, in Tamil Nadu, in Madurai, for the last 5 years, this AIIMS college has not been constructed. Other colleges which were announced at the same time have all commissioned and they have started functioning where students are studying, patients are being benefited, sir. But here, the students are being sent to Ramanathapuram Government Medical College. And it is very sad that the first few batches of students are going to be passing out as AIIMS doctors without ever stepping into a AIIMS hospital ever in their life, sir. It is very sad, and I also wonder what happens to the remaining students who are studying in the same college. There are 100 students who are already studying over there, whether they also will be considered as AIIMS students. Sir, regarding the sports, the development of sports in this country, we are very proud to see that more than 100 medals have been won in Paralympic Games and Asian Games and all those events, sir. But if you see the allotment which is being made for the states for their development, 600 crores has been spent on Gujarat, sir. Whereas Haryana, which is the state which has bagged the maximum number of medals, a measly 60 crores is what was given to them. And Tamil Nadu, of course, you know that it would have been much, much lesser than that. So I request that this government identify talent and see how best these states are developing in sports, depending on the number of people who are getting medals, and accordingly allocate funds to ensure that the right things are done, sir. So similarly, the government has had a policy about Kendra Vidyalaya schools, sir. Kendra Vidyalaya schools were at one point in time opened in railway land, but now the railways have come out with land guidelines which makes it impossible for railway lands to be utilized by Kendra Vidyalaya schools. For the last 3 years, I have approached both the railway minister and the HRD minister, and I have not been able to resolve this, and I hope that through you that request be placed where in my constituency of North Chennai, Kendriya Vidyalaya school be started, sir. Thank you very much. Thank you. Shri Muhammad Bashir. Sir, thank you very much. Sir, in President's speech, para first itself, in its beginning, says that this new parliament building will witness to productive dialogue and policies. Okay? Let's hope for the best. But sir, within my experience about this house, especially in this era, I feel that her dream is not going to be a reality. As far as this government is concerned, they are not for constructive discussion and things like that. See, what is happening, sir? I agree. Parliament is a forum for debate, discussion, and things like that. But this government is not for that. This is the only government which took crooked methods to deceive the elected representatives. It's a very serious thing, sir. Similarly, sir, this is the only government which adopted this kind of hate policies. They hate the critics, they silence the opponents, they even charge criminal cases against them. How bad is that, sir? This great house, we have to witness very sharp criticism. We must have tolerance for that. This 0% tolerance is not at all welcome, sir. What we have witnessed in the past, sir? After independence, I am raising a very, very important point, sir. After independence, this government was the worst government as far as the approach to the minorities are concerned. Kindly excuse me in saying that. With due respect, I am saying that, sir, after 75 years of independence, the minorities, especially Muslims, had series of hellish experience, sir. I am very sorry to say this. India had never witnessed
such an anti-minority government, I humbly suggest that the government should correct this mistake. Sir, what was our focus area? Youth power, women power, farmers and poor. Okay, what is the real fact, sir? But in India, how? These categories are neglected like anything. Deprivation level is very, very critically less. Sir, in fact, you are not at all with the poor. You stand for big business houses, industrial magnates like that. Sir, what was the slogan you were loudly saying? Sabka Sat, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Praya. But in practice, you are digging ditches for them. It is nothing but some kind of deep exercises. So, sir, another thing I would like to say, sir, you claim that this parliament building is built up during your tenure. Okay, that's good. At the same time, I'm telling you, when we are saying proudly this thing, we have to realize one more thing. Pillars of the democracy, whether it is parliament, executive, judiciary, and the fourth estate, freedom of press. What is happening, sir? Its pillars has been narrowed down. It has been weakened due to your wrong policies. You must have an open mind, sir. Sir, our forefathers, they did marvelous work. 3 years for Constituent Assembly debate. We got a best constitution. Unfortunately, that constitution is now facing challenges. I humbly request that it is to be corrected. After independence, Navabharata Shilpigal, new India's architects, they did a lot of work for us. They made best institutions, classical institutions, national level institutions. Unfortunately, now what is happening? You are spoiling all these things. Sir, now one thing. You are also, now the treasury benches, they are in a, let me say, they are in a very, what is celebratory mode. They say that this Ram Mandir, okay, that is, you are claiming that. But one thing I will tell you, this structure is there. At the same time, sir, we have to realize that another kind of things are going on. What is happening? After this Babri Masjid, Gyan Bapi is now coming. This is a story. This is how cruel that is, sir. This kind of things are taking place. One thing, you know, recently, one thing also happened. Another mosque near to that is 800 years of mosque. That is Maroli in here in Delhi only. Sir, what is happening, sir? There also that is demolished, and we must understand that this kind of incident give a bad name for the entire nation. Our country was that of tolerance. We have to respect that. We have to respect our tradition. So what is this kind of things are going on? Towards the end, sir, I would like to say, this now BJP leaders and their ministers, they are saying that they are going to bring CAA and the other thing, Common Civil Code. I request you, don't play with fire. When you introduced this earlier, there was a lot of pressure, there was a lot of agitation, especially from the budding generation. These things were there. Again, if you bring this kind of thing, you are opening a floodgate. I request you, why should you spoil? A government should be that of kindness. A government should be that of positive kind of things. Unnecessarily, you are spreading this kind of hate and things like that. Sir, one thing I want to tell you, government, we expect from the government. Whether it is Muslims, Hindus or Christians, we are the citizens of this country, sir. We are born and brought up here. Don't take this kind of cruel stand against the citizens of India, especially for the Muslims. I am not advocating for the Muslims. They are also here. They have given tremendous contribution in the freedom struggle. They did a lot of things for the country. Unfortunately, you take some kind of victimization against them. You have to make an end to that. Sir, I would like to say that we really want what we want, peace and cordiality in the country. I hope that the government will dedicate for that. I request the government to correct the mistake. I hope that wisdom will prevail upon the government. Sir, with these few words, I conclude. Thank you very much. धन्यवाद. राजेंद्र अग्रवाल जी.
धन्यवाद आदरणीय सभापति जी। महामहिम राष्ट्रपति जी के संवेद सदन को दिए गए संबोधन पर धन्यवाद प्रस्ताव के संबंध में बोलने का आपने मुझे अवसर दिया। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। माननीय सभापति जी, 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने। पहले ही अपने संबोधन में उन्होंने अपनी सरकार का एजेंडा घोषित किया था और उन्होंने कहा कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित होगी, मेरी सरकार गांवों किसानों को समर्पित होगी, मेरी सरकार महिलाओं और नौजवानों को समर्पित होगी तथा मेरी सरकार उस प्रत्येक वंचित वर्ग को समर्पित होगी, वंचित व्यक्ति को समर्पित होगी जिसकी आज तक उपेक्षा की गई है। इस प्रकार की बातें माननीय सभापति जी देश पहले भी सुनता आया था। बड़ी बड़ी बात ये लोग कह देते थे। अभी मुझसे पूर्व हमारे एक वक्ता ने जब एक प्रधानमंत्री जी की गरीबी हटाओ वाले विषय की चर्चा की तो बहुत नाराजगी हमारे कांग्रेस के मित्रों ने जाहिर की, परंतु ऐतिहासिक सत्य है ये। उससे पहले भी इसी प्रकार के थोथे वायदे लोग करते थे और पतली गली से नहीं, राष्ट्रीय राजमार्ग से निकल करके चले जाते थे। वो कोई उनको पकड़ता भी नहीं था। और उसके कारण से देखा जाए तो माननीय सभापति जी संपूर्ण संसदीय व्यवस्था, संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था के प्रति एक प्रकार का अविश्वास पूरे देश के अंदर निर्मित हो गया था कि जो नेता हैं ये झूठे वादे करेंगे, झूठे वादे करके सरकार बनाएंगे और फिर निकल जाएंगे। हमारे लिए इनके मन में कोई दर्द नहीं, हमारा काम ये नहीं करेंगे। लेकिन माननीय मोदी जी ने जब ये बात कही उसके बाद से देश का चित्र बदलना शुरू हुआ है। उन्होंने जब ये कहा कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित रहेगी, मेरी सरकार गांवों किसानों को, महिलाओं को, युवाओं को, वंचितों को समर्पित होगी, उसके बाद से निरंतर उस प्रकार की योजनाएं देश के अंदर बनाई जाती रही, उनको लागू किया जाता रहा और उसका लाभ इन वर्गों तक पहुंचता रहा। मैं बहुत विस्तार से उसकी चर्चा नहीं करूंगा, पहले ही वक्ताओं ने उसकी चर्चा की है। यानी जनधन खाते एक का मैं जरूर उल्लेख करना चाहता हूं। गरीबी हटाओ का नारा लगाने वाली प्रधानमंत्री जी ने नेशनलाइज किया बैंकों को, खाते नहीं खुले, लेकिन गरीब आदमी बैंक के दरवाजे तक पहुंच नहीं सकता था। ये माननीय मोदी जी थे जिन्होंने जिसकी जेब में एक नया पैसा नहीं है उसका भी खाता खुलवाने का काम किया। इंक्लूसिव इकोनॉमी का इससे श्रेष्ठ उदाहरण पूरी दुनिया के अंदर नहीं है। और परिणाम क्या हुआ? मैंने कहा मैं एक उदाहरण विस्तार से जरूर देना चाहता हूं। 55 करोड़ खाते खुल चुके हैं। 38 लाख करोड़ डीबीटी के अंदर, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अंदर उन वर्गों को पहुंच चुका है जिन तक ये पहुंचने की संभावना नहीं रहती थी। खुद एक प्रधानमंत्री जी का 1 रुपया भेजता हूं, 15 पैसे पहुंचते हैं। मैं हिसाब लगा रहा था यदि उनका शासन होता और यदि ये खाते तब खुल गए होते, संभावना इतनी भी नहीं थी, तो मुश्किल से 5.5 लाख करोड़ पहुंचते और बाकी के लगभग 33 लाख करोड़ इन लोगों के बीच में चले जाते। और मुझको लगता है कि कांग्रेस के लोगों को ये 33 लाख करोड़ गंवाए जाने का बड़ा भारी दुख है, इसलिए वो पता नहीं किस किस प्रकार की यात्राएं कर रहे हैं। हाँ है नहीं, सुन नहीं रहे, यात्रा पर है। यानी इसी प्रकार से आप ये देखें कि चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, मकान बनाने की बात हो, पानी पहुंचाने की बात हो, बिजली पहुंचाने की बात हो, उसके आंकड़े मैं फिर कह रहा हूं, उसको दोहराना नहीं चाहता हूं मैं। यानी 11 करोड़ मकान बनना, 4 करोड़ मकान बनना, 11 करोड़ शौचालय बनना, ये साधारण बात नहीं है। 11 करोड़ घरों के अंदर जल पहुंचना, 10 करोड़ उज्ज्वला के कनेक्शन पहुंचना। मुझे ध्यान है जब माननीय अटल जी की सरकार से पहले की सरकार थी तो गैस के कनेक्शन प्राप्त करने के लिए लाइन लगती थी, गैस का सिलेंडर प्राप्त करने के लिए लाइन लगती थी। अटल जी की सरकार आई, लाइन खत्म हो गई, फिर यूपी की सरकार आई, फिर लाइन लगनी शुरू हो गई। ये स्थिति थी, सबको ध्यान होगा इस बात का ही। तो ये जो परिवर्तन आया है
ये जो काम हुए हैं उसके कारण से आज सत्ता प्रतिष्ठान के संबंध में देश के सामान्य जन के मन के अंदर एक विश्वास पैदा हुआ है। उसको लगता है मोदी जी कुछ कहते हैं तो वो मोदी की दी हुई वो गारंटी है, वो गारंटी जरूर पूरी होगी। और किस कठोर परिश्रम के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन कामों को पूरा किया है। पिछले 10 वर्षों के अंदर एक दिन तो माननीय सभापति जी ज्यादा होता है, चौथाई दिन का अवकाश भी हमारे प्रधानमंत्री ने लिया नहीं है। उन्होंने कहा मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, सत्ता ये उपभोग का विषय नहीं है, सत्ता ये सेवा का माध्यम है। और उस नाते उन्होंने अखंड सेवा पिछले 10 वर्षों के अंदर की है। और इसी कारण से उनकी जो गारंटी की जो छवि है, गारंटी पक्की गारंटी की जो छवि है आज देश के अंदर बनी है। माननीय सभापति जी, माननीय मोदी जी की सरकार के लिए, हमारे लिए जो विकास है ये कभी भी वोट का विषय नहीं रहा है। जो वर्ग जिनके बारे में ये कहा जाता था कि ये शायद भाजपा को वोट नहीं देते हैं या कम वोट देते हैं, हमने उस आधार पर कभी भी, चाहे क्षेत्र हो और चाहे वो जातियां हो और चाहे वो धार्मिक ग्रुप हो, हमने कभी भेद नहीं किया। आकांक्षी जिले, मैं उसका उल्लेख जरूर करना चाहूंगा, आकांक्षी जिले ये वोट बैंक का हिसाब नहीं था उसके अंदर। जो देश भर के अंदर पिछड़े हुए जिले रह गए हैं विकास की यात्रा में, उन तक भी विकास समान रूप से पहुंचे, इसकी योजना माननीय मोदी ने बनाई। उत्तर पूर्व सीमांत प्रदेश है, उसकी रक्षा की दृष्टि से, उसके विकास की दृष्टि से वोट का हिसाब रख करके नहीं, देश के अंदर उसके एकात्मता के भाव को सुदृढ़ करने के लिए वहां के विकास की आवश्यकता थी। और माननीय मोदी जी ने उस विषय को पूरे दमखम के साथ, पूरे विस्तार के साथ, पूरे डिटेल्ड योजना के साथ उसको उन्होंने आगे बढ़ाया है। हमारे लिए विकास हमारी आस्था का विषय है और इसीलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, इस प्रकार की बात लेकर के हम लोग चले हैं। मोदी जी की जो गारंटी है माननीय सभापति जी, ये केवल देश के अंदर ही नहीं, दुनिया के अंदर भी इसकी मान्यता है। कितने देशों के अंदर हमारे नागरिक फंस गए थे, इराक के अंदर फंसे, कतर के अंदर फंसे, यमन के अंदर फंसे। एक एक नागरिक को सुरक्षित वहां से निकालने का काम यदि किसी ने किया तो मोदी जी की सरकार ने किया। और यूक्रेन और रूस का ये तो विषय भी ताजा ही ताजा है। तिरंगे की छाया के अंदर युद्ध विराम करा करके अपने सभी नागरिकों को सुरक्षित वापस निकालना, ये माननीय मोदी जी की गारंटी का हिस्सा था। और उसमें हमारे जो पड़ोसी देश है उसके भी नागरिक निकल करके आए। तो मोदी जी की जो गारंटी है ये सब तरफ उसका प्रभाव है। अभी आपको स्मरण होगा 41 हमारे मजदूर श्रमिक उत्तराखंड के अंदर सुरंग के अंदर फंस गए थे, कई दिन लगे उनको निकालने के अंदर, लेकिन एक क्षण भी माननीय मोदी जी की दृष्टि से उनकी चिंता वो दूर नहीं हुई। और मुझे कई बार तो लगता है, उस वक्त जो वक्तव्य उनको आप भी याद करेंगे, तो कई बार तो मुझे लगता था कि हमारे विपक्ष के कुछ नेता, कुछ लोग ये चाहते थे कि कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाए कि हम कुछ आलोचना करने हमको मौका मिल जाए। लेकिन 41 के 41 मजदूर श्रमिक सकुशल वहां से बाहर आए, ये मोदी जी की गारंटी का प्रभाव था। और जब वहां से निकले तो उन्होंने कहा हमें भरोसा था, हम कठिनाई के अंदर थे परंतु हमें भरोसा था कि मोदी जी हैं तो जरूर हम सुरक्षित अपने घरों को पहुंच जाएंगे, हमें यह विश्वास है। अभी हमारे पूर्व वक्ता ने कुछ बातें कही हैं और भी कांग्रेस भी लगभग उन्हीं बातों को कहती रहती है सांप्रदायिकता को लेकर के। मैं माननीय सभापति जी कुछ क्षण इस विषय पर जरूर कहना चाहूंगा। देश की राजनीति के अंदर कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान भ्रष्टाचार को लेकर के है। प्रथम प्रधानमंत्री के समय से ही भ्रष्टाचार के मसले आते रहे और उनके अंदर वृद्धि ही होती रही।
यूपीए के 2 टर्म के कार्यकाल के अंदर 12 लाख करोड़ के घोटाले हुए, ये सारा देश जानता है। अर्थव्यवस्था खोखली हो चुकी थी, देश के अंदर जो है एक प्रकार की निराशा व्याप्त हो गई थी। लेकिन उसके अलावा वोट बैंक की राजनीति का जो विषय है, ये कांग्रेस की बहुत ही घातक देन इस देश को है। यानी किसी भी प्रकार से सांप्रदायिकता का आंचल इस कारण से उन्होंने ऐसा पकड़ा, जिसकी वजह से सारे के सारे देश के अंदर एक मन बटे हैं, समाज बटे हैं, देश बटा है, ये स्थिति यहां पर आई है। मैं एक सवाल यहां जरूर, ये संसद है, सबसे बड़ा हमारा ये विचार विमर्श का स्थान है। मैं माननीय सभापति जी, हमारे बहुत पूज्य गुरु, सबके सम्मानित, सबके श्रद्धा के केंद्र गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली के चांदनी चौक के अंदर उनका शिर छेद कर दिया जाता है, इस कारण से कि वो एक धर्म विशेष को स्वीकार नहीं करते। हमारे 2 साहिबजादों को जरा कोई कल्पना करे, ईंट दर ईंट लगा करके, और ये कहते हुए इस्लाम स्वीकार करोगे, वो नहीं करते, उनको जिंदा दीवार में चिनवा दिया जाता है। दुनिया के इतिहास में घटना कहीं नहीं होगी। मेरा निवेदन यह है कि जिन्होंने किया उन्होंने किया, लेकिन उन लोगों को महिमा मंडित करने का काम यदि कोई दल, यदि कोई व्यक्ति करता है, तो वो सांप्रदायिक है, वो किसी भी प्रकार से सर्वधर्म समभाव का पोषक नहीं है। राम मंदिर का विषय आया, राम मंदिर का विषय सुलझ सकता था, राम आस्था का विषय है, लेकिन बहुसंख्यक समाज की आस्था का विचार न करते हुए केवल कानूनी झंझटों में उसको फंसाए रखना, यह इसलिए भी संभव हुआ क्योंकि कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति का दामन पकड़ रखा था। अब मैं उसको विस्तार से कहने की कोई समय भी नहीं है, लेकिन प्रथम प्रधानमंत्री जी के समय से जिस प्रकार का रुख उसके प्रति किया गया, वो सारा का सारा देश जानता है। मैं खुद आंदोलन से जुड़ा रहा हूं। आप देखें, सबसे बड़ा विश्वविद्यालय सांप्रदायिकता का यदि कोई है वोट बैंक की राजनीति के कारण, तो कांग्रेस है, और वहीं से सब लोगों ने सीखा है। उस वक्त के रेल मंत्री थे, मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े यशस्वी रेल मंत्री थे, मुख्यमंत्री भी रहे बिहार प्रांत के। उन्होंने एक यूसी बनर्जी के अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया, और उसने गोधरा में जो ट्रेन चला दी गई थी, उसमें निष्कर्ष निकाला कि अंदर स्टोव से आग लग गई थी, उस पर कोई हमला नहीं हुआ था। यानी इस प्रकार की मनोवृत्ति थी। और आपको ध्यान होगा, आप बहुत हमारे विद्वान सांसद हैं, सर्वश्रेष्ठ सांसद हैं, एक यूपीए के समय में एक बिल लेकर के आए थे ये लोग, प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल एंड टारगेटेड वायलेंस। अब मैं उस बिल का, यानी इस प्रकार का वो बिल के अंदर प्रावधान था कि यदि कहीं अल्पसंख्यक वर्ग और बहुसंख्यक वर्ग में कोई विवाद हो जाए और वो कंप्लेंट कर दे अल्पसंख्यक वर्ग का व्यक्ति, तो ये बहुसंख्यक वर्ग की जिम्मेदारी है कि अपने को निरपराध घोषित करे, उसका सारा खर्चा उसी को वहन करना पड़ेगा, इत्यादि इत्यादि। वोट बैंक की राजनीति के कारण से इस प्रकार के जो विषैले तत्व हैं ये देश की राजनीति के अंदर आए। और मैं ऐसा समझता हूं कि यदि हमको देश के अंदर सर्वधर्म समभाव को सही मायनों में स्थापित करना है, तो सेक्युलरिज्म की ये जो मिथ्या परिभाषा है, सेक्युलरिज्म की जो विभाजक परिभाषा है, इससे अपने को मुक्ति पानी पड़ेगी और हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। राम मंदिर का निर्माण हुआ है, और राम इस दृष्टि से हमारे आदर्श हैं, राम हमारे मार्गदर्शक हैं। राम जब वाल्मीकि भगवान वो कहते हैं, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। या फिर जब तुलसीदास जी कहते हैं, सिए राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। ये दोनों बातें सबको साथ लेकर के, हमारे देश की जो विविधता है उसको साथ लेकर के आगे चलने का रास्ता हमें दिखाती है, जो हमारा राम का मार्ग है और ये इस देश का मार्ग है। हम सबको साथ लेकर के चले। किसी ने कोई गलती की होगी, पर हमारे सबके पुरखे समान हैं। हम विविधताओं को समझें, विविधताओं का सम्मान करें, परंतु जो हमारे अंदर एक सूत्रता है उसको भी हम आगे लेकर के जाएं, तभी हम एक समर्थ देश का निर्माण कर सकेंगे, जिसका माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में निर्माण हो रहा है। विरासत पर गौरव भी हो, प्रगति भी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास भी हो, गरीब, किसान, महिला, युवा, ये जो चारों वर्ग हैं जिसमें सब लोग आ जाते हैं, इनकी उन्नति हो, इनके माध्यम से देश आगे बढ़े। विकसित संकल्प
भारत का जो संकल्प है वो पूरा हो, ये वास्तव में माननीय मोदी जी का सपना है, जिसको बराबर निरंतर आग्रहपूर्वक पूरा किया जाता रहा है। एक बात का मैं जरूर उल्लेख करना चाहूंगा माननीय सभापति जी, नमो भारत ट्रेन का उल्लेख हुआ है और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि नमो भारत ट्रेन जो देश की पहली वैसी ट्रेन है वो दिल्ली से मेरठ के बीच की है। मैं इसके लिए विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। बाकी किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ मेरठ को लेकर के, वो हाईवे, वही मैं बता रहा हूं मैं जी। प्रथम जो मेरा कार्यकाल यहाँ का था, जब पहली बार मैं संसद में आया माननीय सभापति जी, मैं 2-3 मिनट और लूंगा बस, मैं 2009 में आया और मैं बराबर मेरठ से दिल्ली की कनेक्टिविटी की बात करता रहता था, हाईवे की बात करता रहता था। अंत में 2013 के सितंबर में रिकॉर्ड है ये, एक स्टेटमेंट आया कि कुछ प्रायोरिटी की योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री ने स्वीकृत की, स्वयं स्वीकृत की हैं, उनकी मॉनिटरिंग करेंगे और वो जो है पूरी की जाएंगी। उसमें मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे भी था। मैंने संसद के अंदर उनका धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा कि मुझे उम्मीद है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की ये जो घोषणा है ये चुनावी घोषणा नहीं होगी और मैं मानता हूं कि अगले चुनाव तक, 2014 के चुनाव तक ये पूरी तो नहीं हो सकती, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इसका शिलान्यास जरूर हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ। मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे तब मिला जब माननीय मोदी जी की सरकार आई और आज मेरठ के चारों तरफ हाईवे बन रहे हैं, बन चुके हैं, बन रहे हैं और नई ये ट्रेन भी बन रही है। तो ये जो स्थिति है, ये वास्तव में विकसित भारत का जो चित्र है वो पूरे देश में दिखाई देता ही है, मेरठ के अंदर भी दिखाई देता है। मैं कोई और अधिक समय नहीं लूंगा, आपका भी इशारा कुछ हो रहा है कि अपनी मैं बात खत्म करूं। मैं एक छोटी सी एक हमारे आदरणीय, हाँ कुछ आप कहते रहते हैं, कुछ मैं कविता वगैरह जरूर बोल दूं मैं, है जी। मैं आपको कुछ इशारा तो नहीं किया, बस स्माइल विकसित भारत अच्छा ठीक है, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतने जोश से विकसित भारत का जो संकल्प है मैं उसको कुछ लाइनों से व्यक्त कर रहा हूं मैं। 10 दिशाओं में जाएं, दल बादल से छा जाएं, उमड़ घुमड़ कर हर धरती को नंदन वंशा सरसाएं। यह मत समझो, ये जरा विशेष रूप से मेरे विपक्षी मित्रों के लिए भी है, यह मत समझो किसी क्षेत्र को खाली रह जाने देंगे, दानव ताकि बेल विशैली कहीं नहीं छाने देंगे, जहां कहीं लू झुलसाती अमृत रिमझिम बरसाएं, 10 दिशाओं में जाएं। मैं समझता हूं कि अमृत काल में इस अमृत को बरसाने का हमारा संकल्प है। 2047 तक सब प्रकार से विकसित, आत्मनिर्भर, समर्थ भारत बनाने का हमारा संकल्प है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में यह संकल्प पूरा होगा। तीसरी बार पुनः वो प्रधानमंत्री बनेंगे और उनके नेतृत्व में हम इस संकल्प को पूरा करने के लिए निरंतर आगे बढ़ेंगे। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी। नाउ डीन कुरियाकोस। Sir, first of all, I would say the most unfortunate thing is Honorable President's address became a political statement and it is glorifying the anti-people policies which were adopted by two governments, 2014 and 2019. Sir, actually the realities are very much different from the speech. Sir, the common people, the farmers, the workers, the students, the youths, the all people of this country is suffering very much from the anti-people policies of this government. Whatever promises they have done in the time of elections in 2014 and 2019, they are deviating now. They already deviated too many things. I can point out too many cases here. Sir, what is the petrol and diesel price now? It crossed 100 rupees. At the time of UPA regime, they claimed, they promised they will reduce the price of petrol and diesel below 50 rupees. But now they are blaming against the international marketing price. At the time of UPA, they said it is a fault of Manmohan Singh government. But now they are not having any genuine answer, and they are saying that it is depending upon international market price. It is the main, violation of the promise of this government, sir. Sir, in the case of doubling up policy, sir, what happened to the farmers? Is this government is willing to address the people in the coming election 2024 with doubling up policy? It's become a joke now. Sir, in the case of job creation, this government promised 2 crores jobs per year. According to that data, that figure,
It would have been crossed 20 crores of jobs per year, but not been, we can see, any kind of job creation by this government. It is a violation of their promise. Sir, in the case of scholarships, previous UPA government initiated too many scholarships for students. In the case of merit and means scholarship, pre-matric scholarship, special scholarships for minority communities, including the Maulana Azad scholarship. Wherever the scholarships have been announced by the central government, this government might reduce or remove from the scenario. This is happening nowadays. Sir, in the case of minority community of this country, sir, especially the anti-Christian attacks is increasing day by day. We have an experience of Manipur. What happened there? Honorable Prime Minister having no comment on Manipur issue. More than 250 or above 300 churches have been destroyed. Not been stopped the violence of Manipur. And in another states also, in the last month in Madhya Pradesh, one parish priest, he is a Malayali, his name is Father Anil John, been arrested and remanded to jail, and he had charged the communal conversion laws. That means that they are using as a weapon against the Christian community of this country. It is a very sad thing and it is most unfortunate thing, sir. In all the countries wherever BJP is ruling, anti-Christian attack, it is increasing day by day. And in Kerala also, they are trying to pleasing the Christian community. That is another thing we are facing politically. Sir, in the case of another matter, I would demand here, the Dalit Christian community from our states, they are demanding the reservation. They are deserving that. Many of the marginalized community being protected by reservation policy of this government, and the earlier government, previous government, UPA government also protected so many communities, marginalized communities by reservation announcements, amendments of our constitution. But even now the Christian minority, Dalit Christian community not addressed or not taken by their demand. So I demand the Dalit Christian community's reservation should be adopted by this government. Sir, I am coming to another point. The success stories of every government depends upon the commitment and the hard work of the employees, especially the workers like Anganwadi workers, helpers, ASHA workers and Narega workers. And yesterday's budget also not been mentioned anything about our Anganwadi workers and ASHA workers. So I demand here, they should recognize, they should get enough wages, at least 25,000 rupees per month. They have to, because they are having the eligibility, they are doing much more than any other community to the nation. So their communities, ASHA workers, Anganwadi workers, helpers, teachers, and Narega workers, they should be recognized, sir. That is our main demand. Sir, I urge upon this government, in the case of another matter that is related with human-animal conflict. Sir, this government passed the amendment laws of Wildlife Protection Act. But I would like to say, is there any effect of that amendment act? Whether the farmer community or the common man is protected by this Wildlife Amendment Act? No, nothing is happening everywhere. Nothing is happening in our country. Sir, in Kerala, we are facing a crucial situation every day. In daytime, the cruel wild animals is coming out from the forest and attacking the people. In my constituency, Idukki, in the last 10 years, I witnessed around 100 people have been killed or died by wild elephant attack. Last month, 2 laborers, poor laborers have been died by wild elephant attack. Sir, there is no remedy. So my demand here, we have to adopt the policies wherever in successive manner adopted or implemented in foreign countries, we have to implement here. The vermin list already excluded by the this government, that is most unfortunate. I am demanding here, it should be reintroduced, the vermin list. We have to capture the vermin animals. So, there is no option. And another thing, we have to adopt the culling policy for resisting the birth rate of the cruel animals, including tiger, bear, and other wild animals. They are passing through the villages and townships of all over Kerala. We are witnessing nowadays. It is the most unfortunate thing. Sir, in the case of another thing, the promises made by this government in the in development sector to Kerala, Ankamali Shabari Railway,
That was the promise of Vajpayee government, but not been fulfilled. The responsibility mainly vested upon the central government, as well as in the state government also. They are not at all responding. Whatever this central government is demanding to state government is not responding. Earlier they have committed 50% share. That agreement is there. But central government again asking the 50% share for Angamali Sheberi Railway. Yesterday's budget also the 100 crore rupees allotted, not been utilized last 1 year, and again announced, and again asking the 50% share from state government. But state government is not at all responding. Both the governments not been fulfilling their commitments to the people of Kerala, sir. Sir, in the case of national highway development, so many works are going on. But in the case of 12 national highway upgradation from the state of Kerala, kept in pending, not been giving the final sanction. The previous government, the first BJP government, given the in-principle approval for 12 cases. In my constituency also, Vijayapuram Unnigal road is there. We are demanding for the final sanction, but not at all getting the approval of the Ministry of Road Transport. But that is the unfortunate thing, sir. Sir, I am concluding. Wherever the promises given by this government, they are deviating. They are making another goalpost. That is the most unfortunate thing the country is witnessing now. We are watching that. That's why the President's address became a political statement. Thus, these words, I am concluding my speech. Thank you, sir. Shri Tejasvi Surya ji. धन्यवाद स्पीकर सर, आपने इस मोशन ऑफ थैंक्स टू द प्रेसिडेंट्स एड्रेस के ऊपर बोलने के लिए मौका दिए। स्पीकर साहब, just when I am about to complete 5 years as a first-time member of Parliament, I go back to reflecting the days late 2013, late 2014, when for the very first time many young people of my age then took to the streets in various protest places across the country in the Anna Hazare led protests. देश में एक प्रकार का निराशा का माहौल था। रोज अखबार में बड़े बड़े स्कैंडल्स के, करप्शन स्कैम्स के रोज न्यूज़ आते थे। दिल्ली हो या मुंबई हो, अखबारों में रोज हम टेररिस्ट अटैक्स के बारे में देखते थे, पढ़ते थे। निर्भया के जो घोर रेप एपिसोड हुआ था, that had also shaken the conscience of the nation. एक प्रकार के सरकार के प्रति और पूरे पॉलिटिकल सिस्टम के प्रति ही एक विश्वासहीनता देश में एक पैदा हुआ था। और उस प्रकार के एक निराशा के माहौल में नरेंद्र मोदी जी जैसे एक रे ऑफ होप देश को मिला और मेरे जैसे करोड़ों करोड़ों नौजवान अपने पूरे ताकत मोदी जी के पीछे लगाकर 2014 में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार को हमने लेकर आए। और आज पिछले 10 साल के जो व्यवस्था है, पिछले 10 साल के जो परिवर्तन हुआ है, उसका जब एक अवलोकन हम करते हैं, मुझे लगता है कि जो पिछले 10 साल है वो ये देश के स्वर्णिम 10 साल में अत्यंत अग्रणी स्थान पर ये 10 साल गिन जाता है। The last 10 years have been the most transformative 10 years, that decade of transformation in the country's political history. And the kind of paradigm shift that the country's politics, the country's society, the country's economy has seen and witnessed in the last 10 years is historic in every sense. Which is why, Speaker Sir, I feel that whenever
the history of this government's and the Prime Minister's legacy will be written, India's political history can be divided into two broad parts: before Modi and after Modi. मोदी से पहले का भारत और मोदी के बाद के भारत, क्योंकि इतना बड़ा बदलाव देश में पिछले 10 साल में हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ 3-4 बड़े बड़े जो ऐसे चेंजेस हैं, परिवर्तन देश में आया है, उसका ही जिक्र मैं आज के भाषण में करना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, पहला जो चेंज है वो तो यह है कि देश के जो ओवरऑल माहौल था वो डेस्पोंडेंसी में था, पूरा एक निराशा का माहौल था, और आज देश ऑप्टिमिज्म के साथ, होप के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ उभर कर चुका है। एवरी डे वी सी एंड हियर ऑफ न्यू अचीवमेंट्स ऑफ द कंट्री, वेदर इट इज द अचीवमेंट इन चंद्रयान, वेदर इट इज आवर अनप्रेसिडेंटेड medal tally in the Asian Games, whether it is our achievement in aerospace, whether it is the achievements of our startups. Every single day we are hearing stories of achievements and success, and despondency has given way to hope and optimism. Modi se pehle nirasha tha, Modi ke baad आशा है. This is the change that Narendra Modi ji has brought to the country in the last 10 years. अध्यक्ष जी, इससे पहले भी देश में कई सारे सरकारें थे, सरकारें आए, सरकारें गए, पर जो देश के बड़े बड़े समस्याएं थे उसका समाधान नहीं हुआ था, क्योंकि जो पॉलिटिकल कल्चर था देश में वो ये था कि जो भी समस्याएं थे उसको समाधान ढूंढने के बजाय वो समस्याओं को पोस्टपोन करने का जो प्रक्रिया था वही ज्यादा सरकार ने किए थे. मैक्सिमम efforts of the governments earlier were to postpone the problems and not to resolve the problems. But one of the characteristic feature of the Narendra Modi government is that this is not a government that has shied away from resolving decades and centuries old problems. This is a government that does not believe in postponing problems, but this is a government that believes in resolving problems. This is the defining character of the Narendra Modi government. Multiple examples. For almost 70 years, the country waited for a decisive action on Kashmir, on Article 370. But multiple governments that came took no action, and the country was literally bleeding by 1,000 cuts. पर जो 70 साल से नहीं हुआ था, उसको इसी सरकार ने इसी टर्म में आर्टिकल 370 को दुरुस्त करके 70 साल के समस्या को हमने समाधान दिया. लगभग 40 साल से अधिक समय से अपने करोड़ों करोड़ों जवानों ने ओआरओपी का हक मांग रहा था, बट ओआरओपी का समस्या भी ऐसे ही पोस्टपोन होते जा रहा था. 40 साल के समस्या को भी ओआरओपी का समाधान नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है, अपने सरकार ने किया है. कारगिल युद्ध के समय के बाद से एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश करने का मांग देश में था. लगभग 20 साल से यह मांग भी पोस्टपोन होते जा रहा था. सरकारें आई, सरकारें चली, बट इंडिया's डिमांड ऑफ अ strong, coordinated chief of defense staff and creation of this institution was not met. But इसका भी समाधान नरेंद्र मोदी के सरकार में हुआ, और आज मल्टीपल थिएटर्स में, मल्टीपल फ्रंट्स में कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के साथ, if India can answer the external efforts and attacks, it is because we created the institution of the chief of defense staff. कई सारे जो नॉर्थ ईस्ट के समस्याएं थे, वो नागा अकॉर्ड हो, बोडो के इश्यू हो, मिजोरम के इश्यू हो, मणिपुर के इश्यू हो, बांग्लादेश से जुड़े हुए लैंड एग्रीमेंट हो, ये सभी इश्यू 70 साल से पेंडिंग था. आज नॉर्थ ईस्ट में मैक्सिमम अपने प्रदेशों में आज शांति के व्यवस्था आज हो चुके हैं, तो इसका समाधान भी नरेंद्र मोदी के सरकार के समय में हुआ है. इतना ही नहीं अध्यक्ष, ये तो 50 साल, 70 साल, 40 साल का समस्या था.
500 साल से देश के समाज, देश के हिंदू समाज, भारतीय समाज अयोध्या के राम मंदिर इश्यू को सॉल्व करने के लिए, समस्या को समाधान करने के लिए वो प्रतीक्षा में थे। और ये कहते हुए गर्व है कि हम सब के वोट के वजह से जो नरेंद्र मोदी जी के सरकार सत्ता में आई, इस सरकार के प्रयासों से 500 साल के जो अपने प्रतीक्षा थे वो भी समाप्त हो गए और भव्य राम मंदिर अयोध्या में बन गए। सो दिस इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग गवर्नमेंट। सो मोदी जी आने से पहले समस्या थी और मोदी के बाद समाधान है। ये बिफोर मोदी और आफ्टर मोदी के फर्क है। अध्यक्ष जी, इस सरकार के सबसे बड़ा जो उपलब्धि है, one of the biggest achievements of this government is the fact that we have lifted 25 crore people out of poverty. और अध्यक्ष जी, ये जो अचीवमेंट है, इसका ह्यूमन पॉपुलेशन के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो पता चलता है कि ना यूरोप में, ना चीन में, ना यूनाइटेड स्टेट्स में इतने बड़े आबादी को इतने कम समय में गरीबी से बाहर ले आने का काम विश्व के इतिहास में नहीं हुआ है। पहली बार जो हुआ है वो मोदी जी के नेतृत्व में भारत में हुआ है। और मेरे से पहले जो राजेंद्र अग्रवाल जी बात कर रहे थे, स्पीकर साहब बात कर रहे थे, आपने बहुत एक महत्वपूर्ण विषय को आपने उठाया, फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में। अध्यक्ष जी, अपने सरकार आने से पहले तक देश के मैक्सिमम परसेंटेज पॉपुलेशन के पास एक बैंक अकाउंट तक नहीं था। और जब देश के जनता के पास एक बैंक अकाउंट भी नहीं होता है तो वो गरीबी से बाहर कैसे आ सकता है? देश के फॉर्मल इकोनॉमी से कैसे वो जुड़ पाता है? और पिछले 10 साल में हम 50 करोड़ से अधिक गरीबों को बैंक अकाउंट से जोड़कर हम फॉर्मल इकोनॉमी के माध्यम से उनको भलाई करने का, गरीबी से मुक्ति दिलाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले 10 साल में किया है। And when somebody gets connected to the banking system, Adhyaksh ji, it is very natural that they get introduced to a lot of other formal products. देश में इंश्योरेंस का जो कवरेज था, परकोलेशन जो था, वो अत्यंत कम था। पर ये जनधन अकाउंट में लगभग 50 करोड़ जनता जुड़ने के बाद इंश्योरेंस का भी कवरेज देश में ज्यादा हो चुका है। वो आयुष्मान भारत हो सकता है, प्रधानमंत्री बीमा योजना हो सकता है, या 20 रुपए में जो एक्सीडेंट इंश्योरेंस प्रधानमंत्री जी के मिल रहा है वो हो सकता है। ऐसे जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को देश के एलीट वर्ग टेकन फॉर ग्रांटेड मानते हैं, ऐसे कई सारे इंश्योरेंस जैसे प्रोडक्ट्स को पहली बार देश के गरीब तक पहुंचाने का काम अपने सरकार ने किए हैं, नरेंद्र मोदी सरकार ने किए। अध्यक्ष जी, अपने पहले टर्म में जो पिछले 75 साल के, 70 साल के जो कमियां थी उसको हम सुधार किए। मोदी जी के सेकेंड टर्म में आर्टिकल 370 हो, राम मंदिर हो, या आज ही उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने के लिए ड्राफ्ट प्रपोजल भी हमने पेश किए हैं। ऐसे जो अपने कोर आइडियोलॉजिकल एजेंडा थे उसका भी काम करने का काम दूसरे टर्म में हमने किया। और आने वाले दिनों में और मोदी जी के तीसरे टर्म में विकसित भारत का फाउंडेशन जो है और एस्पिरेशनल ड्रीम्स को फुलफिल करने का काम भी इस सरकार ने करेगा। दिस इज द मैसिव चेंज दैट द country's polity has seen in the last 10 years. इसलिए देश के युवा कह रहे हैं, मोदी से पहले देश में गरीबी था, मोदी के बाद देश में समृद्धि है। Before Modi there was poverty, after Modi there is prosperity. This is the change the Modi government has seen in the last 10 years. अध्यक्ष जी, ये गरीब कल्याण रेवड़ी बांटने से नहीं हुआ है। ये गरीब कल्याण गरीबों को
सरकार के ऊपर परावलंबित करने से नहीं हुआ है, पर मोदी जी देश के गरीबों को आत्मनिर्भर करने का, स्वावलंबन करने का एक नया तरीके के साथ मोदी जी ने काम किए। मैं आपको अध्यक्ष जी एक उदाहरण देना चाहता हूं, आपके माध्यम से देश का भी ध्यान इस विषय पे आकर्षित करना चाहता हूं। ये क्या है मोदी जी के विजन, मोदी सरकार के इकोनॉमिक अप्रोच और बाकी पार्टियों के अप्रोच में फर्क क्या है? इसके सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जो नए स्कीम प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना मोदी जी ने लॉन्च की है, यह सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। हम देखे हैं अध्यक्ष जी पिछले 2-3 जनरल स्टेट इलेक्शंस में कांग्रेस पार्टी से लेकर आम आदमी पार्टी तक चुनाव से पहले जनता के पास ये जा रहे हैं और वादा दे रहे हैं कि हम 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं, 300 यूनिट हम फ्री देंगे इलेक्ट्रिसिटी, ये रेवड़ी बांटने का काम ये कर रहे हैं। और सरकार के ऊपर गरीबों को निरंतर अवलंबित करने का काम वो कंटिन्यू कर रहे हैं। पर मोदी जी अवलंबित करना नहीं चाहते, परावलंबी उनको करना नहीं चाहते, स्वावलंबन करना चाहते। इसलिए पीएम सूर्योदय योजना में हमें गरीब के घर पर सोलर रूफटॉप लगाने के लिए हम उनको प्रोत्साहित करेंगे, सब्सिडी देंगे, उनको ताकत देंगे। Not only that he can save 200-300 units of electricity so that 300 units of electricity will become free, but he can also earn additional money because of that solar rooftop. ये अपने इकोनॉमिक अप्रोच में फर्क है। हम गरीब को गरीब रख के उनको वोट बैंक बनाकर कैरियर से अपने पॉलिटिकल फायदा उठाने का सोच भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी सरकार नहीं करते हैं। हम गरीब को स्वावलंबन, आत्मनिर्भर बनाकर उनको ताकत देने का काम पिछले 10 साल में हुआ है। इसलिए देश के युवा कह रहे हैं मोदी से पहले गरीब परावलंबी था, मोदी के बाद देश के गरीब स्वाभिमानी है और देश के गरीब आत्मनिर्भर है। दिस इज द डिफरेंस बिफोर मोदी एंड आफ्टर मोदी। अध्यक्ष जी, इसके साथ साथ देश के इतिहास में लगभग पिछले 70 साल में मोदी से पहले देश में जो राजनीतिक परिभाषा था सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म को लेकर, वो इतना परवर्टेड हो चुका था, इतना उसमें अडल्ट्रेशन आ चुका था कि उसका जो मूलभूत विचार था, संविधान के जो मूलभूत विचार था, वो ही अडल्ट्रेट हो चुका था। द परवर्टेड डिस्कोर्स ओवर द लास्ट 6 decades by perverting and adulterating the very definitions of secularism and socialism in the country, 2 big losses the country had to face. By a perverted definition of secularism, the country culturally lost a lot, and by a perverted communication commentary of socialism, the country lost economically. मैं 1-2 उदाहरण ही देना चाहता हूं अध्यक्ष। क्यों इतने समय तक, आजाद होने के बाद 70 साल तक क्यों इतने बड़े संख्या में गरीब देश में थे? क्या कर रहे थे पिछले इतने सरकारों में? जितने भी सरकार आए वो वेल्थ क्रिएटर्स को, उद्यमशीलता को हम एनकरेज ही नहीं किए। अभी 1-2 महीने पहले इंफोसिस के नारायण मूर्ति जी ने एक इंटरव्यू में बोले कि जब वो इंफोसिस शुरू किए और जब इंफोसिस के लिए कंप्यूटर यूएस से इंपोर्ट करने के लिए वो प्रयास किए, वो सिर्फ कंप्यूटर्स इंपोर्ट करने के लिए दिल्ली को लगभग 50 बार आना पड़ा और 3 साल लगा 50 कंप्यूटर अमेरिका से इंपोर्ट करने के लिए। इस प्रकार के एक कंट्रोल्ड इकोनॉमी देश में इन लोगों ने जारी रखे थे। उसके वजह से देश के युवा ना एंटरप्रेन्योर बन सकते थे, देश के इकोनॉमी ना इंप्रूव होता था। इस प्रकार का एक शैकलिंग ऑफ द एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट देश में हुआ था। बट आज मोदी जी आने के बाद फॉर द फर्स्ट टाइम दीज
fetters, these shackles, these chains that had kept the entrepreneurial spirit of the country tied, these have been removed, and as a result 100 से ज्यादा जो अपना स्टार्टअप तब थे, आज 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स देश में हैं और देश को समृद्ध बनने के काम में आज के स्टार्टअप्स हैं। अध्यक्ष जी, मैं 3-4 ही और विषय आपके सामने उल्लेख करना चाहता हूं। और अध्यक्ष जी, माननीय राष्ट्रपति महोदया ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में भी उल्लेख किए। अध्यक्ष जी, इस साल के बजट में 1 लाख करोड़ रुपए धनराशि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रोत्साहन करने के लिए सरकार ने रखी है। 1 लाख करोड़ रुपए। दिस इज मेकिंग इंडिया फ्यूचर रेडी एंड फ्यूचर प्रूफ। यह पहली बार देश के युवाओं को रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए इतना बड़ा धनराशि का सपोर्ट देश में मिल रहा है। शायद खास पहले जो सरकारें थे, इस प्रकार के सपोर्ट दिए होते, India would have emerged already as a technological superpower in the world. Because they did not do it in many areas, India has to play catch up today. And because we are correcting that wrong and we are making that course correction, whether it is in artificial intelligence, whether it is in quantum computing or any other emerging technology, India will be a world leader in the coming days because अपने सरकार ने इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर हमने किए। अध्यक्ष जी, ये सेक्युलरिज्म का परिभाषा, यह भी देश में एक प्रकार के कल्चरल कॉन्फिडेंस कम करने का काम किया। मैं दक्षिण भारत से आता हूं अध्यक्ष, और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस प्रकार का एक जो नैरेटिव देश में खड़ा किया गया है, विशेष रूप में पिछले 2-3 साल से, कि दक्षिण भारत अलग है, उत्तर भारत अलग है, और दक्षिण भारत में हिंदी का इंपोजिशन हो रहा है। इस प्रकार का कई सारे भ्रम फैलाने का काम विपक्ष ने कर रहा है। मैं अध्यक्ष जी एक और बात पे भी आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। कल कर्नाटका से जो एमपी थे, कांग्रेस पार्टी से एमपी, वो दक्षिण भारत के प्रत्येक राष्ट्र मांगने का काम भी कल उन्होंने किए। इससे बड़ा अगौरव इस सदन के प्रति क्या हो सकता है? I am astounded, Adhyaksh ji. I am ashamed. I am ashamed that a sitting member of parliament has not only violated his oath, but has also betrayed the true intention of the Congress party by demanding a separate nationhood for the southern states of India. There are 2 things I want to bring to your attention, Adhyaksh. बार-बार डीएमके के सदस्य, बार-बार कांग्रेस के जो साउथ से जो एमपीज आते हैं, वो ये हिंदू इंपोजिशन के बारे में बात रखते रहते हैं। कार्ती जी भी है, he also keeps speaking about Hindi imposition. I want to tell you through this August House, through you, Adhyaksh ji. I come from Karnataka. My mother tongue is Kannada. I do not want any kind of Hindi imposition. And if there is one party that has resisted Hindi imposition, has been against imposition of any kind, has always supported the vitality, diversity of various languages in India, it is my party, the Bharatiya Janata Party. I want to give you one example from the Constituent Assembly. Now, because this, Adhyaksh ji, I'll just take 2 more minutes, because this is a very important issue. Okay. Even yesterday, there were members of the DMK, there were members of the Congress party who created this argument about Hindi imposition. When the debate was being held in the Constituent Assembly, Adhyaksh ji, on what should be the official languages of India, it was Shyama Prasad Mukherjee, who was the founder of the Bharatiya Janasangh, the earlier avatar of the Bharatiya Janata Party, who said this, and I quote, "Some of my friends spoke eloquently that a day might come when India shall have one language and one language only. Frankly speaking, I do not share that view. And when I say so, I am not ignoring the essential need for creating that national unity of India, which must be the foundation stone in our future reconstruction. That unity
must be achieved by allowing those elements in the national life of our country which are today vital to function and function in dignity, harmony and in self-respect. Today it stands to the glory of India that we have so many languages from the north to the south, from the west to the east, each one of which in its own way has made contributions which have made Indian life and civilization what it is today. If it is claimed by anyone that by passing an article in the Constitution of India, one language is going to be accepted by all by a process of coercion, I say, sir, that will not be possible to achieve. Unity in diversity is India's keynote and must be achieved by a process of understanding and consent, and for that a proper atmosphere has to be created. This was the position of the Janasangh and Shama Prasad Mukherjee. This is still our position, Kartiji. I will tell you why. I will tell you why. And I will tell you why it was your party, the Congress party, which was the original party of imposing Hindi on the southern language, in the southern states. Adhyaksh ji, पिछले 70 साल में, in the last 60 years, Adhyaksh ji, the Congress party got 4 opportunities to draft the country's national education policy. And every time, the Congress party's national education policy came with a 3-language formula. And what were these 3 language formulas? In all the non-Hindi speaking states, Hindi was made compulsory. Who made these policies? It was Jawaharlal Nehru, it was Indira Gandhi, it was Rajiv Gandhi, and it was not reviewed by Manmohan Singh. For the first time, through the national education policy of 2020, Narendra Modi government has changed this compulsory Hindi policy and made study of any regional language of India possible. We have for the first time introduced provisions to study higher education in mother tongue. No, please. We have made it compulsory to make primary education in mother tongue. Kartiji, these are the facts that are staring at you and your party. So please stop the bogey that the Bharatiya Janata Party is the party that imposes Hindi. Stare at the facts that are staring you. Acknowledge that it was your party that imposed Hindi on coercively on the non-Hindi speaking states of the country. Adhyaksh, I want to conclude only with one thing. पिछले 10 साल में एक कल्चरल रिनेसांस में देश में हुआ है और एक कल्चरल रिनेसांस देश के युवाओं में विशेष रूप में एक नया आत्मविश्वास जागृत किया है और ये नए आत्मविश्वास देश के हर प्रकार के इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ वी आर विटनेसिंग दिस न्यू फाउंड सेल्फ कॉन्फिडेंस. Especially the world is taking note of this. And today India is not only exporting defense equipments, India is only not exporting automobile components, India is not only exporting electronic equipments. Speaker sir, India is today also exporting good governance models to the world, which the world is taking note of. For example, the world is taking note of how India managed COVID. The world is studying that model. The world is also looking at how India has set for itself and for its population a digital public infrastructure which is the best in the world. Many countries are drawing inspiration from this. Not just that, even legislative techno-legal solutions like the ones that we have devised in the data protection law are the ones that the world is taking inspiration from. मोदी से पहले अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री जी बनने से पहले हम गुजरात मॉडल से देश इंस्पिरेशन लेते थे. आज जब प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी काम कर रहे, विश्व और अलग अलग प्रदेश इंडिया मॉडल से आज प्रेरित हो रहा है, भारत से प्रेरित हो रहा है. दिस इज द चेंज दैट हैज टेकन प्लेस. अध्यक्ष जी, आई वांट टू कंक्लूड विद जस्ट वन पर्टिकुलर कमेंट. कल जब निर्मला सीतारामन जी ने अपने बजट भाषण के कंक्लूजन में ये बोली कि 2024 में जुलाई में जब हम वापस आएंगे और विस्तार रूप में जो बजट हम पेश करेंगे, इट वाज एन इंडिकेशन ऑफ आवर कॉन्फिडेंस. बट द ऑपोजिशन
and its commentators inside and outside of the parliament kept commenting that this is arrogance. But ये arrogance नहीं है अध्यक्ष जी, ये कॉन्फिडेंस है। और ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है? ये कॉन्फिडेंस यहां से आता है कि हम डिलीवर किए हैं, हम जो कहे हैं वो हम किए हैं। वी आर कॉन्फिडेंट अध्यक्ष जी बिकॉज हमने 50 करोड़ जनधन खाते खोले हैं। हम वापस आने में विश्वास इसलिए रखते हैं क्योंकि हम 11 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट कंस्ट्रक्शन पिछले 10 साल में किए हैं। हम इसलिए कॉन्फिडेंट हैं क्योंकि देश में 30 करोड़ से ज्यादा मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन हमने सैंक्शन किए। 43 करोड़ मुद्रा योजना लोन। हम इसलिए कॉन्फिडेंट हैं क्योंकि हम 30 लाख से ज्यादा धनराशि डीबीटी के माध्यम से देश में हम बचाए हैं। हम इसलिए कॉन्फिडेंट हैं क्योंकि 10 करोड़ से ज्यादा गरीब महिला को हम पहली बार एलपीजी कनेक्शन दिए हैं। हम इसलिए कॉन्फिडेंट हैं क्योंकि देश में 4 करोड़ से अधिक गरीबों को पहली बार एक मकान दिलाने का काम हमने किए हैं। हम इसलिए कॉन्फिडेंट हैं क्योंकि देश के 50 लाख से अधिक रेल पटरी वाले जो छोटे छोटे 78 लाख से ज्यादा पीएम स्वनिधि लोन ऐसे छोटे छोटे दुकानदार को हमने दिए हैं। 15 करोड़ से ज्यादा जल जीवन मिशन के अंतर्गत देश के गरीबों के घर पे पहली बार नल से जल ले आने का काम भी हमने किए हैं। इसलिए हम कॉन्फिडेंट है अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, देश के युवा आज कह रहे हैं कि देश बदल चुका है और देश बदल रहा है। मोदी से पहले और मोदी के बाद देश बहुत बदल हो चुका है। मोदी से पहले सत्ता थी, मोदी के बाद सेवा है। मोदी से पहले समस्या थी, मोदी के बाद समाधान है। मोदी से पहले मलिनता थी, मोदी के बाद स्वच्छता है। मोदी से पहले विवाद था, मोदी के बाद विश्वास है। मोदी से पहले तंबू था, मोदी के बाद भव्य मंदिर है। मोदी से पहले आतंक था, मोदी के बाद शांति है। मोदी से पहले गरीबी थी, मोदी के बाद समृद्धि है। मोदी से पहले बेरोजगारी थी, मोदी के बाद कौशल विकास है। मोदी से पहले अपराध था, मोदी के बाद सुरक्षा है। मोदी से पहले विभाजन था, मोदी के बाद एकता है। मोदी से पहले निराशा थी, मोदी के बाद आशा है। मोदी से पहले अव्यवस्था थी, मोदी के बाद व्यवस्था है। मोदी से पहले अन्याय था, मोदी के बाद न्याय है। मोदी से पहले तुष्टीकरण था, मोदी के बाद सबका साथ सबका विकास है। मोदी से पहले परिवारवाद था, मोदी के बाद लोकतंत्र है। मोदी से पहले भय था, मोदी के बाद धैर्य है। मोदी से पहले परावलंबन था, मोदी के बाद आत्मनिर्भरता है। ये भारत में जो पिछले 10 साल में परिवर्तन हुआ है, ये पिछले 10 साल का परिवर्तन है अध्यक्ष जी। विथ फुल कॉन्फिडेंस दैट द पीपल ऑफ इंडिया एंड 140 करोड़ भारतीयस will bless the Prime Minister for a historic third term. I thank you for giving me this opportunity to speak and thank the Honorable President for this motion of thanks. Thank you. माननीय सदस्यगण, 6 बजने वाले हैं। सदन की इजाजत हो तो 2 घंटा समय इसका बढ़ा दिया जाए। ठीक है श्री जी असदुद्दीन ओवैसी जी। मोहतरम चेयरमैन साहब, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने मुझे सदर जमहूरिया के खुतबे पर बोलने का मौका दिया। सर, मैं हस्बे आदत और हस्बे रिवायत उसकी मुखालिफत में खड़ा हूं और सदर जमहूरिया के खुतबे को अगर आप देखेंगे सर, तो उसमें पूरे खुतबे में लफ्ज़ मुसलमान तो छोड़िए, लफ्ज़ अक़लियत भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके सामने अर्ज कर रहा हूं कि भारत में 14% मुसलमान जो आबादी के लिहाज से 17 करोड़ आते हैं, वो आज पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार में अपने आप को एक गैर यकीनी कैफियत में पाते हैं। अपने सोचते हैं कि हमारी शनाख्त को खतरा है, हमारे वजूद को खतरा है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जज्बात में लाए बगैर कह रहा हूं कि आज 17 करोड़ मुसलमान अपने आप को ऐसा समझते हैं कि जिस जमाने में हिटलर के जमाने में यहूदी अपने आप को समझते थे।
और उसकी मैं बताता हूं क्यों समझते हैं, बताता हूं आपको चंद मिनट में। सर, मिसाल के तौर पर आप देखिए खुतबे सदारत के हिस्से तहरीर का 32वां पैराग्राफ, 32 पैराग्राफ में ड्रॉप आउट रेट का जिक्र हुआ, स्कूलों में इंदराज यानी एनरोलमेंट का जिक्र हुआ, एससीज का नाम लिया गया, एसटीज का नाम लिया गया, ओबीसीज का नाम लिया गया, लफ्ज अक़लियत का नाम नहीं लिया गया, मुसलमान तो छोड़िए। और सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट इस मुल्क में अगर स्कूलों में है तो मुसलमानों में है। सबसे कम एनरोलमेंट अगर है तो मुसलमानों में हायर एजुकेशन में। गवर्नमेंट का डेटा है सर कि मुसलमानों का जो स्टूडेंट ड्रॉप आउट है वो 14.42 से क्लास 1 से शुरू होता और वो क्लास 6 और 8 को पहुंचे अब तक वो 10.76 को पहुंचता है। ये गवर्नमेंट का डेटा है, यानी क्लास 1 से क्लास 6 8 तक ये हाल है। आपने क्या किया सर इस बजट में? प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को सिर्फ 9th क्लास तक महदूद कर दिया और इसमें आपने पैसे कम कर दिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में। और सर 2022-23 का बजट आप देखिए, 5026 करोड़ रुपए दिए गए थे, जिसमें से सिर्फ 663 करोड़ इस्तेमाल हुए। अब आप आ जाइए सर, AISHE का डेटा है कि हायर एजुकेशन में मुसलमानों का 8.5 ड्रॉप आउट रेट हुआ है। 2020-21 में गवर्नमेंट का डेटा बता रहा है कि 1,80,000 मुसलमान हायर एजुकेशन में नहीं है। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को आपने 423 करोड़ था, उसको आपने इस साल 326 कर दिया। मौलाना आजाद फेलोशिप को 45 करोड़ कर दिया। MCM जो 44 करोड़ था 33 करोड़ कर दिया। बताइए, जो सबसे ज्यादा जिसका कम्युनिटी का ड्रॉप आउट रेट है और जो हायर एजुकेशन नहीं, उससे आप ये बर्ताव करते हैं। सर, दूसरी बात यह है कि हम ये देख रहे हैं कि 10 साल में इस सरकार में कोई हद नहीं छोड़ी है गलत हुक्मरानी की, नफरतों को भड़काने की, कोई हद नहीं छोड़ी गलत फहमियों को फैलाने की, और कोई हद नहीं छोड़ी इस मुल्क के अवाम नास को तर्क करने की। इस 10 साल में हमने क्या देखा सर? जमहूरियत हमारे वतन अजीज की को बचाना बहुत जरूरी है, ये गरीबों के लिए और कमजोरों की एक बहुत बड़ी ताकत है। मगर 10 साल में, 9.5 साल में क्या हुआ? सिर्फ एक शख्स को मजबूत कर दिया गया, एक मजहब को मजबूत कर दिया गया, एक आइडियोलॉजी, एक नजरिए को मजबूत कर दिया गया, एक शनाख्त को सब शनाख्त के आगे दूसरी शनाख्तों को मिटाने की कोशिश की गई, एक जबान को मजबूत कर दिया गया, तो हमारी जमहूरियत तो खोखली हो चुकी है। और सर, कोई भी हुकूमत और पार्टी सिर्फ जबर और इस्तेसाल पर कायम नहीं रह सकती है सर। दूसरा पॉइंट सर जो मैं आपके सामने अर्ज करना चाह रहा हूं, CAA के कानून के ताल्लुक से मरकजी एक वजीर ने अखबार में बयान दिया कि हम 8 दिन में करने वाले हैं। आप 8 दिन में करेंगे, 8 दिन में एहतजाज शुरू होगा मुल्क के कोने कोने में। आप CAA को मजहब से खत्म कर दीजिए, मजहब से जोड़ेंगे तो आपका इरादा बुरा है। आप भारत की अक़लियतों को, भारत के मुसलमानों को, दलितों को आप परेशान करने का आपका इरादा है। सर, दूसरी बात यह है कि CAA के खिलाफ क्यों हम हैं? क्योंकि सीमांचल के मुसलमान को आप बांग्लादेशी कहते हैं। कोई मिनिस्टर मुझे कहता है कि घुसपैठी है, रोहिंग्या है। तो CAA को मजहब से जोड़ना गलत था, उसको निकालिए। मगर हमारे देश के प्रधानमंत्री सर, वतन अजीज के वजीर आजम, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि मैं अपने बचपने में जब हिस्ट्री पढ़ता था तो मैंने एक स्टैचू की फोटो देखी थी, प्रीस्ट किंग ऑफ मोहनजोदारो। ऐसा लगता है कि वैसा ही लग रहा है कि प्रधानमंत्री नहीं है बल्कि पुजारी सम्राट बन चुके हैं वो। और मैं क्यों कह रहा हूं कि हमारे सदर जमहूरिया ने कहा था कि 22 जनवरी एक तारीखी दिन है, बिल्कुल तारीखी दिन है। 22 जनवरी की बुनियाद 6 दिसंबर 92 को रखी गई। 22 जनवरी की बुनियाद 86 में ताले खोलकर रखी गई। 22 जनवरी की बुनियाद GB पंत ने रखी थी, इसीलिए तारीखी दिन है। और तारीखी दिन इसलिए भी है कि सर इसी ऐवान में 16 दिसंबर 1992 को हमने एक रेजोल्यूशन पास किया था। आप बताइए कि आज इस मुल्क में चाहे कोई सेकुलर पार्टी का हो या जो भी हो, वाले सब सेकुलर है, बुरा मैं हूं, किसी में हिम्मत नहीं है कि 6 दिसंबर की बात की जाए। और वो तारीखी दिन इसलिए भी है सर, इंसाफ करने वालों में
एक एनसीएलटी के चेयरमैन, एक गवर्नर और एक नामजद शुदा रुकने पार्लियामेंट बैठे हुए थे। अब आप बताइए मेरे पास बचा क्या है? बचा यह है कि आर्टिकल 32 बचा है जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। आज मुल्क के 17 करोड़ मुसलमान भारत के वजीर आजम पर एतमाद भरोसा नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, बता रहा हूं, खुल के कह रहा हूं। अगर आप आर्टिकल 32 का ड्यू प्रोसेस ही खत्म कर देंगे तो फिर मेरे पास क्या बचेगा सर? क्या बचेगा? मैं तो यहां खड़े होकर वो सुप्रीम कोर्ट के मायानाज बेबाक वकील दुष्यंत दवे की तरह तो नहीं कह सकता। मुझे आज भी रूल ऑफ लॉ में भरोसा है, मुझे आज भी कानून पर, संविधान पर भरोसा है, मगर ड्यू प्रोसेस तो फॉलो होना चाहिए। ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं हो रहा। एक तारीखी दिन 22 जनवरी था, एक तारीखी दिन 31 जनवरी था। सर, रात के अंधेरे में अपील किए बगैर आप आरे लेकर रास्ता खोल देते हैं। क्या पैगाम दे रहे हैं सर? 600 साल की मेहरौली की मस्जिद को बगैर को नोटिस दिए आपने डिमोलिश कर दिया। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि भारत के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार भारत के मुसलमानों से उनकी शनाख्त को छीनना चाहते हैं। ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने पर चादर बिछाइए, मगर आप जो चादर मुझसे छीनना चाह रहे हैं मेरी मस्जिद है। आप हर मस्जिद को छीनना चाहते हैं। आप बताइए 17 करोड़ मुसलमानों को क्या पैगाम दे रहे हैं आप कि आप हर मस्जिद को छीन लेंगे मुझसे? फिर मेरा वजूद किस माने रखता है? मेरा शनाख्त क्या माने रखता है? रूल ऑफ लॉ क्या माने? अच्छा, 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर क्यों नहीं बोलते आप लोग? आप उस पर कायम है नहीं है। आप 500 साल की बात करते। मैं आपसे कहता हूं भाई 500 साल पे मत जाइए, बौद्ध पे जाइए, जैनिज्म पे जाइए, शैविज्म पे जाइए। कहां रुकेंगे? अरे इस देश को आजादी मिली 47 में, संविधान मिला हमको बाबा साहब अम्बेडकर का बराबरी का। उससे पहले तो राजा रजवाड़े थे, जमहूरियत नहीं थी, लोकतंत्र नहीं था, मगर आप उसको उस बारे में लेके जाते। अरे 500 साल आगे क्या होगा बताइए? आप किसी एक सिविलाइजेशन, सर अंग्रेजी में किसी ने कहा था सिविलाइजेशन कैन नॉट बी रीरिटन बाय हेट्रेड, हिस्ट्री कैन नॉट बी करेक्टेड बाय डेमोलिशन। आप ये नहीं कर सकते। और मैं उम्मीद करता हूं कि जब मौर्रिख तारीख लिखेगा, नरेंद्र मोदी इस मुल्क में तारीख लिखना चाहते हैं। क्या तारीख लिखना चाहते हैं? कि मैंने इस देश को, गांधी अंबेडकर के देश को मैंने हिंदू राष्ट्र बना दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे भारत के हमारे हिंदू भाई देश के प्रधानमंत्री की सोच को नाकाम करेंगे। उन पर है, अब देखते हैं क्या होता है। सर, नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी है। नेबरहुड फर्स्ट क्या हो रहा है सर? हम सोशल मीडिया के जरिए फॉरेन पॉलिसी चला रहे हैं। मालदीव छोटा मुल्क, वो हमको आंख दिखा रहा है, चीन की गोद में बैठ गया। हमारे लद्दाख में हमारे जो लोग जानवर को लेकर घास चराए जाते, वहां पर चीन की आर्मी आके रोक रही। बताइए, बांग्लादेश चीन की गोद में बैठा हुआ है। आप गैलेंट्री अवार्ड दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? कि चीन बैठा हुआ है। तो आपका बफर जोन गया कहां भाई साहब? आपका बफर जोन तो कहां गया नहीं मालूम, गायब हो गया बफर जोन। और दूसरी बात सर, आप ये भी देख लीजिए कि यहां पर मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताना चाह रहा हूं सर। ये हम बोलते हैं इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, कितना पैसा है बताइए? वो नहीं बताया जाता। अच्छा सर, सबसे तकलीफ दे बात मेरे लिए है कि भारत ने यूनेस्को का इलेक्शन पाकिस्तान से हार गया। हम पाकिस्तान से हार गए, ये आपकी फॉरेन पॉलिसी है। यूनेस्को के इलेक्शन हम पाकिस्तान से हार गए। अच्छा, मामला इजराइल का, फलस्तीन का, गाजा का आया। अक्टूबर में 10,000 लोग मर गए, हमने यूएन में सीज फायर की तायीद नहीं की। दिसंबर आया, 20,000 मर गए, तो हमने तायीद कर दी। क्यों तायीद की? क्योंकि ग्लोबल साउथ को हमको फॉलो करना पड़ रहा है। भारत ग्लोबल साउथ को फॉलो कर रहा है। मेरे लिए तकलीफ दे बात है। यह आपकी नाकामी का बहुत बड़ा सबूत है। इसीलिए हम बता रहे हैं कि यह सरकार की बहुत से नाकाम। अच्छा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आखिरी पॉइंट, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। सर, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं। सर, 81 में एक्ट पास हुआ। हमारा लॉ ऑफिसर कोर्ट में कहता है कि मैं पार्लियामेंट के एक्ट को नहीं मानता। कैसे नहीं मानते सर? क्या नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट को नॉमिनेट किया या पार्लियामेंट ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया? बताइए। 81 के एक्ट को नहीं मानते। सर, 2 ही तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है मुसलमानों के। 1,80,000 आप ही के सरकार के दौर में मुसलमान हायर एजुकेशन निकल गए। आप अलीगढ़ मुस्लिम से छीनना चाह रहे हैं। थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स में एग्जीक्यूटिव हमको डिक्टेट करेगा। मेरी आवाज तो पार्लियामेंट है, अब मेरी आवाज के खिलाफ एग्जीक्यूटिव सुप्रीम कोर्ट में बोलता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इतनी नफरत क्यों है आपको? वहां पर तो हिंदू भाई भी पढ़ते हैं। सर, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मामला है सर। तो मैं आपसे इस बात पर, इस शेर पर अपनी बात को खत्म कर रहा हूं सर। आप भी उर्दू दां हैं जी।
मसीहाओं को जब भी आवाज दी है, अहमद फराज का शेर है, जी जी, मसीहाओं को जब भी आवाज दी है पलट कर आगे हर बार कातिल। मसीहाओं को जब भी आवाज दी है पलट कर आगे हर बार कातिल। वहां क्या दाद खाही क्या गवाही, वहां क्या दाद खाही क्या गवाही, जहां हो मुंसिफों के यार कातिल। सर, मैं फिर से हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि अल्पसंख्यक समाज के बजट के स्कॉलरशिप को आप डिमांड ड्रिवन करिए। भारत के प्रधानमंत्री प्रधान सेवक रहिए, आप कोई प्रीस किंग मत बन जाइए। आप जीतेंगे, कौन जीतेंगे देश तय करेगा, मगर याद रखिए 17 करोड़ मुसलमान आज गम और गुस्से में हैं और इस बात को महसूस कर रहे हैं, इस बात को महसूस कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री को हम नोट नहीं दिए मगर हमारा प्रधानमंत्री है। आखिर ये प्रधानमंत्री 17 करोड़ मुसलमानों की उनकी शनाख्त को कैसे मिटा रहे हैं, कैसे उनको आप मार्जिनलाइज कर रहे हैं। इसीलिए सर मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे सेक्युलरिज्म जो है वो, मैं पॉलिटिकल सेक्युलरिज्म कभी नहीं माना, जो सेक्युलरिज्म संविधान में लिखा गया उसकी हिफाजत करेंगे। मुल्क अहम है, वरना याद रखिए आप चुनाव जीते या हारे, मगर अगर आप 17 करोड़ एक जनता को आप गैर यकीनी कैफियत पैदा कर देंगे, ये देश के हित में नहीं होगा। बल्कि हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि ड्यू प्रोसेस अदालत फॉलो करेगी। अदालत अगर एक तरफा फैसले करेगी तो गलत होगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया। श्री रामचरण बोरा जी। जी माननीय सभापति जी, माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी के अभिभाषण पर धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में सरकार के गौरवशाली 10 वर्षों के कार्य का जो ब्यौरा प्रस्तुत किया है, उससे आज सारा देश गौरवान्वित है। गरीब, वंचित, पिछड़े, किसान, युवा और महिलाओं को केंद्र में रखकर सशक्त योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन किया गया है, जिससे न केवल सामाजिक एवं आर्थिक स्तर पर आमूलचूल सुधार हुआ है, बल्कि करोड़ देशवासियों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाकर उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर भी प्राप्त हुआ है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एवं सबका प्रयास के ध्येय पर चल रही मोदी सरकार के समाज के हर वर्ग को उचित अवसर प्रदान करने में जुटी हुई है। माननीय सभापति जी, सरकार की मुद्रा लोन योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्किल डेवलपमेंट एवं मेक इन इंडिया योजनाएं अब ग्लोबल ब्रांड बन चुकी है। ऐसी योजनाओं के कारण आज भारत के युवाओं के स्टार्टअप्स की पूरे विश्व में धूम मची हुई है। आज भारत के 1 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप रजिस्टर्ड हैं, उनमें से 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न हैं। देश का युवा रोजगार लेने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बना है। माननीय सभापति जी, आज भारत की महिलाएं सशक्त भी हो रही है एवं आत्मनिर्भर भी बन रही है। भारत की नारी लड़ाकू विमान भी उड़ा रही है और व्यवसाय भी कर रही है। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं भी स्वयं सहायता समूह बनाकर स्वरोजगार स्थापित कर रही हैं। ये गर्व का विषय है कि मुद्रा लोन योजना के 46 करोड़ लाभार्थियों में से 31 करोड़ महिला हैं। माननीय सभापति जी, ये माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच एवं मजबूत निर्णय का ही परिणाम है कि वर्षों से लंबित महिला आरक्षण अधिनियम को इसी नए संसद भवन में पारित करके महिलाओं का वंदन एवं अभिनंदन किया है। अब वो दिन दूर नहीं जब 33% महिला बहनें देश की संसद एवं राज्यों की विधानसभाओं में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएगी। आज माननीय सभापति जी, आज किसान सम्मान निधि के माध्यम से 6,000 रुपये प्रतिवर्ष की राशि सीधी किसानों के खाते में पहुंच रही है। एक दिन वो था जब प्रधानमंत्री कहा करते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं, नीचे जाते जाते 15 पैसा रह जाता है, और आज मोदी की सरकार ये है कि वो 1 रुपया भेजती डिजिटल के माध्यम से उसके खाते में 1 रुपया सीधा का सीधा जाकर पहुंचता है। और अब तक करीब 2,80,000 करोड़
रुपए किसान भाइयों के सम्मान निधि के माध्यम से मिल चुके हैं। एक समय था जब यूरिया के लिए लाइनें लगा करती थी, अब किसानों को नैनो यूरिया मिल रहा है। पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि निर्यात पर नीति, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों पर एवं 8000 किसान उत्पादक संघ एफपीओ बनाकर देश के अन्नदाता को मजबूत करने का कार्य किया गया है। आज किसानों को कृषि की उन्नत तकनीकी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे उनकी पैदावार भी बढ़ रही है और आमदनी भी बढ़ रही है। माननीय सभापति जी, ये पार्टी, माननीय मोदी सरकार गरीब को गणेश मानकर कार्य कर रही है। ये सरकार आज 80 करोड़ नागरिकों को निःशुल्क राशन प्रदान कर रही है। आज देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से 4 करोड़ 10 लाख परिवारों को पक्के मकान मिलने का काम हुआ है, 10 करोड़ उज्ज्वला योजना गैस कनेक्शन मिलने का काम हुआ है, पहली बार लगभग 11 करोड़ गरीब परिवारों को घर में नल के द्वारा शुद्ध पानी मिलने का काम हो रहा है। देश में 11 करोड़ शौचालय बनने का काम इस मोदी सरकार में हुआ है। और सबसे बड़ी बात, आज जिस प्रकार से जो पहले गरीबी हटाओ के नारे दिया करते थे, आज गरीबी रेखा से ऊपर 25 करोड़ लोगों को मोदी सरकार ने बाहर निकालने का काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री के इस विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए पिछले 10 वर्षों में पर्यटन क्षेत्र में भी अभूतपूर्व काम किया गया है। पर्यटन क्षेत्र के में जो वृद्धि हो रही है, इससे भारत की साख बढ़ी है और दुनिया का हर व्यक्ति भारत को देखना, जानना एवं समझना चाहता है। घरेलू पर्यटन आज देश की अर्थव्यवस्था और युवाओं को रोजगार देने वाला एक बड़ा सेक्टर के रूप में उभर कर आ रहा है, जिसका उदाहरण हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लक्षद्वीप एवं गुलाबी नगरी जयपुर के दौरे को देखने उसे मिलता है। माननीय सभापति महोदय, ये एक मेक इन इंडिया योजना एवं पीएलआई योजना का ही एक नतीजा है कि पिछले 10 वर्षों में भारत हथियार के आयात से हथियारों का निर्यातक बन गया है। भारत में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल एवं तेजस जैसे लड़ाकू विमानों का लोहा पूरी दुनिया मान चुकी है। यह भारत की कुशल रक्षा नीति का ही परिणाम है कि आज विश्व की कोई भी ताकत भारत की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकती। यह मोदी जी के सपनों का नया भारत है, जो अपने दुश्मन को घर में घुसकर मारता है। माननीय सभापति जी, मोदी सरकार के ने बीते 10 वर्षों में लाल चौक से लेकर चंद्रमा तक तिरंगा फहराने का काम किया है। आज भारत की छवि विश्व पटल पर भी उभर रही है और भारत पुनः विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। हम इस गति से आगे बढ़ रहे हैं। आने वाला 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार होने से हमें कोई नहीं रोक सकता। इसलिए कहते हैं कि सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कार्ति चिदम्बरम जी। Before I go to the President's address, I think I'm duty-bound to allude to my young friend who referred when he spoke earlier. Coincidentally, my young friend and I actually share a birthday. And unfortunately, he's not here to listen to me, and I'm sure he will listen to me via the social media. In his eagerness to please his leader, he actually ended up sounding like the leader of a fan club and not like an independent-minded member of parliament. Sir, I was very glad that he reaffirmed that his party believes in unity and diversity. And he referred to Shyama Prasad Mukherjee ji's speech in the Constituent Assembly, and he said the genesis of his political party comes from Sri Mukherjee, and they believe in unity and diversity. But that's really not the reality, sir, of their actions. The ruling party in India today believes uniformity is unity. And we in the Congress party and we in the opposition will always fight to preserve the cultural
linguistic and religious diversity of India. We will fight this, one that policy of this government. One language, one religion, one kind of culture, now even one temple, one God, and even taking away the diverseness of our nation will always be resisted. Sir, while the ruling party might have to please its leader and indulge in sycophancy, the reality of their India and the reality of what is actually happening is very, very different. Sir, our Honorable President was ceremoniously brought into this House with a parade with the Sengol leading the way. The Sengol stands for righteousness and for great virtues. But this much-wanted Sengol has witnessed two events in this very House which have been unprecedented. There has been a criminal trespass in this House which this Sengol witnessed, which many of us were here in the House on December 13th when there were trespassers who jumped from the visitors' gallery. It was a grave failure of security, a grave failure of intelligence, and now we are seeing the spectacle of it being turned into a political circus where that whole trial and the whole arrest is going to be turned into some sort of a political blame game. The Sengol also witnessed something very unprecedented, sir. This Sengol, which stands for righteousness, which stands for democracy, which stands for great justice, saw a spectacle of 146 members being suspended from this House. This Sengol, unfortunately, it was not meant to see these kind of unprecedented events. This Sengol is supposed to see justice. This Sengol is supposed to see fairness. That is the Sengol which brought our president into this House. Now I refer to 5 references from our Honorable President's speech. The first reference is, this is my first address in this new Parliament building. This building resonates with the resolve to respect our democratic and parliamentary traditions. Very high-sounding words, sir. But these high-sounding words did not find merit in inviting the President to inaugurate this House. This President had to wait for this day to come back and address this House, whereas the President should have come here to inaugurate this House. The second claim, sir, the President said, I appreciate all of you for having enacted the Nari Shakti Vandan, it's a tongue twister, sir, for me, Adhiniyam after a wait of 3 decades. This strengthens my government's resolve for women-led development. Everybody knows the reality, sir. Anybody who follows politics knows the reality that the Women's Reservation Bill will only happen after the census and after the delimitation. It is just a mirage which this government has put out in front of everybody, with knowing that these 2 goalposts will never be met, because the census is something which has to happen after 2026, and then a delimitation, which is going to be tremendously complicated if you are going to delimit constituencies according to populations, which means you will again penalize the southern states which have limited the population. Sir, I'd like to tell you a small statistic of this government which keeps wanting its commitment to Nari Shakti. Sir, the 17 BJP NDA ruled states account for 60% of all crimes against women. 70% of all rapes against women are committed in these states. So this double-engine sarkar which this government keeps wanting about is in fact a double-edged sword which is actually hurting the women in all these states, sir. I would come to the third claim from the President's speech. Today my government is building modern infrastructure along the entire border. Be it terrorism or expansionism, our forces today are giving a befitting response. I think the Foreign Ministry and the Defense Ministry forgot to give a memo to the President of India, the Honorable President of India, forgot to give her the Pentagon report, which is in public domain, which was filed in 2002, which says, since the 2020 Galwan Valley clash, the People's Liberation Army of China has been having a cozy, continuous presence, setting up their version of a scenic infrastructure along the line of actual control. Till date, we haven't had a categorical statement from the government, be it the Prime Minister, be it the Home Minister, be it the Defense Minister, categorically saying what is actually happening in the actual line of control which borders China, whether there's been incursions or not. Even now, recently, we saw a video, I think 2 days ago, all of us saw it. In Ladakh, our shepherds
being prevented and chased away from the grazing land which belongs in our territory by the People's Liberation Army of China. They've been chasing them away from our land. This is the kind of reality which is actually happening, but the president is being misled into believing that our borders are safe and we are creating infrastructure which is keeping intruders away. Sir, another claim of the president's address. My government has brought for the first time development in areas which have remained neglected for decades. I think somebody completely conveniently forgot to mention to the president the crisis which is happening in Manipur. There was not a single reference to the crisis which is happening in Manipur. There was not a single reference to the kind of ethnic strife which is happening in Manipur. But this government was congratulating itself for developing areas which have been neglected for decades. This is happening right in front of our eyes. There is ethnic strife here. People are being killed even today. And this government is being completely mute to that sad reality and is living in some sort of a Mayan utopia. Sir, the next claim of the president. Last year, my government has given government jobs to lakhs of youth in mission mode. So this very government, in this very house, to a question has said, still 9.64 lakh vacancies are still there in government jobs. So what jobs has this government given to whom? And sir, and we've seen the spectacle of young men from Haryana, from Uttar Pradesh, from Bihar, lining up to take up jobs in Israel and to go and to the Israel border, even though there is a war happening there. And they are saying it is better to work and die there than to die here without any work. That is the sad reality of the youth in India today, sir. They are willing to go to conflict zones to get jobs because there are no jobs here. But here, we are misleading, the government is misleading the president into believing that job creation is actually happening here, where the reality is that Indian youth are willing to go to strife areas to get jobs. Sir, the next claim of the president, this is a slightly longer one, indulge me please. After 75 years, the young generation relived that period of freedom struggle. Amrit Kalash, containing soil from every village of this country, were brought to Delhi. Over 2 lakh plaques were installed. More than 70,000 Amrit Sarovars were built. Construction of more than 2 lakh Amrit Vatikas were completed. These are all high in symbolism, sir. Very low in substance. Can this government say how many IITs they opened? Can this government say how many IIMs they opened? Even the much wanted aims of medical colleges and hospitals they said they are opening. None of them have come out in reality. For example, the one in Madurai, the Bhumi Puja was done 4 years ago. I know that when you do Bhumi Puja, you can do certain things very quickly. We've seen that, which what happened now recently. But this Bhumi Puja for the medical college and the hospital was done 4 years ago, and still that is not ready. In fact, the medical students in Madurai AIIMS are studying in Ramanathapuram. They will actually graduate from a college in Ramanathapuram, but their certificates will say they graduated from Madurai AIIMS. This is the reality of this government. High on symbolism and low on substance. This has been the hallmark of this government for the last 5 years, sir. Sir, as I conclude, this is probably the last speech many of us will be making in this August House in the 17th Lok Sabha. And I want to thank you personally, because most of the times I've spoken in this House, you've been in the chair. You are some sort of a lucky charm for me. I hope the same lucky charm continues for both of us in the next Lok Sabha as well. But, sir, I only have one hope. When the next Lok Sabha is convened, I hope this Sengol will see the righteousness and the virtuousness and the justice and the democracy it deserves to see, and not this acrimony which has been the hallmark of this House. Thank you very much, sir. Shrimati Supriya Sule ji. So very much. I stand here to speak on the राष्ट्रपति के अभिभाषण के डिस्कशन में एनसीपी की तरफ से आपने मुझे वक्त दिया, इसलिए मैं तहे दिल से आपकी आभारी हूँ सर। सर, सारे स्पीचेस सुबह से सुन रहे, पहले दो तो मुझे लगा वो बचपन में कहानियाँ सुनाते हैं ना माँ बच्चों को कि सब अच्छा है, एक परी आती है वो सब अच्छा करके जाती है, और वो स्टोरी होती है, बच्चे को लगता है कि सचमुच कोई परी है वो आके करने वाली है सारा ठीक। जैसे जैसे बड़े होते हैं तो पता चलता है कि इतना आइडियलिस्टिक दुनिया है नहीं, तो शायद ये ख्वाबों में रह रहे हैं। और गवर्नेंस इज कंटिन्यूटी, हर सरकार कुछ तो अच्छा करती है, ऐसा नहीं है कि सब सरकार का सभी गलत है, अच्छा तो सब करते हैं, लेकिन थोड़ी चीज़ें शायद वास्तव से दूर है। नहीं तो सबका एक स्पीच सबको ड्राफ्ट आया और वही सारे पढ़े जा रहे।
there is nothing new. Even in the budget speech and the honorable president's speech, the draft was almost similar. पता ही नहीं चला कौन सा बजट वाला है कि कौन सा प्रेसिडेंट स्पीच है, क्योंकि हर में 10 साल का हिसाब है. अगले इस साल और अगले साल का हिसाब तो है ही नहीं उसमें. और इतनी सारी कॉन्ट्रडिक्शंस है जो कार्ति चिदम्बरम जी ने जो कहा, हाई ऑन सिंबलिज्म एंड लो ऑन सब्सटेंस. एवरीथिंग इज ऑप्टिक्स एंड एवरीथिंग इज इवेंट, और वो इवेंट खत्म हो जाता है, लोग भूल जाते हैं. सर आपको याद होगा जब ये सरकार आई थी तब उन्होंने एक संसद ग्राम योजना शुरू की थी. उसका क्या हुआ पता नहीं. मेरा अलग है, मैं आपको समझा सकती हूँ, आपका बारी होगी तो आप समझा दीजिए. संसद ग्राम योजना 10 साल से मैंने कहीं नहीं, कहीं कभी किताब दिख जाती है किसी 1-2 सांसद की, लेकिन आगे कितने गांव हुए, इसको क्या हुआ. शौचालय की बहुत सारी बातें हुई. सर शौचालय बने जरूर बने होंगे, लेकिन कितने ऑपरेशनल है ये किसको भी हिसाब किताब नहीं है. जब आए थे स्वच्छ भारत, इसमें सारी राज्य काम करते हैं, उसका डेटा नहीं है. आप कहीं भी दुनिया घूम लीजिए सर. रेलवेज में हुआ है बदलाव, रेलवेज पहले से साफ हुई है, हाँ हुई है, देयर आई कैन से दैट. जो अच्छा है उसको अच्छा बोलेंगे, लेकिन इस देश में कचरा कम हुआ है, कूड़ा कम हुआ है, नहीं हुआ है सर. तो ये जब ये जो काम होता है ना सिंबलिज्म में होता है, और सब्सटेंस रियली इज लो. इट्स नॉट, आई एम जस्ट बीइंग वेरी pragmatic and as optimistic I'd like to be, because ये देश जितना आपका है वो हमारा भी है. महंगाई के बारे में तो कुछ इन्होंने कहा नहीं. महंगाई का डेटा जब मैं बजट में बोलूंगी विस्तार से बोलूंगी, लेकिन जितने चैनल्स दिखाए उस दिन सर, बजट के दिन में सुबह हर महिला सिर्फ एक मांग कर रही थी सबको कि आपको बजट में निर्मला जी से क्या चाहिए, तो हर महिला सिर्फ इतना ही कह रही थी कि भाई महंगाई कम करिए, बाकी हमको कुछ नहीं चाहिए. सर आपने भी टीवी देखा होगा उस दिन. उसके बाद बेरोजगारी. सर बेरोजगारी तो डेटा ही बोलता है, मुझे और कोई बोलने की जरूरत नहीं है. आइए तो 2 करोड़ वगैरह तो 15 लाख का जुमला, वो तो अभी बोल बोल के थक गए हम. नौकरियां तो हो नहीं रही. कितनी सारी बड़ी कंपनीज आज भी है सर जो 1000-1500 लोग निकाल रही है, बहुत सारी. आप यूनिलीवर जैसे बड़े बड़े कंपनीज देखिए सर, उनका फोर्स कम हो रहा है. क्यों हो रहा है? इसकी तो कोई बात हो, चर्चा हो, लेकिन वो इसके बारे में कोई नहीं बोले जा रहा है. और जिस राज्य से मैं आती हूँ सर, महाराष्ट्र में बहुत सारी चीजें हैं जिसमें बहुत सीरियस चर्चा होनी चाहिए, और बहुत सारा अनरेस्ट उस राज्य में आज है सर. सर मैं गिनवाती हूँ आपको, आंदोलन किस किस में चल रहे हैं. आरक्षण का आंदोलन महाराष्ट्र में हो रहा है. आशा वर्कर और आंगनवाड़ी हमारी भगिनी वो आंदोलन कर रही है. डॉक्टर्स आंदोलन कर रहे हैं, टीचर शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं. तलाठी की नौकरी का पेपर लीक हो गया, आंदोलन चल रहा है. और उसके बाद आप देखिए महिला आरक्षण का आपने तो बोला, उसका तो आगे कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि चेक तो साइन कर लिया, नाम भी लग दिया, लेकिन उस पर डेट ही नहीं है. तो कौन सी महिला के बारे, आप टोकनिज्म फिर से आता है. सिंबलिज्म इज हाई, सब्सटेंस इज लो. आपने प्रेसिडेंट करवा दिया, अच्छी बात है, अच्छी बात है, हमको भी अच्छा लगा जब प्रेसिडेंट एक महिला बनी, लेकिन उसके बाद महिला आरक्षण का क्या हुआ? कुछ नहीं. हम तो यही तो बैठे थे, दोनों हाथ से ताली मारे थे, अच्छी बात हुई. फिर मेरे दोस्त मनीष तिवारी ने बोला सुप्रिया ये जुमला है और एक, इस पे डेट ही नहीं है, तो वो तो इस साल तो नहीं हो रहा है. उसके बाद आप देखिए दवाई हमारे यहाँ, उसमें भी महाराष्ट्र में गड़बड़ है. उसके बाद जिसके बारे में इन्होंने कहा मणिपुर के बारे में, तो कोई किसी ने कुछ भी नहीं कहा. इतने असंवेदनशील हो गए हम लोग कि जहां आज हो रहा है उधर प्रॉब्लम, इट इज अ boiling pot, sir. Should we not discuss? Is it not our moral duty that we only talk about the good things and push everything under the carpet? Parliament is a very serious place to have these discussions. Even Jammu Kashmir is doing much better, but has everything stopped? जम्मू में क्या हुआ सर? अब आपको याद होगा दिसंबर में कितना बड़ा अटैक हुआ था. So this place is not just about jingoism. It's a very serious platform to have discussions and give suggestions on self-improvement. So these are a few issues that we need to discuss, and we expect the Honorable Prime Minister, when he replies that विस्तार से अगर इस बारे में हम सबको समझा दे, we will also give good suggestions for the betterment of this country. That's why this democracy works. It's not only about using ice. Ice मतलब सर, ice मतलब बर्फ नहीं, ice मतलब income tax, CBI और ED. पार्टियां तोड़ो, घर तोड़ो, अपनी पार्टी बनाओ. कांग्रेस मुक्त भारत करने वाले थे, जितने कांग्रेस वाले कांग्रेस में नहीं रहे उतने बीजेपी में दिखते हैं सर, हर राज्य में, कश्मीर टू कन्याकुमारी. तो मुझे लगता था कांग्रेस मुक्त मतलब कांग्रेस खत्म कर देंगे. मुझे नहीं लगा था कि निगल जाएंगे और ज्यादा उनके यहाँ ही लोग होंगे कांग्रेस के. ये तो कुछ और ही फॉर्मूला निकाल दिया. सर ऑन अ सीरियस नोट आई वुड लाइक टू मेक सम इंटरवेंशंस विच जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र से मेरे अनुभव है जो मैं शेयर करूंगी.
सर हमारे यहाँ बारामती जिस निर्वाचन क्षेत्र में आती हूँ वहाँ सम्यक झाजेर नाम का एक यंग लड़का है, उसका एक दुकान है और मैं यहीं उसके साथ घूम रही थी, पता कर रही थी कि मार्केट में क्या चल रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, महंगाई, मिडिल जो इन्वेस्टमेंट्स आ रही है उसका क्या हो रहा है, क्योंकि जो मिडिल दुकानदार है सर उसका क्या हो रहा है, उसको कैसे पैसे मिल रहे हैं, उसका कैसा ड्रॉप हो गया है, 25-30% उसका बिजनेस कम हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? तो ये समझ में है कि मैं दुकान में गई थी और वो बोल रहा था कि उसके यहाँ 2-3 साल पहले बहुत अच्छा चल रहा था, बिकॉज देयर वाज नो रूरल डिस्ट्रेस, लेकिन शादी के कपड़े वहाँ मिलते हैं सर। और उसने कहा 30-40% अभी धंधा कम हो गया, उसका बिजनेस कम हो गया है इस दुकान में, क्योंकि देयर इज रूरल डिस्ट्रेस। वेयर इज द रूरल डिस्ट्रेस? मतलब किसान को अगर पैसा नहीं मिलेगा, सब बोल रहे 6,000 रुपया, सर 6,000 रुपया उसको मिलता है हर साल, लेकिन इसका मतलब नहीं है इट हैज नॉट डबल्ड हिज इनकम। जो प्याज के बारे में अमोल कोल्हे जी बोले, दूध के बारे में भी वही हाल है सर, सोयाबीन के बारे में वही हाल है। आप पैन इंडिया देख लीजिए सर, इट्स अ वेरी सीरियस इशू, इट्स एन अग्रेरियन क्राइसिस। तो अगर इस सरकार को सिर्फ 6,000 रुपये से नहीं हल होने वाला, ना ये माइक्रो कुछ बोलते पता नहीं क्या क्या बोलते हैं टेक्नोलॉजी सर, और इतनी आगे बढ़ गई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये तो सिर्फ वो नैनो फर्टिलाइजर्स में अटके। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में माइक्रोसॉफ्ट ने आके बहुत अच्छा प्रोग्राम करा है। वो इतना सा छोटा सा चिप होता है, वो डाल देते हैं उसके वो किसान डाल देता है और वो मोबाइल से पता चलता है कितना पानी डालना है, कितना फर्टिलाइजर डालना है। तो ये जो नैनो का बोल रहे हैं वो तो पीछे रह गया, हम तो और आगे पहुंच गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कनेक्टेड टू फार्मिंग सर। बहुत अच्छा उसमें काम लग रहा है, लेकिन उसको जब तक भाव नहीं मिलेगा उसका इनकम डबल कैसे होगा? प्याज का आप देख रहे पॉलिसी यू टर्न किया है। मैं तो पीयूष जी को बोल बोल के थक गई कि प्याज का एक्सपोर्ट आप मत रोकिए। वो भी इथेनॉल ने भी यू टर्न किया। थर्सडे को बोले इथेनॉल का बहुत अच्छी पॉलिसी करेंगे, एनकरेज करेंगे, फ्राइडे को बैन कर दिया। तो फिर आप वो गन्ने का किसान का क्या होगा? उसकी कैसी घर कैसे चलेगा? उसके बच्चों की फीस वो देना चाहता है, दवाई लेना चाहता है, अच्छा जीना चाहता है। डबलिंग ऑफ इनकम फार्मर्स नहीं हुआ है सर, आप डेटा चेक कर लीजिए। तो वी नीड टू डिस्कस दिस, वी नीड टू एड्रेस। ये जिंगोइज्म से हल नहीं होने वाले प्रॉब्लम्स। उसके बाद एसपी बघेल जी ने कहा कि सिलेंडर की उनकी बड़ी स्टोरी उन्होंने उनकी माँ की बताई, बहुत अच्छी थी वो, उन्होंने भोगा है, उनकी माँ ने भोगा है और सिलेंडर आ गया, अच्छी बात है। आप सर बताएं, मेरे निर्वाचन क्षेत्र की बात, इंदापुर में झगड़ेवाड़ी नाम का एक गाँव है। मैं हर गांव में घूमती हूँ, तब मैनाबाई नाम की एक सीनियर लेडी थी। मैंने उसको पूछा आपको सिलेंडर मिला? सेड हाँ मिला। तो उसका क्या करते हैं? ऐसे मैं नहीं यूज करती। मतलब क्यों नहीं आप मैनाबाई करते? सेड बहुत महंगा है ताई, 6,000 रुपया मुझे मिलता है, उसमें का 1,000 अगर सिलेंडर में डालूं तो खाऊंगी क्या, बच्चों को क्या खिलाऊंगी? तो आज आप मानो या ना मानो सर, वो कह रहे थे उनके भाषण में एसपी बघेल जी कि महिलाओं को बहुत अच्छा चल रहा है। सर आप इंडिपेंडेंट आप देख लीजिए, और मैं गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पता करिए कितने सिलेंडर रिफिल होते हैं। उज्ज्वला योजना, द इंटेंट ऑफ द गवर्नमेंट मे बी वेरी गुड, आई एम नॉट टेकिंग इट अवे फ्रॉम द गवर्नमेंट, बट रिफिल कितने होते हैं? और मैं 10 साल, इनको आदत है कि पहले क्या हुआ, अरे फिर इस हिसाब से हमारे टाइम में तो 450 रुपया था सिलेंडर का भाव, आज तो 1,000 रुपया का हो गया। तो महंगाई तो बढ़ी ना, और सो क्या हो गया फिर? और आज आप देखिए, आप आशा वर्कर के मीटिंग में चले जाइए सर, मैं खुद हर आशा वर्कर और आंगनवाड़ी सेविका, जब उनका आंदोलन चल रहा है, उनको 10 बार मिल चुकी हूँ। मैंने पूछा आप चूल्हे पे खाना पकाते हैं कि सिलेंडर से? तो आधी बोली मिक्स करती है, क्योंकि हस्बैंड भी है, दोनों मिलके करते तो जल जाता है। लेकिन जो अकेली महिला है वो नहीं कर पाती सर, क्योंकि महंगाई है। आप मानो या ना मानो, यहाँ नहीं मान सकते, घर जाके आप भाभी से पूछ लीजिए, भाभी बता देगी आपको कितनी महंगाई बढ़ी है इस देश में। तो महंगाई का तो इशू है, और जो एसपी बघेल जी कह रहे थे वो थिंक है, उनका एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा होगा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी वैसे नहीं है। सिलेंडर का दिक्कत है, उज्ज्वला योजना हैज नॉट डन एज वेल एज द गवर्नमेंट लाइक्स टू क्लेम इट इज। उसके बाद आयुष्मान भारत के बारे में बोले, अगेन आई एम नॉट टेकिंग अवे फ्रॉम द इंटेंट ऑफ द गवर्नमेंट, इंटेंट बहुत अच्छा होगा, लेकिन इंप्लीमेंट तो होना चाहिए। फिर से वो हो गया अगेन जिंगोइज्म। आयुष्मान भारत में मेरे निर्वाचन क्षेत्र के मैं आपको 10 उदाहरण दे दूं सर, आप भी फील्ड पे बहुत होते हैं, आप पता करिए आयुष्मान भारत के कितने लोगों के पास कार्ड है। मैं आपको उदाहरण में बोल दूं, हमारी एक महिला है जिसका नाम ये आयुष्मान, ये पुरंदर है मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, वो खड़द नाम का एक गाँव है। योगेश पाटिल मुझे सर मिलने आया था, उसके मदर को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था,
कुछ नहीं कर पाया वो। और उसके बाद आयुष्मान भारत का कार्ड 10 जगह गए, कहीं नहीं चला। उसके बाद गांव के सब लोगों ने पैसा इकट्ठा किया और उसका बिल भरा है सर। तो आयुष्मान भारत इनको लगना द स्कोप नीड्स टू बी इंक्रीज्ड। तो जस्ट 10 हॉस्पिटल करके सब नहीं होने वाला सर। और जो आप मदद कर रहे आंगनवाड़ी और आशा बहनों को, वो अच्छी बात है, उसका मैं स्वागत करती हूँ, लेकिन वो स्कोप अगर बढ़ा चाहिए। तो जो पेंशन भी देते हैं ना, नहीं तो उन महिलाओं की मांग है। आज सुबह आप याद होगा सर, क्वेश्चन आवर में क्वेश्चन था, उसमें उन्होंने सोशल सिक्योरिटी इंश्योरेंस के बारे में आज स्मृति ईरानी जी जवाब दे रही थी आंगनवाड़ी में। तो आंगनवाड़ी में हमारी एक सुझाव है सर कि अगर आप पेंशन दे रहे तो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को दे दीजिए। क्या होता है, आंगनवाड़ी वो हमारी जो भगनी, उसका जब एक्सीडेंट होता है तो ही फैमिली को मिल जाता है, लेकिन उसके पति का अगर एक्सीडेंट हो तो उसको कुछ नहीं मिलता, वो अकेली रह जाती है। तो व्हाई नॉट दिस इज अ सजेशन आई एम मेकिंग टू द गवर्नमेंट कि अगर आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स को आप ये पेंशन दे रहे तो जहां जहां उनके पति है दोनों का फैमिली का करवाइए, तो दोनों में से किसी को भी अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट हो जाए तो न्याय वो औरत अकेली ना रह जाए। That is my only suggestion to this government. So I'll be really appreciating if they look at it, sir. ये आयुष्मान भारत सर। दूसरा EPS 95 सर, आपको भी मिले होंगे वो हेमा जी ने भी बहुत अच्छा लीड लिया था। माननीय प्रधानमंत्री जी को हेमा जी लेके गई थी उन सबको मिलने। मैं उनकी भी आभारी हूँ कि उन्होंने कोशिश की। लेकिन EPS 95 is a commitment बीजेपी गवर्नमेंट had given in 2013 आने से पहले। आपको याद होगा अरुण जेटली जी उनको मिले थे और अरुण जी ने वायदा भी किया था। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ नहीं रहे अरुण जी अभी। लेकिन EPS 95 के जो लोग हैं सर, उनको 700 रुपया भी आज नहीं मिलता, उनको हक का पैसा है सर। फिर वो कहाँ गया? सरकार के पास ही तो पड़ा था, विश्वास के नाते उन्होंने EPS 95 लोगों ने दिया था, उसका क्या हुआ सर? और इतना रेलवे का अच्छा बोलते हैं ये। आपको पता है सर, ये जो सीनियर सिटीजन है इस देश के, सब सीनियर सिटीजन का जो कंसेशन था वो कोविड के टाइम में बंद किया था, आज तक चालू नहीं हो रहा है। तो ना पेंशन उनको मिल रहा है, ना उनको ये रेलवे का बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो क्या करेंगे इस वंदे भारत का? बस जारी है ट्रेन जोर जोर से सर। और ऑक्यूपेंसी कितनी है वंदे भारत की? मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 4 चलती है सर, ऑक्यूपेंसी इज नेग्लिजिबल। आई अर्ज द ऑनरेबल रेलवे मिनिस्टर हु इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब, बट अगर आप जितने वंदे भारत चलाएंगे अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ गरीब रथ भी चलाइए सर। और स्टॉपेजेस चाहिए उनको। बहुत लगता है कि एफिशिएंसी बढ़ रही है, लेकिन एफिशिएंसी किसके लिए बढ़ा रहे हैं आप रेलवे की? अगर वो गरीब है, शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, वो अगर स्कूल नहीं जा पाएगा, वो किसान नहीं जा पाएगा, वो लेबर वहां नहीं, उसके लिए ट्रेन रुक रही है, तो क्या करेगा उस ट्रेन का? बस देखता रह जाएगा वंदे भारत जा रही है। ये गरीब रथ आप नहीं बढ़ा पाएंगे। हमारी मांग है सर, ये स्टॉपेजेस बढ़ाइए और गरीब रथ भी बढ़ाइए। देश ये गरीब देश है सर। और आप, एक तो मुझे बहुत कॉन्फ्लिक्ट हमेशा होता है, पिछले साल भी मैं बोली थी, आज भी मैं वही बोल रही हूँ कि 80 करोड़ लोगों को आप खाना देते और यहां आप बोल रहे इतने सारे लोगों को आपने पॉवर्टी से बाहर कर दिया। तो ये नंबर क्यों नहीं बदल रहा है? अगर 80 करोड़ लोगों को कंसिस्टेंसी आप अनाज दे रहे तो देन नोबडी हैज कम आउट ऑफ पॉवर्टी सर। इट्स अ कॉन्ट्रडिक्शन। हाउ हु हैज गॉट आउट ऑफ पॉवर्टी देन इफ यू स्टिल हैव टू फीड देम सर? सो देयर इज समथिंग रॉन्ग इन दिस number. So government must clarify where is this contradiction coming from? अनाज दे रहे अच्छी बात है, उसका स्वागत करते, लेकिन एक बार आप बोल रहे कि पॉवर्टी से बाहर बहुत सारे लोग लग रहे, सो देन हाउ इट डजंट मैच। पिछली बार भी यही नंबर था, आज इस साल भी वही नंबर है सर। सो दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। दिस गवर्नमेंट इज फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन सर। वन मोर मेजर पॉइंट सर, हमारे महाराष्ट्र में जो अब सबसे ज्यादा चल रहा है वो है मराठा, धनगर, लिंगायत और मुस्लिम समाज के आरक्षण का विषय बहुत चल रहा है सर। बहुत लड़ाई हो रही है और मेरे ख्याल से अभी आपके 200 MLA है और यहाँ 300 MP है सर। एक सेशन बुला के अगर इन सबको न्याय देना, अगर सरकार चाहे तो 1 मिनट में कर सकती, लेकिन कर नहीं रही। फिर वही आंदोलन कर देता है, फिर उनको बुलाते हैं। और कॉन्ट्रडिक्शन वहां भी है सर। अगेन जिंगोइज्म, मराठा समाज को उन्होंने दे दिया, फिर धनगर समाज को आपने क्यों नहीं दिया? और मराठा समाज को जो GR निकला है, इट इज नॉट गेटिंग इंप्लीमेंटेड। सर्वे चल रहा है, सर्वे की डेडलाइन खत्म हो रही है और वो यहां तो आना ही चाहिए ना। इट विल नीड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सर। तो आरक्षण के मुद्दे ऐसे ही चले रहेंगे। गांव गांव में सर आज आंदोलन और मोर्चे लग रहे। हु विल एड्रेस दिस सर? सो इट्स नॉट एज रोजी एज इट लुक्स।
every government does good work, but you have to address major issues. So these are some issues I will expect to get some clarity on. I am not saying who will win, वो तो वोटर डिसाइड करता है सर, हम नहीं यहाँ डिसाइड करते. The voter is king, वो डिसाइड करेगा कौन कहाँ बैठेगा अगले टाइम. But you have been very kind to us in the last 5 years. I am going to speak again on the budget. Thank you. So there is one more chance for me to speak before, but I appreciate all your patience and I urge the honorable government to be very empathetic. Leadership is not just about being affirmative. You have to be decisive, which is appreciating, but you have to have empathy and when you lead the country, sir. Thank you. श्री रमेश बिदोड़ी जी. अध्यक्ष जी आपकी बड़ी मेहरबानी. सुप्रिया जी के 10 मिनट के टाइम में 20 मिनट बोली हैं सर, बड़ी मेहरबानी जी. सभापति जी मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं और उनके अभिभाषण पे अभी जो मैं सुप्रिया जी को सुन रहा था, राज्य के मामलों को यहाँ पर डिस्कशन कर रही थी वो सारे के सारे. और दुर्भाग्य देखिए कि 10 महीने पहले यही सत्ता में बैठी थी महाराष्ट्र में और तब पेंशन नहीं मिली लोगों की, और लोकसभा में कह रही है पेंशन नहीं मिली वृद्धाओं को. आंगनवाड़ी का स्टेट का मामला होता है, क्यों नहीं देते वो लोग महाराष्ट्र में. और 10 महीने पहले सत्ता में थी और 10 महीने बाद सब कुछ बिगड़ गया, सिलेंडर भी बिगड़ गया, सब बिगड़ गया. खैर मैं अपने विषय पर आना चाहता हूँ अध्यक्ष जी. किसी भी देश की दशा और दिशा उस देश की सरकार की मानसिकता पर निर्भर करती है. अध्यक्ष जी आज 140 करोड़ देशवासियों का यह सौभाग्य है कि 50 वर्षों के कुशासन के बाद आज मोदी जी के कुशल प्रशासन को हम सब लोग देख रहे हैं. आज देश का उत्थान संभव हो पा रहा है आज क्योंकि मेरी मोदी जी की सरकार जो है इसकी सोच में एक नयापन है. और इस नएपन के कारण ही, क्योंकि नयापन क्या है कि पहले एक सोच थी मेरा परिवार, मेरा देश, मेरा परिवार ही हुआ करता था, उत्तर से दक्षिण तक सभी. अभी घमंडिया गठबंधन के भी लोग हैं, सबको अगर मैं गिनवाऊं सभी दलों की सोच देख लो आप. नेशनल कॉन्फ्रेंस शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला. समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव, अखिलेश यादव, लालू यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव. जेएमएम शिबू सोरेन जी, हेमंत सोरेन जी. टीएमसी ममता जी, अभिषेक जी. डीएमके करुणानिधि जी, स्टालिन जी, नाती दयानंद जी मारन जी, फिर बेटी कनिमोदी जी. ये सोच इनकी रही है. फिर कांग्रेस अभी कह रही थी कांग्रेस मुक्त भारत करने की बात कर रहे हैं. सुप्रिया जी आप भी तो उसी टीम के आदमी हैं, आप भी तो कांग्रेस मुक्त करके तो बाहर गए हैं माननीय पवार साहब जी. कांग्रेस जवाहरलाल जी, इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी, राहुल जी, अब प्रियंका जी लॉन्च की जा रही हैं. इस देश में और कोई है ही नहीं. लोकतंत्र की दुहाई देते, लोकतंत्र की बात करते हैं. और दूसरी तरफ इस सबसे अलग आज विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि 140 करोड़ लोग ही मेरे परिवार के सदस्य हैं. और ये परिवार नहीं, अब मैं बैठा नहीं क्योंकि शरद पवार साहब का मैं सम्मान करता हूं, वरना शरद पवार जी और सुप्रिया जी, और उसके बाद फिर हम सुप्रिया जी के बाद सुप्रिया जी किसको लॉन्च करेंगी पता नहीं. तो इसीलिए कि यही कारण है कि पिछले 10 वर्षों में वो भतीजा है ना, वो बेटी नहीं है. इसलिए यही कारण है कि पिछले 10 वर्षों में देश में एक ऐतिहासिक निर्णय, अभूतपूर्व विकास करने की तरफ देश आगे बढ़ रहा है. क्योंकि मेरे परिवारजनों, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है. अखंड भारत की पहली नींव रखने वाले बंगाल के सपूत सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने अपनी सेना बनाकर और गोरे अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए अपनी आर्मी का गठन किया, नेशनल आर्मी. उनके बारे में इनको 60 साल में किसी को कुछ सुध नहीं आई. उनको भी सम्मान देने का काम किया, उस बंगाल के सबूत को करते पर प्रतिमा लगाकर. तो माने देश के प्रधानमंत्री जी ने, जिन्होंने देश को आजाद कराया, उन्होंने किया. कांग्रेस की मानसिकता ऐसी रही कि पूरे के पूरे 60 साल एक ही खानदान की लॉन्चिंग में लगे रहे. इतिहास के पन्नों में भी सुभाष चंद्र बोस जी कहीं नहीं रहे, एक ही खानदान को चमकाने में लगे रहे. आज हमारे देश में 4 वर्ग के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस देश को बांटने, नॉर्दर्न साउदर्न में हिंदी अपोज कर रहे हैं, वहां ये कर रहे हैं. इस प्रकार की ये जो भारत तोड़ो लोग जो घूम रहे हैं, इनके कारण से. लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा है हमने विकास करना है. 4 ही जातियां हमारे सामने है, महिला है, युवा है, अन्नदाता है और गरीब है. और इतिहास साक्षी है
कि जब जब यहां क्रांति देश में आई है तब तक उसका बिगुल युवाओं ने बजाया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आज 65% आबादी 35 साल से कम उम्र के लोगों की देश में है और 25 साल से कम उम्र की आबादी हमारे देश की 50% के लगभग है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि के कारण अगर हम उन 1857 की क्रांति की बात लें तो हम धन सिंह कोतवाल, मंगल पांडे, रानी झांसी की रानी, तात्या टोपे, उसके बाद अगर हम अंग्रेजों के साथ में आए तो भगत सिंह जी, राजगुरु, सुखदेव जी, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस जी, राम प्रसाद बिस्मिल जी, ऐसे वीरों के कारण ही देश आजाद हुआ था। और इसी के कारण दूरदृष्टि की सोच है कि नौजवानों को आगे स्पेस देना पड़ेगा हमारे देश के अंदर। और ये कुछ पंक्तियां हैं जो लिखी जाती है, जिन्होंने कहा है कि तलवारों की धारों पर इतिहास बनाए जाते हैं, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। ये सोचकर ही हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने युवा शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए विकसित भारत का संकल्प इन्हीं युवाओं से संपूर्ण होगा। इन युवाओं की तरफ ध्यान देते हुए मोदी जी ने कहा है कि अभी जो नव मतदाता सम्मेलन में भी उन्होंने आग्रह किया था कि जो आज की हमारी पीढ़ी है, 40 साल, 50 साल, 45 साल, जिन्होंने तंज झेला है, वो आज का जो 22 साल का नौजवान है, भारत विकसित भारत होगा, उसको ये तंज झेलने की आवश्यकता नहीं होगी। युवाओं के उज्जवल भविष्य के संकल्पबद्ध प्रधानमंत्री जी ने अनेकों नीतियां, योजनाओं के माध्यम से युवा कल्याण के मार्ग प्रशस्त करने का काम इस सरकार में 10 साल में हुआ है। अध्यक्ष जी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसका उद्देश्य एजुकेशन के साथ एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप और उसके बाद एक्सीलेंस, ये नई 2020 जो एजुकेशन पॉलिसी आई है और जो स्किल इंडिया के तहत 1,40,00,000 युवाओं को प्रशिक्षण देने के बाद स्टार्टअप इंडिया से स्वरोजगार में 2018 में 8,600 लोगों को रोजगार, जो दोनों को दूसरों को रोजगार देने का काम किया, और 2023 में स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से 26,542 युवाओं को, जिन्होंने और भी लोगों को स्टार्टअप के तहत रोजगार देने का काम किया है। इसी प्रकार से सुप्रिया जी चली गई, ये बोलते हैं, पत्थर फेंकते हैं और भाग जाते हैं जी। सुनते तो पता लगता कि बेरोजगारी देश में कितनी कमी है, कितनी संख्या में कम हुआ है। स्वनिधि योजना 78 लाख लोगों को 10,000 रुपए का लोन माननीय अध्यक्ष जी देकर, गरीब आदमी जो गांवों से शहरों की तरफ इसलिए पलायन करता है कि उसके पास 2 बीघा जमीन है, 1 एकड़ जमीन है, गुजारा होगा नहीं, शहर की तरफ जाऊं, बच्चों का लालन पालन करना है, शहर की तरफ आए, रोजगार नहीं मिला, रोजगार करूं तो क्या करूं, रेडी पटरी खोमचा लगाकर सब्जी बेचना, गुजारा करना, फ्रूट बेचना, चाय की दुकान लगाना, फेरी लगाकर, और वो लगाने के लिए पैसा कहां से आए? 10-20 हजार रुपए होते तो गांव से शहर की तरफ क्यों आता? उनको साहूकारों के सामने हाथ फैलाना पड़ता था। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की गरीब आदमी के उत्थान को ऊपर करने की सोच ही थी कि स्वनिधि योजना चलाकर, योजना की 10,000 का लोन बगैर गारंटी के, क्योंकि मोदी जी ने 2014 में कहा था कि मेरी सरकार पार्लियामेंट में सांसद बनने के, पीएम बनने के बाद सेंट्रल हॉल में पहला भाषण है अध्यक्ष जी माननीय प्रधानमंत्री जी का कि हमारी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार रहेगी। 71 की तरह ये नहीं कहा था गरीबी हटाओ देश बचाओ, और गरीबी आज तक चल रही है। और गरीबों को समर्पित सरकार में स्वनिधि योजना के तहत 10,000 का लोन बगैर गारंटी के, बगैर ब्याज के, 1 साल तक कोई ब्याज नहीं देना गरीब आदमी को, और ऐसे 78 लाख लोगों को पिछले 2-3 साल में काम देने का काम हुआ। इसी प्रकार से मुद्रा बैंक 50,000 से लेकर और 10 लाख रुपए तक का लोन, वहां पर 43 करोड़ जो लोन मंजूर हुए हैं, इसमें 23 लाख करोड़ रुपया नौजवानों को देने का काम हुआ है। और इनकी, मुझे लगता है जैसे कहते हैं ना कि किसी की हरे में फूट जाती है आंख तो उसको बाद में दुनिया हरी हरी नजर आती है, सूखे में फूटती है, सूखी सूखी नजर आती है। ये कहते हैं कि रोजगार नहीं मिला लोगों को, तो 43 करोड़ जो लोन मंजूर हुए, 43 करोड़ SC/ST स्टैंड अप के माध्यम से 7,651 करोड़ लोन SC/ST नौजवानों को देने का काम हुआ। हर ब्रांच एक लोन देती है। पिछले 10 वर्षों में सर मेडिकल कॉलेज, गरीब का बेटा भी, गरीब की बेटी भी MBBS बनने का, डॉक्टर बनने के ख्वाब लेकर आगे आती है, अवसर नहीं मिलता था। जहां 60 साल में 367 मेडिकल कॉलेज थे, आज उनकी संख्या बढ़कर 643 हो गई सर। 103 केंद्रीय विद्यालय सरकारी खोलने का काम हुआ। अटल जी के नाम से अटल टिंकरिंग लैब, जहां 10,000 खोले जिनमें इनोवेशन को प्रोत्साहन मिले, तो 1 करोड़ ऐसे स्टूडेंट ने उसमें भाग लेने का काम किया है सर। और जहां तक मैं बात करूं
खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, क्योंकि स्पोर्ट्स ही एक ऐसा इवेंट है जिसमें स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मस्तिष्क, चरित्र निर्माण, टीम वर्क की भावना लोगों के बीच में आती है। और इसी के कारण स्पोर्ट्स के माध्यम से जाति धर्म सबसे ऊपर एक सौहार्द की भावना का विकास होता है। जाति धर्म एक तरफ रह जाती है, केवल राष्ट्रवाद की भावना रहती है, जहां ना जाति ना धर्म ना क्षेत्रवाद, केवल राष्ट्रवाद नजर आता है। अगर सचिन तेंदुलकर कहीं भी सेंचुरी लगाता है, पूरा देश का नौजवान एक एक ताली बजाता है, भूल जाता है कि दक्षिण का है पश्चिम का है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री की सोच के कारण खेल को आगे बढ़ाने का काम हुआ, जो लोगों में राष्ट्रवाद की भावना आगे निकल कर आई और जिससे जनता में एक नई चेतना जगी है। भारत को विश्व स्तर पर एक नई पहचान बनी है अध्यक्ष जी। पिछले 4 या 5 साल के अंदर देश भर में टैलेंट स्पोर्ट्समैन को आइडेंटिफाई करने के बाद उन्हें सरकार के द्वारा सहायता सर दी जा रही है, जिनमें लगभग हमारे देश में ऐसे जो लगभग 6 लाख के करीब एक स्पोर्ट्समैन को पैसा देकर उनके टैलेंट को उभारने का काम किया जा रहा है। जहां चिदम्बरम जी चले गए, कीर्ति जी, मुझे लगता है उनके पिताजी ने 2019-2013 में जो बजट लागू किया था स्पोर्ट्स का, केवल 1219 रुपए था सर, और मोदी साहब ने बढ़ाकर इसको लगभग 3400 करोड़ रुपया कर दिया, 3 गुना से ज्यादा कर दिया कि भारत का नौजवान उसको अवसर मिले, अपॉर्चुनिटी मिले। और खेलो इंडिया के नाम से ही अलग से 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। सितंबर 2014 में सर टारगेट हमारा जो ओलंपिक किया गया मोदी जी ने, और उसको पोडियम स्कीम लॉन्च की गई, जिसके कारण 2016 में टास्क फोर्स का गठन किया गया, जो आज इतने मेडल्स आ रहे हैं। ये सर आपके माध्यम से देश को जानकारी होनी चाहिए। उस टास्क फोर्स ने तय किया ओलंपिक 20, ओलंपिक 24, ओलंपिक 28 को टारगेट करके परफॉर्मेंस कैसे बढ़े, इस पर कार्य करना शुरू किया गया सर। खेलो इंडिया टैलेंट आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट के अंतर्गत 3000 शॉर्ट लिस्टेड खिलाड़ियों को प्रतिवर्ष 6,28,000 रुपए अनुदान देने का काम हमारी सरकार, मोदी सरकार ने किया है। क्योंकि खेल और स्पोर्ट्स में गरीब और सामान्य परिवार के बच्चे, गांव के बच्चे ज्यादा निकल कर आते हैं। कबड्डी, खो खो जैसे भारतीय खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए आगे बढ़ाया। इसी प्रकार से 29 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी ने फिट इंडिया कार्यक्रम लॉन्च किया गया उनके माध्यम से, जिससे शारीरिक व्यायाम और खेल के विषय में जन चेतना का प्रारंभ हो। उससे 45 मिनट अगर आप व्यायाम करेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे। और सर इस 2019 की फिट इंडिया लॉन्चिंग का उदाहरण है कि मैं कोरोना में फेसबुक कोई भी मेरी चेक कर सकता है। पूरे कोरोना में सर मैं कभी घर नहीं बैठा, लोगों की सेवा में जाता रहा, क्योंकि जो 45 मिनट व्यायाम होता था उसके कारण कोरोना कुछ नहीं कर पाया था। ये हमारे प्रधानमंत्री की सोच रही है सर। आज भी फेसबुक इसका उदाहरण देगा। फेसबुक पर रोज की डेट में जो हमारी पोस्ट होती थी, कहीं हम जो व्यवस्थाएं लोगों को दिया करते थे, इस कार्यक्रम के अंदर फिट इंडिया यूथ क्लब सर्टिफिकेशन को 15/8/2020 में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लॉन्च किया गया, जहां स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मस्तिष्क, चरित्र निर्माण के माध्यम से 47,133 युवा क्लब पंजीकृत किए देश के नौजवानों ने। देश के नौजवानों का विश्वास मोदी जी के अंदर बढ़ा है। और उसके बाद ओलंपिक के जो गेम हुए, उन्होंने इस बात को दिखा दिया कि भारत का युवा शक्तिशाली है, वो कुछ भी कर सकता है। इसमें कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग के अंदर जो 2019 में हुआ सर, 35 गोल्ड भारत के अंदर आए थे, जहां भारत टकटकी लगाए देखा करता था कि गोल्ड की लिस्ट में हमारा नाम होगा या नहीं होगा। इसी प्रकार से 21st कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस के अंदर तो सर कमाल ही हो गया। जितने भी टेबल टेनिस के हर एज के अंदर टूर्नामेंट हुए थे, इवेंट हुए थे, हर किसी के अंदर गोल्ड भारत ने लिया था सर। ये भारत का नाम रोशन किया। इसी खेलो इंडिया खेलों के तहत ऑल गोल्ड मेडल सर। और स्पेशल, अगर मैं स्पेशल ओलंपिक की बात करूं, 368 मेडल पैरा ओलंपिक के अंदर, जिसमें 85 गोल्ड, 154 सिल्वर, 129 ब्रॉन्ज, जो भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर आया सर। 70 साल के बाद ये कहते हैं, ऐसे करते हो जैसे 10 साल में ही सब कुछ हुआ है। इससे पहले हुआ ही नहीं, इससे पहले कभी सोचते भी नहीं थे सर हम। इसी प्रकार से सर मैं अभी जब एक स्टेडियम का नाम गुजरात सरकार ने मोदी जी के नाम से स्टेडियम का नाम रखा, बड़े तिलमिलाट लग गए। गोगोई जी आज है नहीं, अगर यहाँ पर होते तो मैं उनको बताता कि गोगोई जी थोड़ा बैक में जाकर देखिए, पूरे देश में एक ही खानदान के नाम से 19 स्टेडियम है सर। क्या इस देश में प्लेयर नहीं हुए? क्या इस देश में देशभक्त नहीं हुए? क्या इस देश में अच्छे पॉलिटिशियन नहीं हुए? इस देश के अंदर 32 शैक्षणिक संस्थाएं, 650 ऐसे वो है सर जिनको हम बोलते हैं संस्थाएं, जिनमें से 32 शैक्षणिक संस्थाएं, 4 अस्पताल केवल राजीव गांधी जी के नाम से हैं देश के अंदर। लेकिन इनको दर्द हो गया कि गुजरात सरकार ने मोदी जी के नाम से एक स्टेडियम का नाम कैसे रख दिया गया सर। इसी प्रकार से सर
अगर ये विल पावर पैदा हुई है मोदी जी के नेतृत्व में, उन पर विश्वास करते हुए मजबूत सरकार जो बनी है सर, इस मजबूत सरकार को 84 के बाद 84 में जब रॉयट्स हुए थे तब देश ने माना था कि देश के अंदर कोई सरकार पहले से बनेगी। आज तीसरी बार सरकार बनने के पीछे, मुझसे पहले तेजस्वी जी ने भी कहा, सुप्रिया जी भी कह रही थी एरोगेंसी है, ये एरोगेंसी नहीं है सर, ये विश्वास है सर। मुझे मालूम है मैं 50 किलो वजन उठा सकता हूं, 70 किलो उठा सकता हूं, 90 किलो उठा सकता हूं, 90 उठा सकता हूं, तभी कह सकता हूं 90 किलो वजन मेरे सर पे रखो मैं लेकर जाऊंगा। जिसके अंदर विश्वास ही नहीं होगा क्या करेगा? क्योंकि 10 साल में मोदी जी ने जो निर्णय लिए, जो 18-18 घंटे काम किया है, मंत्रियों से काम करा है, उसका परिणाम है सर। भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण का काम 500 वर्ष से सर, कितनी पीढ़ी बीत गई, कभी किसी ने हिम्मत नहीं जुटाई थी सर। अनुच्छेद 370 जम्मू की बात कर रहे हैं, अरे आंकड़े लिखा दो, पहले कितनी हत्याएं की जाती थी। अब एक आतंकवादियों का अगर ऐसा कोई उनका ऐसा अटैक हो जाता है, उसको लेकर शोर मचाते रहते हैं। ओबीसी कमीशन सर, काका कलेलकर 30 मार्च 1955 को एक कमेटी बनाई जवाहरलाल जी ने। कल ओबीसी समाज जो देश के अंदर 44 से 50% है, उनको उनका हक देने के लिए कभी ये हिम्मत नहीं जुटा पाए। प्रधानमंत्री मोदी साहब आए, ओबीसी के लोगों को सम्मान मिलना चाहिए, सरकारी क्षेत्र से लेकर हर क्षेत्र में उनके साथ अन्याय हो, कमीशन में उनकी भी कोई बात सुनने वाला होना चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देने का काम किया तो मोदी जी के नेतृत्व में, ओबीसी समाज को सम्मान देने का काम किया तो मोदी जी ने किया। ये अगर निर्णय लेने की विल पावर की बात थी सर, अगर मैं आप इससे आगे सर मैं बात करूं, जो अपर कास्ट जिसको स्वर्ण जाति हम बोलते हैं, उनमें गरीब नहीं रहते हैं क्या? कभी सोचा? एक परिवार, बड़े लोग, ऊंची जाति के लोग, उनका तो उत्थान हो रहा है, गांव में गरीब रह उसके बारे में नहीं सोचा। मोदी साहब ने बगैर